to the country's naval capabilities. We delivered three number of destroyers, one in 2021, another in 2022 and 23, and now we have delivered the fourth one in 24. So delivering 4 destroyers in 4 years consecutively, this itself is a huge feat which has been achieved by MDL. Today I look back the 4th destroyer which we have delivered, considering the period between the launching and the delivery. We have delivered from launch to delivery within 30 months. This I can say this is at par with the best of global standards. So even the most advanced countries. So over the years, the kind of ecosystem, the kind of supply chain which has been developed by MDL, this has put us in a very, very good stead to, on a consistent basis, in terms of quality, in terms of timelines. If I compare the previous destroyer projects, there were delays amounting to almost 4 years. So although based on the assessment post-delivery of the project, there was a delay that was assigned to MDL was 1 month 25 days max. The whatever liquidated penalties were levied on MDL, they were refunded back for the disproportionate period. But at the same time, when you maintain the platforms for such a long period, for 4 years, it consumes a lot of resources, including the manpower, and it is a huge drain on cost and profitability. The destroyers which we have delivered in recent times, the one we have delivered just 2 days back, this we have delivered almost 1.5–2 months ahead of schedule. The last destroyer also in 23, what we delivered, that was almost 4.5–5 months ahead of schedule. So when you are delivering these platforms before the contractual delivery dates, it has a significant impact on the profitability and costs. So MDL has matured into a very fine world-class organization, so gives a great deal of satisfaction looking back that being a part of this organization and now at the helm of the affairs, you do feel satisfied. Named after the iconic port city of Chennai, the ship has a complement of about 45 officers and 395 personnel. Enhancement of crew comfort has been a significant feature of INS Chennai, which has been ensured through meticulously designed accommodation based on modular concepts. So basically, a ship is a very compact space, so you would see a lot of improvisations on a ship. So basically to you it might appear just as a room, but we have all the things that we would need during long deployments to treat any emergencies or the common ailments that we see like sore throat, fever, cold and cough. We have everything with us. So we have defibrillator, ECG machine, we have glucometer, oxygen concentration, all the things that would be required to treat an emergency if we face any during the sea. And we have with us all the emergency medications as well as the common medications that you would require. Before going for the longer deployments, as a ship we have to prepare well and we have to plan correctly before going to sea. And that planning includes planning for the equipment readiness, combat readiness and the logistic support. First, we have to carry out and we have to look into the preventive maintenance of all the equipments which are required on board. We have to prepare all sensors and weapons to deliver the decisive punch in the enemy's arena. Next, we need to look into the navigational aspects. So whatever the deployment is, deployment may be on the military role, deployment may be on the rescue based or maybe other diplomatic objectives which we had given. So we have to prepare our navigational route, we have to plan our OTRs and so many things. Other than this aspect, we have to look into the logistic support as well, and that includes the ration and the fuels for the machineries. And while maintaining the morale of the crew and the ship's company, we keep few people down from the ship at the harbor to take care of the families as well, so that people are mentally well prepared for the objectives which are given.
स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली असंख्य महिला क्रांतिकारी हुईं, जिन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थीं। ऐसी ही एक वीरांगना थी गुलाब कौर। पंजाब के बेहद गरीब परिवार में जन्मी गुलाब कौर ने विवाह के बाद बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। पैसों की कमी के कारण पति मान सिंह के साथ गुलाब कौर पहले मनीला पहुंची, जहां से पैसे कमाकर आगे अमेरिका जाने की योजना थी। इसी दौरान गुलाब गदर पार्टी के नेताओं के संपर्क में आई। गदर पार्टी एक भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसकी स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से पंजाबी सिख प्रवासियों द्वारा की गई थी। गदर पार्टी ने गुलाब कौर को क्रांतिकारी साहित्य छापने की जिम्मेदारी दी। जल्द ही भारत की आजादी के लिए गदर पार्टी ने वतन वापसी का फैसला लिया। गुलाब कौर भी भारत लौटने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन तय दिन उनके पति मान सिंह फैसले से पलट गए। गुलाब अपने इरादे पर डटी रहीं और भारत जाने वाले जहाज पर सवार हो गईं। जहाज पहले हांगकांग पहुंचा, जहां प्रवासी भारतीयों की सभाओं में गुलाब कौर गदर की गूंज कविता की पंक्तियां गाती और अपनी चूड़ियां उतार कर लोगों को ललकारती। जहाज भारत पहुंचा और पहुंचते ही गदर पार्टी के कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन गुलाब बचकर पंजाब आ गईं। उन्होंने होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला में लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। गुलाब क्रांतिकारी साहित्य छापती और उसे स्वतंत्रता सेनानियों में बांटने का काम करती। गुप्त रूप से वो क्रांतिकारियों तक हथियार भी पहुंचाती थीं। धीरे धीरे गुलाब कौर के प्रेरक व्यक्तित्व और अथक प्रयासों से पंजाब में एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो गया। कई बार ब्रिटिश पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार गुलाब कौर गिरफ्तार कर ली गईं। राजद्रोह के मामले में उन्हें लाहौर के शाही किले में कैद कर लिया गया, जहां उन्हें गंभीर यातनाएं दी गईं। 1931 में आजादी का सपना दिल में ही लिए ये महान वीरांगना हमेशा के लिए अमर हो गई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। स्वाधीनता की इस लड़ाई को और बल दिया। पंजाब का बच्चा बच्चा हम भारत के लोग की शक्ति बनकर इस जघन्य हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाने लगा और इन्हीं में से एक बालक थे भगत सिंह। कितना खून बहाया है इन अंग्रेजों ने। मैं जलियांवाला की इस बाग में शहीद और एक-एक की कसम खाता हूँ कि मैं इन अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की ऐसी जंग छेड़ूंगा कि इन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। जलियांवाला बाग में की हत्या हुआ तब से तो एकदम तय था कि जितने भी आखिर में जितने भी थोड़ा बहुत ब्रिटिशों के प्रति जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट था वो चला जाने लगा, वो खत्म होने लगा। तो जलियांवाला बाग एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जलियांवाला बाग की घटना के बाद यूं तो पूरा देश ही गुस्से में था, लेकिन पंजाब में तो ये गुस्सा लावा बन गया था। एक तरफ 12 साल के भगत सिंह अंग्रेजों को भारत से भगाने की शपथ ले रहे थे, तो दूसरी ओर इस जघन्य हत्याकांड के दौरान
जलियांवाला बाग में मौजूद रहे युवा उधम सिंह जनरल डायर को जान से मारने की कसम खा रहे थे। एक बंदे ने चुन चुन के गोली मारी है जनरल डायर ने। न बच्चा देखा इसने, न बुजुर्ग, न किसी औरत ने बख्शिया इस हवान ने। मैं उधम सिंह अपने गुरुओं की सौ खाना इस जनरल डायर नू आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसे तरह गोली मार के मारांगा। जनरल डायर पंचायत बने उधम सिंह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। जुलाई 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। अब उधम सिंह के निशाने पर माइकल ओ ड्वायर था। माइकल ओ ड्वायर को मारने के लिए उधम सिंह 6 साल तक लंदन में रहे और आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें अपनी कसम पूरी करने का अवसर मिला। एक के बाद एक गोली चलाकर ओ ड्वायर को उसके कर्मों की सजा दे दी। जलियांवाला बाग नरसंहार की नींव डाली। अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन उसी दिन अखाड़ों, आंदोलनों, समाचार पत्रों और गणेश उत्सव के माध्यम से हम भारत के लोक की शक्ति को जगाने और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी की प्रेरणा से स्वाधीनता आंदोलन में कूद जाने वाले सैकड़ों हजारों स्वाधीनता सेनानी तिलक जी के निधन से शोक में थे। शोक की इस लहर का अंदाजा तिलक जी की अंतिम यात्रा से लगाया जा सकता है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने में शामिल हुए। खुद गांधी जी ने तिलक जी के निधन को न केवल स्वाधीनता के आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति बताया, साथ ही निजी तौर पर भी उनके निधन को बड़ा आघात माना। आज हमने आधुनिक भारत का निर्माता खो दिया है। तिलक कांग्रेस के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदी भाषी न होते हुए भी आज पूरे देश में गूंज रहा है। बहुत स्वाभाविक है जो स्थान लोकमान्य तिलक ने खाली किया, उनकी मृत्यु के बाद जो स्थान खाली किया, उतना बड़ा नेता जो कांग्रेस का गरम दल है उसके पास नहीं था। गांधी जी ने आज से असहयोग आंदोलन शुरू किया है। हम सबको भी अपने दुख पर काबू पाते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट जाना होगा। गांधी जी के नेतृत्व में हमें ऐसा आंदोलन चलाना होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल जाए। कि मैं अब इस कमेटी का सदस्य न रहूं तो अच्छा है। इधर भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और उधर तुर्की में अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को उसके पद से अपदस्थ कर दिया, यानी हटा दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से तुर्की में और दूसरे मुस्लिम देशों में तो विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन भारत में उस समय के मुस्लिम नेताओं ने तुर्की के खलीफा को हटाने के विरोध में
यहां एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। पर उतार दिया। खिलाफत आंदोलन के पीछे का दर्शन अलग है। खलीफा को हटाया गया, तुर्की के खलीफा को हटाया गया, और उसकी जो ज्यादतियां थी तुर्किस्तान में, उससे वहाँ का जनमानस भी परेशान था। जब ब्रिटिश सरकार ने उसको हटाया तो वहाँ कोई आंदोलन उसके पक्ष में नहीं हो रहा है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहाँ पर उसके रूप में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। वो बेसिकली खलीफा की जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम की एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो एक ही हम जल्दी आज़ाद हो सकते थे। तो इन सब ने, मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया है, सरदार विट्ठल भाई पटेल ने विरोध किया है असहयोग आंदोलन की वापसी का। लेकिन कांग्रेस में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम जैसे तमाम लोग थे जिन्होंने गांधी जी के द्वारा आंदोलन की वापसी का समर्थन किया। सवाल ये है कि चौरी चौरा कांड क्यों हुआ? हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। Parliament of India, the state-of-the-art structure, stands as a symbol of India's progress and aspirations. Tailored to cater to the changing requirements of a contemporary time, the new Parliament building offers upgrade. Again, piece of paper, it's done digitally, a digital signature entered. So these are good things to make Parliament paperless, to make Parliament digital, and to encourage digitization within the MP. समस्तीपुर 2904 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 42,61,566 है। वहीं साक्षरता दर लगभग 62% और लिंगानुपात 911 है।
नमस्कार, आपका संसदीय क्षेत्र में आज हम पहुंच चुके हैं मिथिलांचल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले विद्यापति की भूमि बिहार के समस्तीपुर में। यहां से सांसद हैं शांभवी चौधरी। समस्तीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मंडल मुख्यालय है और पटना, कोलकाता, दिल्ली, धनबाद और जमशेदपुर जैसे शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह जिला उत्तर में। चलिए, ये लोग आपको भी सिखा देंगे सब कुछ। सब लोग अपना प्रैक्टिस करके जाइएगा, ऐसे ही मत लेके चले जाइएगा। हेलमेट, हाँ, और हेलमेट पहनिएगा। हेलमेट नहीं पहनिएगा कभी चोट लग जाएगा, कुछ लगेगा, सीधे माथा पे चोट लगेगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने कुछ दिव्यांगजनों से बातचीत भी की। नाम देवनारायण राय हुआ, वारिसनगर प्रखंड से आए हैं। घर मोगलानी चौक हो गया। पिता का नाम सीताराम राय है। ये समस्या आपको कैसे हुई थी? ये समस्या ये थी, एक्सीडेंट में हुआ। पुछारी लेके जा रहे थे, उसमें धक्का मार दिया, एक्सीडेंट हो गई। कब से आप परेशान थे इससे? 3 साल से। 3 साल से परेशान थे। कहीं सुनवाई नहीं हो रहा था। ये आए ब्लॉक में तो सुनवाई हुआ, तब जाके ये मिला। हाँ, खुश है, अच्छा लग रहा है। आप इनके साथ हैं? हाँ, हम इनके साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शहादत हुआ। अच्छा, हाँ। तो आप बताइए। ये जो मिला रिक्शा, इससे हम लोग बहुत खुश है कि बहुत सहारा मिलेगा कहीं चौक जाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए या स्कूल जाने के लिए या किसी ब्लॉक जाने के लिए। इससे हम लोग बेहद खुश है और इस रिक्शा मिलने से अभी फिलहाल में। और इसके लिए हम लोग को 2 दिन पहले कॉल आया था और हम लोग वेट कर रहे थे। आज त्यौहार होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं ताकि हम लोग को इनका लाभ मिल सके। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सांसद महोदय का। शांभवी अपने संसदीय क्षेत्र का लगातार दौरा करती हैं और लोगों के सुख दुख में शरीक होती हैं। अगर कभी किसी कारणवश वे तत्काल लोगों से नहीं मिल पाती, तो जब भी समय मिलता है वे उनसे मिलने जरूर आती हैं। सांसद चौधरी क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लगातार काम कर रही हैं। जब 1 साल पूरे नहीं हुए थे, तब इस क्षेत्र में बदलाव को लेकर शांभवी जी ने 4 प्रायोरिटीज रखी थी। पिलर्स हैं जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं और उसी पे हम अपने विजन को 4 पिलर्स पे हम इस्टेब्लिश किए हुए हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है समस्तीपुर का, वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से वो थोड़ा सफ़र कर गया है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा मेरा फोकस है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आज जब हम देश भर की बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि एक जॉन एफ कैनेडी ने बात कही थी कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो ये एक बहुत बड़ा बात है और इसीलिए हम लोग यही कहते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, वहाँ पे संस्थानें खुलेंगी। आप एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बेटी के लिए, अपनी बहुओं के लिए आप वहाँ पे तैयार करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक है। हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है। पीएचसी सेंटर्स में हम लोग लगातार काम करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज जो है वो समस्तीपुर में हम लोग प्रोवाइड कर सकें। प्राइवेट ही नहीं, गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ये सारे में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाते रहें। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है या फिर अदर मेडिकल कैंप्स होता है, कोई भी बीमारी के डिटेक्शन का कैंप्स होता है, तो ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग काम करते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा फोकस एजुकेशन पे भी है क्योंकि जैसा हमने कहा हम दलित परिवार से आते हैं और मेरे दादाजी उस समय में शिक्षा ग्रहण किए जब दलितों के लिए दलितों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता नहीं मिलती थी। तब वो पूरे समाज से लड़के अपनी शिक्षा ग्रहण किए और उनका परिवार, वहाँ से ही एक होता है ना कि आप अपने परिवार को भी वो आगे लेके बढ़े। तो हम वही सोचते हैं कि शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है समाज को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए और ख़ुद को भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और हम यही प्रयास करेंगे कि जो समस्तीपुर की आने वाली पीढ़ी है उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दे सके और उनको भी सामान्य अधिकार जो शिक्षा का है वो उनको मिलना चाहिए। और 4th है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए, क्योंकि
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके आत्मसम्मान के लिए, और उनकी जो भी लड़ाई वो लड़ रही हैं, ये नहीं कि हम राजनीति में ही लड़ाई लड़े, पर अगर घर पे भी उनके सम्मान की बात की जाए, अगर उनके जॉब्स की बात की जाए, वहाँ पे जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ उनकी उस एरिया में सम्मान की बात की जाए, तो ये सब में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो जैसे हम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, एक कह सकते कि बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है, काम करने की इच्छा बढ़ती है। तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि महिलाओं को हम लोग अवेयर करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जीविका दीदी के माध्यम से, आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से, और उनको प्रोत्साहित करें कि वो घर से बाहर निकल के भी काम करें। विभाग के अंतर्गत आने वाले हायाघाट विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना के 20 सड़क निर्माण परियोजना का उद्घाटन कर उन्होंने साबित किया कि सदियों से उपेक्षित इस इलाके का अब उद्धार होगा। अब यहाँ भी विकास की बयार बहेगी। समस्तीपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहाँ के आहार पाइन के जीर्णोद्धार के लिए भी वे प्रयासरत हैं, जिससे किसानों को खेती करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। भोला टॉकीज आरओबी का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो या समस्तीपुर लोकसभा के विभिन्न प्रखंडों में 12 मास बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से अनेक स्थानों पर पुल निर्माण के लिए दी गई मंजूरी हो, ये सभी कार्य सांसद के प्रयास का प्रतिफल है। हमने वहाँ के लोगों से बातें की और जानना चाहा कि सांसद के कार्यों के बारे में उनका क्या कहना है। हमारे साथ समस्तीपुर के कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी सांसद के बारे में इनकी क्या राय है। अभी साल भर से सांसद महोदया का लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला या हो चुका है। इस संदर्भ में समस्तीपुर की आम जनता अपने सांसद को हर एक दृष्टिकोण से, हर एक सामाजिक पहलू से एक कर्तव्य के साथ और एक जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उसके साथ देख रही है और उसके बीच में सहज से उपलब्ध है। आज बहुत से सामाजिक काम जैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो या अन्य क्षेत्र में जो भी समस्या से संबंधित हो, उनका एक विशेष जो टीम है, जो हमारे समस्तीपुर लोकसभा का समझे कि मुख्यालय है, वहाँ उनके प्रतिनिधि रहते हैं। उनके द्वारा सांसद को मिनटों में खबर होती है कि हमारे यहाँ अमुक ये समस्या, हमारे यहाँ अमुक इस तरह का प्रयास करने के लिए किसी ने आग्रह किया, तो इस तरह का उनका बॉन्डिंग यहाँ पे जो है बोल रहे हैं। अभी वो तो शुरू अभी नहीं हुआ लेकिन होने वाला है। जितना बोल रहे हैं उतना समय उनको देना पड़ेगा। नए चेहरे आए हैं तो और यंग है, काम करेंगे वो। फिलहाल तो अभी शुरुआत है उनका। परिस्थिति जो चल रही है वो हिसाब किताब से आगे चल करके वो टारगेट पर अच्छा महसूस होगा कार्य का। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। पिछले 5 सालों में जो हमारे पूर्व के जो भी एमपी रहे, एक प्रतिनिधि होने के नाते हमको लगता है कि जितना भी हम इसके लिए करें, और क्योंकि मेरी कर्म भूमि भी है, मेरे को मेरा पहचान समस्तीपुर ने दिया है, तो हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि छोटा से छोटा काम भी हो अगर तो उसको करें। यूजुअली ऐसा होता है कि जो आपका संसदीय क्षेत्र होता है उसमें एक आपका वर्क का जुरिस्डिक्शन होता है, क्योंकि आपके विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, मुखिया भी होते हैं, सबके काम का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है, सब लोग अपने दायरे में काम करते हैं। पर हम ये मानते हैं कि मेरे में एक ये चीज़ ख़ास है कि हम लोग अपने दायरे के बाहर भी जाके काम करते हैं। अगर कोई आता है और उसका काम नगर निगम से जुड़ा होता है तो वो भी होता है। अगर कोई आता है और उसका काम अगर मतलब विधायक के जुरिस्डिक्शन का, तो भी हम लोग वो फैसिलिटेट कराते हैं। हम लोग का एक कार्यालय यहाँ पे और हर संभव प्रयास होता है कि लोगों का जो भी कष्ट है उसको दूर कर दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग को क्या चाहिए, एक कांटेक्ट अगर उन लोग को मिल जाता है तो वो लोग चाहते हैं कि उसी कांटेक्ट के माध्यम से हो जाए। और क्योंकि हम लोग का ऑफिस 365 दिन 2400 घंटे खुला रहता है तो नेचुरली लोग बहुत ज़्यादा आते हैं।
तो हर छोटे से छोटा काम भी हम लोग कराने का कोशिश करते हैं। सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पे बहुत बड़े बड़े काम हुए। 2 ROBs था जो पेंडिंग था, आपके पहले इंटरव्यू में भी हमने कहा था, वो दोनों ROBs का शिलान्यास करा के उनका अब कार्य प्रारंभ करा रहे हैं। आज आपने देखा कि कई ऐसे रोड थे, पुल थे, जहाँ जमुआ का पुल का हम लोग कार्य प्रारंभ कराने गए थे, वहाँ पे वो 40 साल से लोग वो पुल को मांग रहे थे और आज जाके उसका कार्य प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कई काम हैं। इसके अलावा हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे मतलब जो प्राइमरी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स होता है, इसके अलावा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो अस्पताल हैं, जो प्रखंड में हैं, जो गांव के स्तर पर हैं, उसमें सही ढंग से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, जो चिकित्सक हैं वो सही तरीके से वहाँ पे हैं कि नहीं। एजुकेशन सिस्टम हम लोग का ऑलरेडी है, मिड डे मील का स्कीम है। तो ऐसा नहीं है, योजना बहुत है, पर योजना करेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए ग्राउंड पे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम मानते हैं कि ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हर सांसद की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो योजना है सरकार की बनाई हुई, बहुत अलग अलग तरह की योजना है, उस योजना के बारे में पढ़ें और उस योजना को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करें। वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बिजली विभाग का हो काम, स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। और हम यही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में रहें और उनके बात को सुने, क्योंकि संसद का सत्र जब चलता है तो हम लोग को दिल्ली ज़्यादा जाना पड़ता है, और क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, 6 विधानसभा है। अभी आप एक जगह से शुरू करेंगे तो दूसरे क्षेत्र के दूसरे एंड पे जाने में आपको 2 घंटा लग जाता है। तो ऐसे में हमेशा हम लोग अपना क्षेत्र डिवाइड करके रखते हैं कि आज यहाँ करना है, कल वहाँ करना है। ऐसे करके हम लोग घूमते रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि सब कष्ट दूर हो। और हमको अगर ये साधन है कि हम किसी की मदद कर सकें तो अपने दायरे के बाहर निकल के भी मदद करें। आज हमने देखा कि आपने लोगों को जो चल नहीं सकते थे उनको ट्राईसाइकिल दी। उनसे हमने बातचीत भी की। वे लोग काफ़ी खुश थे। कुछ तो ऐसे थे कि बचपन से इस समस्या को झेल रहे थे लेकिन आज तक उनकी सुनी नहीं गई थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड अगर कोई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गरिमा की ज़िंदगी नहीं जी सकते या उनको कोई संकोच में अपनी जीवन को जीना है। आजकल ऐसे कई माध्यम क्रिएट हो चुके हैं। हम लोग आधुनिक भारत में हैं और हम लोग पूरी तरीके से एक रेवोल्यूशनरी के अंडर है, जहाँ पे डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है। कई तरह के नई चीज़ें आ रही हैं, न्यू मेडिसिन आ रहे हैं, नए तरह के तरीके आ रहे हैं कि आप किसी भी समस्या से कोप कर सकें। तो ऐसे में फ़िज़िकली डिसेबल्ड होना किसी भी तरीके से ये प्रमाण नहीं है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बरकरार रहे और आप गरिमा की ज़िंदगी जिएं, आपका हिम्मत अटूट रहे, इसके लिए हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। और आज ट्राईसाइकिल वितरण हुआ, पर कभी अगर किसी को हियरिंग प्रॉब्लम हो, सुनने में दिक्कत हो, तो उनके लिए हियरिंग एड का भी हम लोग हियरिंग एड भी उनको देते हैं। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए जो स्टिक है वो भी है। अगर किसी को बोलने में दिक्कत है तो वो किट है। और ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग योजना के तहत जो दिव्यांगजन हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, उनको सशक्त करने के लिए उनको दिया जाता है। तो हम लोग ये ऐसे कार्य करते रहते हैं और हम यही मानते हैं कि समाज में हर किसी को लेकर के चलना है। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, फिज़िकल चैलेंजेस से ऊपर उठ करके, मेंटल चैलेंजेस से ऊपर उठ के, लिंग से ऊपर उठ के सबको आगे लेके चलना है। तो इसलिए आज ये एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया था। आने वाले समय में समस्तीपुर, थैंक यू। अगर आज हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमें अर्थव्यवस्था की भी बात करनी चाहिए। और देश आज विश्व की 5 लोकसभा में भी सांसद शांभवी चौधरी अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे लगातार उठाती रहती हैं। समस्तीपुर में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने की मांग भी उन्होंने संसद में उठाई। जरूरी मुद्दों पर संसद में वे बेबाकी और पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखती हैं। योजना के तहत एक इंक्यूबेशन सेंटर समस्तीपुर में बनाया जाए। इससे बिहार के युवाओं की 2 समस्या का समाधान होगा। सबसे पहले एक जो बिहार में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बिहार के युवा हैं वो पढ़ाई पूरी करके बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इसकी समस्या का भी समाधान होगा। साथ में बिहार के युवा जो पलायन करते हैं उसका भी समाधान होगा और बिहार के युवाओं को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के स्टार्टअप में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संसदीय क्षेत्र में आज आपने जाना बिहार के समस्तीपुर के बारे में, उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में, वहाँ की सांसद शांभवी चौधरी के कार्यों के बारे में। अगले अंक में फिर किसी
किसी संसदीय क्षेत्र और किसी सांसद से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। Namaskar viewers, hello and welcome to Sansad TV. I am Tina Jha, you're watching Perspective. Prime Minister Narendra Modi will be in the United Kingdom on the 23rd and 24th of July at the invitation of British Prime Minister Keir Starmer. This marks the Prime Minister's fourth visit to the country and one that comes at a pivotal moment in India-UK ties. According to the Ministry of External Affairs, the two leaders will engage in wide-ranging discussions covering the full spectrum of the bilateral relationship, from trade and investment to defense, technology, climate action, and people-to-people ties. Besides, they're also expected to exchange views on key regional and global developments. Prime Minister Modi is also likely to call on King Charles III during this visit. But at the heart of this high-level engagement is the expected signing of the India-UK Free Trade Agreement, negotiations for which were concluded earlier this year in May. So what does this much-anticipated FTA entail? What are the gains and give and take for both countries? And how will this visit shape the next chapter of our partnership with the UK? We'll discuss some of these aspects and more on the show today. Joining me are two distinguished guests. So let me begin by introducing them to you. I'm delighted to welcome on the program today former Ambassador Jitendra Tripathi. Ambassador, thank you for joining us on the program. Welcome to Sansad TV. It also gives me immense pleasure to welcome on this edition of Perspective Professor Gulshan Sachdeva. He is a Professor, Center for European Studies, School of International Studies, JNU. Professor, always a delight to welcome you on the program today. Ambassador, before we begin the program today and before we hear your views on the much anticipated free trade agreement, give us a broader context for a better understanding about the India-UK relations, and particularly how do you see that arc of our relationship having transformed, especially in the last 2 decades. So especially if you could give us an idea of some important or significant milestones that have brought us to where we are in terms of our bilateral ties with the UK. You see, when India got independence from UK, the relations are not very much cordial because of the experience, because of migration, because of the killing, because of the partition. Right. And after that, because of the Cold War, Britain was its very active member. So the relations more or less were sort of stale relations till 90s. Rather, I will say till the beginning of this century, because in the beginning of the century, the change started to materialize. When 2004 we signed a strategic partnership with UK. Then after that, a series of agreements were signed. Like in 2005, we signed economic and the establishment of Economic and Trade Council, Defense and Security Partnership in 2015. 2010 was Civil Nuclear Cooperation Declaration.
2015 was again nuclear collaboration treaty. So all this started, all these displays are regular, a steady development of relationship between the two countries. And now it is almost culminating in FTA. I am surprised that since we had colonial relationship for more than 200 years, many of Indians are living there, and at present about 1.5 million people are Indian origin. Why our trade, bilateral trade, could not take off? I mean, even now, our bilateral trade is just $14 billion between the two countries. Right, and how will the FTA change that is something that we will discuss in due course of the program. But since we are trying to understand how the relationship with the UK has evolved, let me also get in Professor Sachdeva's perspective. Professor, I was going through an article this morning. You've explained the different phases of our relationship with the United Kingdom, but especially since Brexit, what we see is New Delhi and London have been trying their best to strengthen these ties further. 2021 was when both sides upgraded relations to a comprehensive strategic partnership. Then you've mentioned the Roadmap 2030. You also highlight the 2023 event wherein both countries established the 2+2 foreign and defense dialogue. And then last year when there was this technology security initiative. The question that I want to ask you is, through these mechanisms, how have in the last few years we been able to achieve significant outcomes? And this can be both in terms of economic as well as strategic outcomes, which have brought us to today, where we are now on the verge of announcing the FTA. Well, thank you, Tina. I mean, I think this is what exactly has happened between India and the UK, particularly, as you mentioned, since Brexit, because both the countries are trying to strengthen their relations during this phase, because even the FTA, we were negotiating with UK when they were part of the European Union since 2007, but then we started again from 2022. It means within 3 years we have been able to conclude this agreement. And Britain was also looking, after coming out from the European Union, they were also looking very new partners. And when they thought during this period, India could be very, very important partner for them. Because one is that we have very strong, relationship historical. There is also legacy. There are also legacy issues, positive and negative. But, there is a solid, base for our relationship. We had, as Ambassador mentioned, we signed the strategic partnership in 2004, and then in 2010 it was upgraded further. But in 2021, when Prime Minister Boris Johnson came here, this became comprehensive partnership. And then we had this Roadmap 2030, which you mentioned. And then since then, again, many series of other things. I mean, particularly the security, technology security initiative. So many of those areas which are really critical for both the countries, and particularly for India's modernization, looking for artificial intelligence, quantum, semiconductors, health, technologies, and many other issues. So all those issues are there. But of course, I mean, as during the visit, you would see the highlight of this visit is going to be FTA. And this FTA, in fact, if you look at if you look at the Government of India figure, this is something around 23 billion trade we have only in goods. But if you look at goods and services is a very important part of India-UK relationship. This particular partnership and trade, we have already about close to 60 billion if you put all these things together. And I think there are the studies which have been done in both the countries, and policymakers from both the countries are quite confident that now with this agreement, we will have something around maybe double of this trade in the next 5 years or so. Why? Because like 99% of Indian goods are going to be now tariff-free. They can enter, and particularly many of those sectors which have certain comparative advantage now, which you have textiles, you have sports goods, you have gems and jewelry, you have many other items which perhaps will be able to now easily compete with other products. Similar thing would also happen from the British goods as well.
You look at, in the food sector, the major products, what they have is like, Scotch whiskey here, where you have now 150% tariffs. Right. It's going to be 75%, and in few years, it could become even 40% or so. So they are also looking for new markets. It's expanding market. Similar thing is also happening in the services, because both these economies are really very strong in services, particularly IT and ITS related services. So there are a lot of opportunities. I think the businesses are looking through this market, this particular trade agreement. And in the last few years, since, after Brexit, UK was also looking for new trade agreements, which they have done with Australia, with New Zealand. They have also signed agreement with the CPTPP. The same thing is also happening in India, because of many years we were very cautious. Between 2012-13 till 2021, we did not really sign any major trade agreement. Right. Now we have signed with Australia, with UAE, also with EFTA countries. And this is going to be really a major game changer, I must say, because this is one major market where there are competition, and some of the sectors will really have to face competition. But for June, we have got a level at which we can be comfortable with each other. Right. And when we are comfortable with each other, then comes the next step, that is political or diplomatic proximity or friendship. So, with this, what happens, we will see, I can visualize, we can see eye to eye on many matters: climate, anti-terrorism, for us especially the Sikh separatism. They now have to synergize in order to have more tangible and better results. So I think future is bright. From here we take off another level, and the result will be seen very soon. I think in 2-3 years, maybe we'll be able to see what changes have been brought in. Absolutely. Lots of areas in which work is required. But Professor, since you mentioned some of the areas which are set to stand as immediate beneficiaries, you spoke about the automotive tariffs, perhaps, which will be cut from over 100% to 10% under a tariff rate quota system. And this is where you've indicated a concern for us in terms of a challenge to the Indian automobile sector. If you could explain to us how big a concern that is, and how are we ensuring that perhaps that kind of a tariff cut does not impact our own indigenous drive, our own Make in India drive, which has picked up in recent years, but due to these kind of concessions that we make in negotiating trade deals, that should not be seen as a setback. No, I mean, I'll just come back to this point in a minute, but the point you asked earlier, countries sign trade agreements with any other country. There is also strategic convergence of many issues. It's not just only purely economic matter. In the last few years, what we have seen, particularly if you look at the British foreign policy, they, once they announced their tilt towards the Indo-Pacific. And, what we have found after that, with the rise of assertive China, there is a convergence of many of those foreign policies to issues. And in fact, all kind of trade agreements, particularly now what is happening in the last, since President Trump has come to power, these are all strategic convergence which is taking place rather than actually just purely numbers. Now, the point you have asked about the automobile sector, no, this is an interesting, I would say, agreement to watch. That's what I'm saying, this is going to be a really game changer as far as trade agreements are concerned. Because it's not just only about few goods which we are talking about. Tariffs would be down. Actually, that will benefit both the country. Now, both the countries are also doing quite extensive trade in services. And British services are also pretty competitive. So, this could also, depending on what kind of final text comes out, we'll see which are the services, which are the sectors we have opened up, where ours, whether it's which particular sectors are going to be really opened up for us as well as for them. One has to see the fine print of that particular trade agreement. But in the automobile sector, this is interesting because in one way, we are trying to strengthen our Make in India program.
So now, and many of the other investors, particularly from Japan, from Korea, they have invested in India for the last many decades. They are also producing in India. So now some of the, if only with 10% tariff, it's, many of the companies which are actually producing, even Chinese companies and others, they might actually start sending their products to India. 10% is really very huge tariff. Yes. And that's why, in fact, there is already a safeguard. There is already a quota, so it's not going to be open. So once that quota is filled, after that, of course, it will be stopped. So this is interesting in a sense, opening up for the British, car makers, whosoever is making, whether British companies or other companies, those who have invested in UK. But the similar kind of thing, is also, since we are also negotiating, with the United States, we are also negotiating with the European Union. So once they see that we have opened this market for UK, so they also perhaps would like to see similar kind of openings from there as well. Right. And many other things also, about the development sector and others which have been part of, which are going to be part of this agreement. So it means that also shows that Indian policymakers and Indian industry, they feel perhaps more confident now that they can compete. So they also see a lot of opportunity that we might open up, in the overall picture, if we might open up one sectors, we might see benefits in other sectors as well. So I think the overall final text one has to study very carefully, but I think this is going to be really, I think, a new kind of agreement compared to many other agreements which we have done so far. Ambassador, taking on from what the professor highlighted about how concessions in tariffs may also prompt other countries with whom India is currently negotiating a trade deal. It's in advanced stages. For example, the United States, also the European Union. What happens if they also start asking for similar negotiations? How will we ensure that we are able to get a fair deal which does not hamper our own Make in India initiatives? How do we diplomatically then, negotiate with different countries in different manners? Well, you see, US has already started asking for concession in terms of threats about raising the tariff rates, etc. But I think when it comes to the table, we will be able to convince, we should be able to convince them that in case they do not cede to our request, in case they insist on having less and less tariff for their goods to enter in the market, then they should also be prepared to act vice versa. Otherwise, when it is only take and take relationship, it is not a give and take relationship, then things won't survive. Yes, European Union things will be different, I suppose. With European Union, it will be much easier for us to negotiate a trade deal, while with USA, with Trump on its helm, it will be difficult. But not only the trade deal. What we should do is, trade is one part of the diplomatic relation. Other parts are defense relations. Then technical know-how, climate change, other areas, anti-terrorism, security, SDG. There are so many areas where they might require to cede, or they might require to accept our view. So I think that's an interesting view, and let me also bring in Professor for a quick response to this. How do you see, Professor, this agreement also feeding into broader cooperation in areas that Ambassador just highlighted, say areas like digital trade, critical technologies, defense, also to include climate finance that the Ambassador spoke about? Well, I mean, we, as you mentioned, we have a comprehensive partnership, and the large number of very huge institutional network is already there.
different kind of working groups, different kind of dialogues we are already having, and all these areas have already been covered in different ways. Even UK is also a very important development partner. We used to get quite significant development assistance from UK till very recently, but now, of course, we may not need perhaps that development assistance from UK, and they have identified other countries where they are channelizing their ODA, but we have been working together with them in the Triangular Development Cooperation projects. It means both India and the UK, they are actually implementing certain development projects in third countries. We have done it in Africa. We are also doing perhaps in the Indo-Pacific now, which has been in principle, this has been agreed. And in many other areas, in so many critical areas, you look at in the health sector, you look into the education sector, look into renewables. I think there are plenty of things which are already happening. So as I was mentioning that, once you have trade agreement, this gives you a new momentum to this relationship. That's what is very important. And that can also, there is also a lot of ambition to also work with the British companies, particularly in the defense sector, because in some of the sectors they are pretty good. And a lot of declaration has been made in the last couple of, years. But still, I think the progress is less. Right. So once there is a more confidence, once the companies have more linkages with each other, and I think we can also get them to our own defense modernization, our own defense industry here, where we can also start exporting. So there we need technology transfer, where we need kind of joint production, not just buying certain defense products from UK or others. So I think those are the areas in which we are moving, and already joint exercising and all the things are already happening in those areas. So there is a broader convergence, and technology security initiative was very clearly it's not just only about trade. There also has to be certain strategic convergence and trust, and that's why it has to be, this is being coordinated by the national security advisors from both the countries. It's not just only trade matters. And so we are looking into all these areas, and I think once we have this trade agreement, this gives you confidence, this gives you many companies, they'll start looking back, and already there's a lot of investment which has taken place from UK. And it's not one way, more than 20 billion investment. Indian companies, about 1,000 companies are already there in the UK, those who are working in UK. And so it means there is and in fact, if you look at the numbers of all the financial and technical collaborations of Indian companies, a very significant proportion of those technical and financial collaborations are with British companies. And so earlier, in fact, Britain used to be kind of gateway for us to enter into the European market. After Brexit, things have changed. Our companies have adjusted well to all those changes, but still they are very much part of Europe. They still have an agreement with Europe. So all the linkages with the broader markets are still there. And but of course, one has to, as far as the trade matters, tariff, non-tariff things are concerned, one has to be careful. That's why still, I think even till the last minute negotiations are on. But even in the some sectors, others of course may ask, if you are giving certain concessions to UK, European Union will ask, others will ask. But once you are actually given it, it means you are confident that your sector is able to compete, and already there are certain safeguards built into this. The same kind of thing would also happen perhaps with others as well. Once we did, in fact, like even in the like in the wine and other sectors, once we had an agreement with Australia, some kind of arrangement was made that only the expensive wines can enter into Indian market. Otherwise, the lower products which our companies are producing, they should not be compete with others. So I think there are possible, that's what all the negotiations are. But overall, it shows that we have actually these negotiations with highly developed, highly industrialized country, when we are going to have trade agreements, these are going to be of a different kind, and there are going to be challenges. As we have seen earlier with the India-ASEAN, once we opened up, in certain areas, we were able to benefit. In certain areas, we felt even they opened up their markets, our companies were not really able to take advantage. That's why we are renegotiating some of those things. This is part of the game when you do the trade. Certainly, and especially when we see that these trade negotiations take years, in this case, perhaps more than 3 years. We are confident that the negotiators have agreed or given out concessions which make it a fair deal, especially in context of India and Indian markets.
Ambassador, while we understand that the FTA will be perhaps the centerpiece of this visit of the Prime Minister, as Professor said, it will also add or accelerate momentum in how we take our relationship to the next level. So in that context, if I may ask you, what do you think will be perhaps the next big agenda item for India and the UK after the FTA to take this partnership to the next level? Well, I think it will be defense and security. Mm-hmm. It will be anti-terrorism. It will be health, because India and UK had been collaborating on health, AstraZeneca and during the COVID time. Now India has emerged as the world's pharmacy. So maybe some more investment from UK to India, into India, in pharmaceutical sectors. There may be then there may be technology transfer, innovation, critical technologies. These are the things that probably will get momentum once the FTA is signed. Probably within FTA or even outside the gambit of FTA, it will be easier for us to discuss and negotiate with our UK interlocutor. Absolutely. One last word from Professor as well, taking this question further in terms of how this visit will add a new chapter to the India-UK relations. But also, do you believe that the FTA, which is very, very significant for both countries, it's been hailed by Prime Ministers of both countries, do you see it also in a way helping India and the UK reposition their ties in a much larger global context, especially enabling joint ventures in countries that belong to the Commonwealth, in countries that fall in the Indo-Pacific region, and we see a renewed interest from UK, particularly now in this region. So do you see this adding momentum not just in terms of our bilateral ties, but also in our collaboration in other countries? Sure. In fact, two areas, as Ambassador mentioned, this will give momentum to our defense and security ties. And all other things which are actually listed in the last year's agreement, the Technology Security Initiative. Whether you look at artificial intelligence, quantum, all the materials, specific materials, rare materials, all the thing because there is a lot of research which happens in the British institutions and British universities. And our institutions have reasonably good linkages. As the Ambassador said, in the health sector, we have seen those linkages can really be very, very useful. The same can also happen in the artificial intelligence, because, we must not forget that after United States and China, the third biggest, perhaps the country which we have artificial intelligence research going on is also the UK. So our companies and our research institutes would be benefit if we get into some of those collaborations in some of those areas. And of course, in third countries, those areas are already, many of these things are already part of our roadmap, 2030, which has already been agreed between India and the UK. So we are anyway working together, particularly, as I mentioned, in the development sector. In some of the countries in Africa, and Indo-Pacific has been added again. We can work in the connectivity sector, we can work in other areas. So in the last 10-15 years, there is this, I think the relationship has definitely become much more stronger. There is a confidence, and this particular visit of the Prime Minister and also the signing of FTA would obviously be much more useful for our relationship, and this is going to really strengthen our relationship and take it further. Absolutely, and especially looking at how our relations with the United Kingdom have evolved, as we've discussed with both our guests on the program, it's clear that both sides are not just keen, but they're making significant efforts to build a relationship that's not just forward-looking, but mutually beneficial. FTA is a clear example of that. But this visit of the Prime Minister to the country will definitely accelerate the momentum in the efforts that have been made by both sides in recent years. Time allows me to take up only that much on the program today. Thank you once again, Professor Sachdeva, Ambassador Tripathi, for joining us on the program with your thoughts and perspective. And to you viewers, thank you very much for your time as well.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, आप बैठिए, आप बैठ, काइंडली बी सीटेड, काइंडली बी सीटेड। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल प्रवेश करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिस्ट्री ऑफ गोवा। आज हम गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में हम बोलने चाह रहे हैं। आप अनुसूचित जाति के बारे में, जब बिल के बारे में, जब बिल की अपॉर्चुनिटी आई है, आप अनुसूचित जाति के भी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। काइंडली माय रिक्वेस्ट इज काइंडली गो बैक एंड बी सीटेड। Let there be a discussion. Let there be on the discussion of the STs of Goa. I am requesting you. Last 2 days we have lost precious time. Kindly go back and be seated. We lost very precious time. Today is a very important bill. Today is a very important bill, sir. You all know. It is with respect to the STs of Goa. अनुसूचित जनजाति का बिल है। काइंडली अलाउ द बिल टू बी डिस्कस्ड, काइंडली अलाउ द नो, ये ऐसा नहीं चलेगा। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन नॉट ब्रिंग द प्लेकार्ड्स, you cannot bring that placards like this. Kindly be seated. I am requesting you, sir, please be seated. I am again requesting you, this is a very important bill. It's a very very important bill. Please be seated. अभी ये लगता है, in spite of my repeated request, you don't want any discussion on अनुसूचित जाति. You don't want any discussion on the STs of Goa. It's very unfortunate. It is very very unfortunate that you don't want any discussion on STs of Goa. की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 24 जुलाई की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 24 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है।
देश प्रेम की अग्नि जल रही है जन जन के सीने में। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से बदला वातावरण जम्मू कश्मीर का, बदला है नॉर्थ ईस्ट। नभ में लहराया तिरंगा, नस नस में बहती शौर्य गंगा। सैन्य बल से है शत्रु भ्रांत, देश का मान INS विक्रांत। रक्षा बजट वृद्धि से देश हुआ शक्तिशाली, आतंक चकनाचूर, भारत के पराक्रम के साक्षी उरी, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर। भारत की बेटियां बन रही हैं देश का बल। अग्रणीय तकनीकी नवीनीकरण से सुरक्षित देश का आज तथा कल। मना रहा है भारत विकास का अमृतकाल। राष्ट्र का सुरक्षा तंत्र हो रहा विशाल। विकसित भारत का अमृतकाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मिशन इंद्रधनुष। विद्यालयों में निशुल्क आहार। भारत एनीमिया मुक्त हो रहा है। 3 करोड़ से अधिक गर्भवती लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित। मातृ सुरक्षा योजनाएं सुनियोजित। सरल स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं कह रही, जन जन को आयुष्मान भव। विश्व स्तरीय उपचार व सस्ती औषधि देश भर में। विकास का अमृत काल मना रहा भारत। स्वस्थ होंगे सब, तभी होगा स्वस्थ भारत। श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प, स्वस्थ निरोगी भारत। विकसित भारत का अमृत काल। बाल गंगाधर तिलक एक महान राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और जन नेता थे, जिन्होंने अपने मत और विचारों से अनेक पीढ़ियों को प्रभावित किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा के नारे ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित किया। इस नारे को देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। वह हिंदू धर्म ग्रंथों के अच्छे ज्ञाता थे। राजनीति और तत्व मीमांसा संबंधी पश्चिमी विचारों से भी काफी प्रभावित थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि भारत के लोगों को स्वयं को ऊंचा उठाना है तो उन्हें आधुनिक शिक्षा स्वयं भारतीयों द्वारा दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने 3 मित्रों के साथ मिलकर 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और बाद में 1884 और 1885 में पुणे में ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने 1881 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका मराठा और मराठी साप्ताहिक पत्रिका केसरी नामक 2 पत्रिकाएं शुरू कर जनता को शिक्षित करने का दायित्व उठाया। 1900 से 1908 तक का समय भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जन्म का समय था। इस दौरान विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन करते हुए जनता में एकता के बंधन को मजबूत किया और लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्ष 1907 में केसरी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखे जाने के कारण तिलक को 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष तक बर्मा के मांडले जेल में कैद कर दिया गया। इस दौरान बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा, जिसमें भगवत गीता का संदेश और उसकी व्याख्या है। 1914 में मांडले से रिहा होने के बाद वे होम रूल आंदोलन से जुड़ गए। 1918 में उन्होंने होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की।
1919 में वह भारत वापस आ गए और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जनता में राजनीतिक चेतना जगाने और उन्हें एकजुट करने के उद्देश्य से उन्होंने शिवाजी जयंती और गणेश पूजा जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की। लगातार सामाजिक और राजनीतिक व्यस्तता की वजह से जुलाई 1920 में वह अस्वस्थ हो गए। उनका इलाज मुंबई में चल रहा था, तो उनकी अस्वस्थता बढ़ती गई और 1 अगस्त 1920 की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। Namaskar. Hello and welcome to the special broadcast on Sunset TV. I am Namrata Singh. The nation is what the citizens are. The citizen is the unit of the nation. Rabindranath Tagore's words remind us that a strong nation is built by strong citizens. While we often talk about our rights as citizens, it's equally important to remember our duties, the actions that bind us to the values of our Constitution and the well-being of our society. In this show, we take a closer look at the fundamental duties, when and why they were added to our Constitution, what they mean for each of us, and how they help build a more united and responsible India. Citizens of India, we proudly enjoy a range of rights granted by our Constitution. But with these rights come responsibilities, our fundamental duties that guide us in shaping a just and united nation. These duties are not mere words in a book. They are a moral compass, reminding every Indian of the role we must play in building a better society. From respecting our national symbols to protecting public property, from promoting harmony to preserving our rich heritage, these duties reflect the values that lie at the heart of our democracy. When the Constitution of India was adopted in 1950, it guaranteed fundamental rights, but it did not mention fundamental duties. Back then, the focus was on ensuring justice, liberty, and equality in a newly independent nation. But over time, it became clear citizens too had a role to play. To balance rights with responsibilities, fundamental duties were later added, reminding every citizen of their duty to uphold the nation's ideals, contribute to society, and stand by fellow citizens. In 1976, a landmark change was made to the Indian Constitution. Fundamental duties were introduced for the very first time through the 42nd Constitutional Amendment. To guide this process, the then Government of India appointed Sardar Swarn Singh Committee, tasked with recommending how these duties could be integrated into the Constitution. The committee observed that in addition to the enjoyment of rights, the citizens should also perform certain duties. It recommended the addition of a new chapter in the Constitution, listing 8 fundamental duties for Indian citizens. The central government accepted this proposal and went a step further. Through the 42nd Amendment, a new section Part 4A was added to the Constitution.
This section consists of a single article, Article 51A, which lays down 10 fundamental duties, not just 8 as initially recommended. While these duties were partially inspired by the constitution of the former USSR, their spirit is deeply rooted in India's culture, heritage, and timeless values. The concept of dharma or duty has always held a place of deep significance. In ancient India, performing one's duty was seen as a core virtue, a reflection of character. Our spiritual texts, like the Bhagavad Gita and the Ramayana, have long taught us that duty comes before entitlement. Rights and duties are two sides of the same coin. For every right we claim, there is a duty we must fulfill. When duties are performed sincerely, rights follow naturally. Mahatma Gandhi echoed this timeless idea when he said, "The true source of rights is duty. If we all discharge our duties, rights will not be far to seek." Highlighting the importance of fundamental duties, Vice President Jagdeep Dhankar has often said that rights and duties together shape responsible citizenship. It's time we honor our duties, protect our sovereignty, uphold unity, and put the nation first. Time for us to fully commit to our fundamental duties, protecting national sovereignty, fostering unity, prioritizing national interests, and safeguarding our environment. We must always put our nation first. We need to be on guard as never before. These commitments are crucial for achieving our vision of Viksit Bharat at 2047, a nation that exemplifies progress and inclusion. Originally, the Constitution listed 10 fundamental duties, but in 2002, the 86th Amendment added an 11th, making it the duty of parents and guardians to ensure education for children aged 6 to 14. These responsibilities serve as a moral code for every Indian citizen. They are as follows. It shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, and who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, what between the age of 6 and 14 years. Even decades later, awareness of fundamental duties remained low. To change this, the Atal Bihari Vajpayee government set up the Justice J.S. Verma Committee in 1998 with an aim to suggest practical ways to instill these duties in citizens, especially through education and early civic awareness. The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 is especially significant for its dual focus. It introduced Article 21A, granting children aged 6 to 14 the fundamental right
to free and compulsory education. At the same time, it added Article 51A(k), making it the duty of every parent or guardian to ensure that this education is provided. The education-related fundamental duty was introduced to complement the right to education, placing emphasis on parental responsibility. While the RTE Act made education a legal right for children, this fundamental duty created a moral and legal obligation for parents and guardians to ensure their children receive it. Recognizing that education is the foundation of social and economic progress, this duty encourages citizens to actively contribute to nation building by empowering the next generation. By making it a duty to educate children, the law also supports enrollment, retention, and access to quality. There is no specific way to enforce these duties, and there are few legal penalties for violating them. However, these duties are important for several reasons. The fundamental duties encompass both moral and civic obligations. They include responsibilities such as cherishing the noble ideals of the freedom struggle, under Article 51A(b), a moral duty and respecting the Constitution, national flag and national anthem, under Article 51A(a), a civic duty. The fundamental duties are derived from values deeply embedded in Indian tradition, mythology, religions and practices. For example, the duty to renounce practices derogatory to the dignity of women has been rooted in the Indian tradition for ages. Unlike certain fundamental rights that extend to all individuals, including foreigners, the fundamental duties are specially applicable to Indian citizens. Similar to the directive principles of state policy, the fundamental duties are not justiciable. Though fundamental duties are not legally enforceable by rights, they play a crucial role in shaping constitutional values. In 1992, the Supreme Court ruled that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to a fundamental duty, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14, equality before law, or Article 19, 6 freedoms, and thus save such law from unconstitutionality. The Supreme Court's Ranganath Mishra judgment 2003 held that fundamental duties should not only be enforced by legal sanctions, but also by social sanctions. In AIMS Students Union versus AIMS 2001, the court emphasized that fundamental duties are as important as fundamental rights. Though fundamental duties are not enforceable like fundamental rights, they cannot be overlooked as duties in Part 4A. They are prefixed by the same word fundamental, which are prefixed by the founding fathers of the Constitution to write in Part 3. Few countries in the world have such an elaborate list of fundamental duties in their constitution, but many nations prescribe defense of the country as a national duty. For example, Article 109 of the Norwegian Constitution stipulates that, as a general rule, every citizen of the state is equally bound to serve in the defense of the country for a specific period, irrespective of birth or fortune. Under Article 81 of the Constitution of Denmark, every male person able to bear arms shall be liable with his person to contribute to the defense of his country. In fact, the foundations of the French Republic rested not only on the rights of man, but also duties. Though not legally enforceable, fundamental duties are vital in a democracy. They remind citizens of their responsibilities alongside their rights.
The term fundamental reflects their deep significance as keys to social transformation and active citizenship. Upholding the Constitution isn't just the government's role, it's every citizen's duty. In a vibrant democracy, rights empower us, but duties define us. Nation building begins with each of us. Well, that is all I have for you in this special broadcast. Stay tuned and thank you for watching Sunset TV. कार्यक्रम आपका संसदीय क्षेत्र की सीरीज में हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के सूरत से सांसद मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल जी से। साथ ही विस्तार से बात करेंगे सूरत संसदीय क्षेत्र की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश दलाल 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत से निर्विरोध चुने गए थे और करीब 4 दशक से जनसेवा से जुड़े रहकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुने गए सांसद मुकेश दलाल जी से जानेंगे कि डायमंड सिटी के नाम से मशहूर उनके संसदीय क्षेत्र सूरत के विकास को लेकर अब तक क्या कुछ किया गया है और आगे की क्या योजनाएं हैं। सूरत गुजरात का प्रसिद्ध शहर है। ये जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। सूरत दक्षिण पूर्वी गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित है। ये ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत को कारोबारियों की नगरी कहा जाता है। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत पिछले कुछ सालों में हीरे और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत और दुनिया के अन्य शहरों की तुलना में बहुत आगे बढ़ गया है। सूरत को करीब 400 वर्ष पहले से ही कारोबारियों की नगरी माना जाता रहा है। जरी के कारोबार से शुरुआत कर सूरत ने टेक्सटाइल कारोबार में भी अपना नाम दुनिया भर में रोशन किया है। टेक्सटाइल और डायमंड दोनों इंडस्ट्रीज में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिसमें सूरत के बाहर से आकर बसे लोगों की संख्या ज्यादा है। सूरत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में चौथे नंबर पर है और उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ लगातार प्रयास जारी हैं। आप क्या कहेंगे, टेक्सटाइल का हब है और यहाँ इतना बड़ा एग्जीबिशन लगाया गया है, कितना प्रमोट करता है इस इंडस्ट्री को इस तरह के एग्जीबिशन? सूरत टेक्सटाइल का हब है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज पासिंग थ्रू मॉडर्नाइजेशन फेज। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी जो व्यापारिक संस्था है वो हर साल कई सालों से 10-15 सालों से टेक्सटाइल का एग्जीबिशन करते हैं, ताकि देश विदेश के जितने भी मशीनरीज वाले हैं, जो लेटेस्ट चेंजेस हुए, लेटेस्ट इनोवेशन हुए हैं, वो अपनी मशीनरीज का एग्जीबिशन करने के लिए सूरत में आते हैं। और जो सूरत के व्यूअर्स लोग हैं, टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ताकि इनको पता चले कब कौन सी मशीनरी आई है और कौन सी मशीनरी खरीदनी है, क्या चेंजेस है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, वो इनकी समझ में आता है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लिए 10-15 साल से ये टेक्सटाइल का एग्जीबिशन कर रही है। कम कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसी इंडस्ट्री में मिलती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब नौसारी के पास एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब बन रहा है, दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये 2-3 साल में बन जाएगा। और आज सूरत से पुराने सिटी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट होकर सूरत से आउटर बॉर्डर पे आ गई है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी है, लेटेस्ट मशीनरी लगानी है, तो वहाँ पे जगह अवेलेबल है। तो हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं और तो वो सूरत के बाहर मशीनरी लगा रहे हैं और हर प्रकार की फैब्रिक क्या बन रही है। सूरत में डेली 5 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है और हर एक कपड़े की कोई ना कोई वैरायटी होती है। यहाँ प्योर नेचुरल फाइबर से भी कपड़ा बनता है, विस्कोस में से बनता है, नायलॉन में से बनता है। और ऐसे ही देखने जाओ तो सूरत गुजरात MMF का हब है, मैन मेड फाइबर का। इसमें मैन मेड फाइबर में बहुत सारी क्वालिटी बनती है। जो आप सामने मशीन देख रहे हो उसमें एक ही मशीन पे 3 साड़ी बनती है।
और तीन साड़ी में अलग अलग डिजाइन बनती है एट अ टाइम एक ही साथ में। ये आज की लेटेस्ट मशीनरी है। एक नई टेक्नोलॉजी सूरत के अंदर आई और जो भी यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, बीड्स देख देख के सब लोग ले रहे हैं माल। टेक्सटाइल मार्केट में इस समय 70% बीड्स का काम चल रहा है, जो कि जी और हमारे सांसद जी यहाँ पे आए, उनको इसकी भी बड़ी खुशी हुई देखे, तो बहुत बहुत थैंक्स। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको लेकर के भी पिछले 10 सालों में बहुत काम हुआ है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो धरातल पे काम है वो आपके माध्यम से पूरे देश में विदेश में फैलेगा, तो ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करने की क्या प्लानिंग रहती है? नरेंद्र भाई मोदी साहब ने एक स्लोगन दिया था, फ्रॉम फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक्स। ये मोदी साहब का कंसेप्ट था। अब सूरत में पहले ड्रेसेस और साड़ी मटेरियल का मार्केट था, अब सूरत शहर में हर प्रकार का फैब्रिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि जीन्स के पैंट सूरत में बन रहे हैं, शूटिंग सूरत में बन रहे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रध्वज पूरे देश में 50-60% से ज़्यादा सूरत में छपते हैं और मिलिट्री के यूनिफॉर्म भी यहाँ छपने शुरू हो गए हैं। तो सूरत इज प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स वॉट एवर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन और इंटरनेशनल लेवल। सूरत इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट। देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुका सूरत शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्गों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचना बहुत ही सुलभ है। सूरत के आसपास के इलाकों में खेती की जाती है। कपास और राम के अलग अलग कई प्रकार करोड़ों मीटर कपड़ा सूरत में ही छपटा है। 2001 की जनगणना के अनुसार नगर की जनसंख्या लगभग 24,33,787 है, जबकि सूरत जिले की कुल जनसंख्या लगभग 49,96,391 है। सूरत गुजरात का एक जिला और लोकसभा क्षेत्र है। ये जिला गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये उत्तर में भरूच और नर्मदा, पश्चिम में खम्बात की खाड़ी और नवसारी, दक्षिण में नवसारी और पूर्व में तापी जिले से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 4,549 वर्ग किलोमीटर है। सूरत की गिनती ऐतिहासिक तौर पर पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक शहरों में से होती रही है। सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है। सूरत में दुनिया के 3/4 हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। सूरत शहर को डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जितनी गवर्नमेंट हम लोगों को बेनिफिट देती है तो वो फ़र्क पड़ता है हमारे काम में भी, हमारे एक मोटिवेशन में भी, एक कॉन्फिडेंस बनता है कि जो पहले की फीमेल्स थी तो वो काम इतना नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज एक गवर्नमेंट के थ्रू जिस हिसाब से हमें मोटिवेशन मिला है और हम ग्राउंड से लेकर अब तक आ चुके हैं। मुकेश सर ने हमेशा सूरत के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, यानी सूरत डेवलपमेंट में जो बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन सर ने किया। मोदी जी ने जब आयुष मंत्रालय का गठन किया था तब प्राकृतिक उपचार पे ज़्यादा गौर किया था। मैं नेचर जोन की ऑनर हूँ, एमडी रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। पत्तियों से मेडिसिन बनाने का जो सफ़र है वो सबसे पहले अगर किसी ने अप्रिशिएट किया था तो सर ने अप्रिशिएट किया था। आई गेस सबसे ज़्यादा तरक्की हमारे यहाँ हो रही है, क्योंकि अभी मैं ऑस्ट्रेलिया भी गई थी तो वहाँ और यहाँ का कंपैरिजन करो तो अपनी टेक्नोलॉजी वाइज जो तरक्की है वो कहीं नहीं। सूरत में पहली बार 1951 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के कन्हैयालाल देसाई ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1977 तक यहां से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सांसद बने रहे। सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें ओलपाड, सूरत पूर्व, सूरत उत्तर, वराछा रोड, करंज, कतारगम, सूरत पश्चिम शामिल है। सूरत लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पुरुष मतदाता 9,54,646 हैं, जबकि महिला मतदाता 8,31,563 हैं। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो इनकी संख्या 78 है। कुल मिलाकर यहाँ के मतदाताओं की कुल संख्या 17,86,287 है। अब बात करते हैं सूरत से सांसद
मुकेश दलाल जी की। मुकेश दलाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से निर्विरोध सांसद चुने गए थे। सूरत लोकसभा सीट पर 20वें व्यक्ति बन गए हैं। ऐसा गुजरात की राजनीति में पहली बार हुआ है कि जब कोई सांसद निर्विरोध चुना गया। सांसद मुकेश दलाल करीब 4 दशक से ज्यादा समय से जनसेवा से जुड़े हैं। वे 1981 से भारतीय जनता पार्टी से औपचारिक तौर पर जुड़ गए। सांसद मुकेश दलाल भाजपा युवा मोर्चा के साथ साथ पार्टी के विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। आप भाजपा के शहर कार्यकारी सदस्य, सूरत नगर निगम में 3 बार पार्षद, 4 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक और चेयरमैन भी रह चुके हैं। सांसद मुकेश दलाल सूरत शहर भाजपा के महासचिव और SDCA समिति के सदस्य हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 8 मई 1961 को सूरत में जन्मे मुकेश दलाल बनिया समुदाय से आते हैं। मुकेश दलाल जी की पढ़ाई में बचपन से ही बेहद रुचि रही है। उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स, LLB और MBA की पढ़ाई की है। सांसद जी जो हैं यहाँ के सूरत के लोकसभा सांसद हैं हमारे मुकेश। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में भी जिम सब बंद था, लेकिन ये इनके टेरेस पे वर्कआउट करके सोशल मीडिया पे रखते थे, लोगों को अवेयरनेस देते थे कि नहीं ये जिम अपने को मतलब वर्कआउट करना है, फिटनेस बढ़ानी है। मैं सुबह 4:05 को उठता था और सुबह 5 बजे मैं स्ट्रीट में मोहल्ले में होता था, जिम के सामने रोड पे। 15 मिनट वहाँ वॉकिंग करने के बाद जिम मैं ही खोलता था रोज। एक सिस्टम थी, 5, 15, 20 को मेरा जिम खुल जाता था, ताला मैं ही खोलता था और बाद में सब आते थे। जिम में सबसे पहले भगवान की स्तुति जो मेरे पास मोबाइल में रहती है, तो एक मोबाइल की भगवान की स्तुति रहेगी, बाद में गाने बजेंगे। तो हर दिन का अलग गाने होते थे, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को गाने अलग, और मेरे ही गाने जिम में बजते थे। मैं जिसे बताया कि रनिंग का 12 की स्पीड में दौड़ना स्टार्ट करता था, 12 से लेकर 16 तक मैं दौड़ता था। और ये लोग बोलते थे कि आपके सामने यंगस्टर भी फेल है। इसके बाद में मैं 3000 जंप मार लेता था, या फिर 3000 स्टिक मारता था, या 1000 एप्स मारता था। ये मेरी फिजिकल स्टेमिना कैपेसिटी थी। और आज भी मैं जिम मेरा जाना बंद हो गया, आज भी मेरे गाने को ये लोग याद करते हैं और इनको भी काफ़ी मेरा एक ही नियम है, चलते रहो, दौड़ते रहो। जो आदमी दौड़ सकता है ना, उसको दौड़ने का। सांसद मुकेश दलाल ने 1981 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इसके साथ ही वे सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन समिति के सदस्य भी रहे। साल 2005 से 2020 तक सूरत नगर निगम के अदजान पाल पालनपुर क्षेत्र से पार्षद चुने गए। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसके अलावा सांसद मुकेश दलाल ने 3 वर्षों तक सूरत शहर के भाजपा सचिव के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश दलाल जी को पहली बार उम्मीदवार बनाया गया। હું મુકેશ કુમાર ચંદ્રકાંત દલાલ લોકસભાના સભ્યપદે ચૂંટાવાથી ઈશ્વરના સોગંદ લઈને જાહેર કરું છું કે કાયદાથી સ્થાપિત થયેલા ભારતના બંધારણ પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખીશ। ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાને સુરક્ષિત રાખીશ અને જે પદ હું ધારણ કરવાનો છું તેની ફરજો श्रद्धापूर्वक निभाविश। सूरत 1989 से ही भाजपा का गढ़ रहा है। शहर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विरासत है, जिसका प्रतिनिधित्व अनुभवी भाजपा दिग्गज काशीराम राणा ने लगातार 6 बार किया। इसके अलावा ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। सर, क्या कहेंगे कि आप इस संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर निकलते, जब भी आपको समय मिलता है संसद के सत्र के अलावा, तो जब भ्रमण पर निकलते हैं तो क्या चीज़ें आपके ज़हन में रहती हैं? संसद का जब सत्र चल रहा होता तब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मगर इन दिनों में जब भी कोई कार्यक्रम आता है तो फिर मैं इनको तारीख पे तारीख देते जाता हूँ
और जैसे ही सूरत आता हूँ मैं अपने कार्यक्रमों में व्यस्त और मस्त रह जाता हूँ। सूरत में सबसे शांति मुझे मेरी ऑफिस में मिलती है। जब लोग अपना पर्सनल लेके प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तब मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा शांति मिली है। और पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद मैं पार्लियामेंट में इलेक्ट होने के बाद मैं सूरत में भी कहीं भी जा नहीं पाया हूँ, मगर सूरत में वैसे देखो तो कई हिस्टोरिकल प्लेसेस है कि हमारे नज़दीक में भी है और दूर भी थोड़ी है, मगर मैं जा नहीं पा रहा हूँ सूरत में। सर, तापी नदी है और फ्लाईओवर भी बहुत है, बड़ा खूबसूरत शहर है और साफ सफाई भी बहुत है। सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है सांसद जी को? सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई चीज़ पसंद है सूरत की क्लीनलीनेस। मेरे सूरत का लोगों की एक नेचर जो स्वभाव है, सबको सबका साथ सबका विकास और हर प्रश्न में वो भाट के लिए विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित मंत्री से प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते नजर आए हैं। Surat is a vibrant constituency and which is very well recognized as hub of textile and hub of diamond. My family background is also textile, and 40% of man-made fabrics is being produced in the art city, silk city of Surat, and 90% of world's rough diamonds cutting and polishing is being done in Surat. That way, both these industries combined together form the backbone and contribute greatly in the economic development of the country in terms of employment and in terms of export as well. गुजरात के सूरत से सांसद मुकेश दलाल अपने क्षेत्र में डाउन टू अर्थ नेता की छवि रखते हैं। कई वर्षों से उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि सांसद बनने के बाद भी वो जनता के बीच आते रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते और उसे दूर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सूरत शहर में हो या पूरे गुजरात में, यहाँ संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और पतंग उड़ाने की जो परंपरा सदियों से चली आई है उसका ये लोग एक हफ्ते पहले से इंतज़ार करते हैं। लेकिन पतंग उड़ाने के दौरान कई बार ऐसा भी होता है, मांझे से यहाँ कई लोगों की डेथ तक हो गई है, बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत ही दुर्घटनाएं कई सामने आई हैं, जिसको देखते हुए हमारे सांसद जी ने जो ये पहल की है और पूरे क्षेत्र में ये पहल की गई है कि सेफ्टी पर्पज से ये लगाया जाता है तार। तो इनसे जानते हैं कि किस लिए क्या किया जा रहा है और क्या इसकी उपयोगिता है। हमारे सूरत गुजरात के लोग मकर संक्रांति के बहुत शौकीन हैं और ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से हमारे यहाँ मनाया जाता है और इसमें पतंग उड़ाई जाती है, पतंग के साथ मांझा होता है, मगर कई बार ये कटे हुए पतंग का मांझा कई लोगों के गले में फंस जाता है और दुर्घटनाएं घटती है, यहाँ तक मौत भी होती है। तो ये सेफ्टी के लिए सेफ्टी बेल्ट का वॉलंटरीली हम सबको मैं फ्री ऑफ चार्ज सबको दे रहा हूँ और ये मेरा चौथा कार्यक्रम है सूरत की कंस्टिट्यूंसी में, ताकि किसी की जान हानि न हो। साथ में इनको एडवाइस भी करता हूँ कि हेलमेट पहनिए और साथ में ये भी बोलता हूँ कि जहाँ तक मकर संक्रांति ख़त्म नहीं होती है तब तक गाड़ी धीरे से चलाइए, होश से चलाइए, कहीं भी मांझा कटा हुआ पतंग का आपके बीच में आ न जाए। तो इससे काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है, सेफ्टी है। ये सेफ्टी बेल्ट कार्यक्रम है। अभिनेत्री होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे त्योहारों पे, ऐसे मौक़ों पे हम लोगों को जागृत करें। और मैं सबसे पहले हमारे सांसद सदस्य श्री मुकेश दलाल जी को शुक्रिया कहना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इन्होंने समय से पहले, त्यौहार से पहले इतना सटीक सोच के इन लोगों को मफलर सब अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि लोगों की सेफ्टी बनी रहे। तो मेरे ख्याल से इनके नेतृत्व से अभी हमारा सूरत और खिलेगा और बढ़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, दिवाली हो या कोई भी अच्छे बड़े त्यौहार हो, ऐसे वक्त में हमें उससे पहले थोड़े प्रिकॉशंस ऐसे हो जाए तो पब्लिक में सब अच्छी तरह से एंजॉय, फंक्शन भी एंजॉय करे, त्यौहार भी एंजॉय करे और सेफ्टी भी बनी रहे। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपने
हम सब अलग अलग विस्तार से सब सखी मंडल के मेंबर जुड़े हुए हैं और उसमें भी हम सांसद ऐसे बता रहे हैं कि आप भी पढ़ो और जो बेरोजगार है, जो जिसको रोजगार नहीं, उसको भी पढ़ाओ और आप भी जानो, और आपके पास कोई भी ऐसी कोई माहिती नहीं हो तो मैं एनी टाइम आपको सपोर्ट के लिए उभा हूँ, खड़ा हूँ। तो आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमें इसका प्राउड है कि हमें सूरत में ऐसा सांसद मिल गया। He is a very good person, cool person, always smiling. And I remember him because every year he brings the calendar for me. That's why. And he keeps in his mind that he knows what I have to give to someone. आज भी सांसद बनने के बाद भी मैं ये दुकान पे आता जाता रहता हूँ, 5-10 मिनट बैठता हूँ, चाय नाश्ता करूँ नहीं करूँ, पर मेरा जो पहले का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस मैंने आज भी जारी रखा। मेरे हाथ में जो है वो एक पोंक का वड़ा है। वो सूरत में जो पोंक बनता है वो सूरत की स्पेशलिटी है और सिर्फ दिसंबर और जनवरी में बनता है, मिलता है। इस पोंक में से वड़ा बनता है, ये पोंक का वड़ा है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और शायद ही सूरत के बाद इंडिया के कोई भी शहर में पकौड़े मिलते हो तो मुझे ताज्जुब होगा, क्योंकि 2 ही महीना मिलता है हमारे यहाँ पोंक का वड़ा। कभी साथ में जाते हैं और कोई भी ग्रोसरी शॉप पे कि यहाँ पे कहीं पे भी रहना होता है तो सर हमको ना बोलते कि आप मत आओ, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग सब साथ में आओगे तो वो लोग ऐसे ही डर जाएंगे भाई कि कौन इतना बड़ा आदमी आ गया, हम लोग इतने बड़े नहीं है तो आप साथ में मत आओ। आज हमारे एमपी साहब श्री मुकेश दलाल यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे एक फन फेयर का आयोजन किया है। वो आयोजन करने का हेतु ऐसा है कि सब यहाँ के समाज के जो युवा वर्ग है, जो लड़कियाँ हैं, वो कुछ उसमें व्यापार करने की कुछ वृत्ति आए, वो सीखे। और इसमें ये एरिया में मुकेश भाई का काम बहुत ही अच्छा है। वो हर वक्त हमारे समाज के साथ में रहते, कभी भी कोई भी छोटा प्रोग्राम हो तो मुकेश भाई हाजिर रहते हैं। 2-3 साल से हम देख रहे हैं देश में साइबर क्राइम का जो माहौल बन रहा है। इससे बच्चों को बोलता हूँ कि साइबर क्राइम से बचते रहे, किसी का वीडियो कॉल मत रिसीव करो, अननोन व्यक्ति के साथ मोबाइल पे चैटिंग मत करो, फेसबुक पे वगैरह फ्रेंडशिप मत करो। और एक चीज़ मैं सबको भी बोलता हूँ, मैंने सूरत पुलिस को भी बोल के रखा है कि आप साइबर क्राइम के लिए और ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो उसमें मेरी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। मैंने ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर को ये भी बोला कि आप शहर में जितने भी कैमरा लगवाना चाहते हो मुझे बोल दो, मैं मेरी ग्रांट में से मैं लगवा दूँगा। ये सिटी की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये तो अच्छा है कि हमारे शहर में महिलाओं की सेफ्टी बहुत है। हमारे यहाँ बच्ची या सुबह 5:30 बजे 6 बजे ट्यूशन पे अकेली निकलती है, रात को 11 बजे अकेली आती है, मगर इनके पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं है। इनको पता है कि हमारी बच्ची सलामत आएगी। और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब तो होती है, दूसरी खुशी मुझे तब होती है जब मॉर्निंग में महिलाएं शहर में अकेली निकलती है, पार्क में, रोड पे, तब बड़े संतोष मुझे होता है कि क्या माहौल अच्छा सूरत में है, गुजरात में है, जिससे अपनी बहनें, बेटियाँ, माएँ अपनी फ्रीली रह सकती है। मुकेश दलाल का सूरत के व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासकर सूरत डायमंड कॉमर्स एसोसिएशन के माध्यम से। साफ है कि लोकसभा सांसद मुकेश दलाल जी की राजनीतिक और सामाजिक यात्रा और निर्विरोध निर्वाचन ने उन्हें सूरत और राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है। सांसद मुकेश दलाल अपने क्षेत्र की जनता से बेहद जुड़ाव रखते हैं। यही वजह है कि न केवल बतौर सांसद बल्कि अपने अनुभवों से भी सही जीवन जीने की सीख देते भी नजर आते हैं। मैंने मेरे जीवन की फिलोसॉफी को, जो पुराने गाने अच्छे बनते थे, इसमें जो शब्द रचना हुई थी, इसमें से मैंने सीख ली। जैसे कि वक्त से है दिन और रात, वक्त से है कल और आज, वक्त की हर से गुलाम, वक्त का हर से पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त है फूलों की स्टेज और वक्त है कांटों का ताज। दूसरी एक भी फिलोसॉफी है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। सफलता में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी आवड़त होशियारी के कारण मिला है,
मुझे टिकट मिली है तो मेरी इसके कारण, मेरे से ज़्यादा होशियार लोग कहीं पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, मगर पार्टी ने मुझे चुना तो मुझे घमंड में नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत होशियार है इसके लिए मुझे टिकट मिल गई है। अब जब सांसद बनी गया हूँ तो सबके साथ देना चाहिए, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ में रखना चाहिए, और जो काम के लिए भेजा है प्रजा ने, पार्टी ने, वो काम परिपूर्ण करना चाहिए। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बात की गहराई गहराई। जिंदगी बदल रही है, रफ्तार बढ़ गई है, पर क्या हमारे भीतर का चैन, वो ठहराव, वो संतुलन कहीं खो तो नहीं गया? सरोकार सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारे उस जुड़ाव की बात है जिसमें शरीर, मन और समाज सब साथ चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं सरोकार। आज का विषय है बदलती जीवन शैली, यानी कि चेंजिंग लाइफस्टाइल, चुनौतियां और समाधान। 20वीं सदी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हमारे पास हर सुविधा है लेकिन शांति नहीं, समय है लेकिन अपने लिए नहीं, स्क्रीन है लेकिन सपने बेहद धुंधले हैं। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन इस होड़ में हम खो क्या रहे हैं? नींद, सुकून, सेहत, रिश्ते और खुद से जुड़ाव। आज हम बात करेंगे उन्हीं सवालों की जो शायद हम सबके मन में है। क्या हमारी जीवन शैली वाकई इतनी खतरनाक हो गई है? हम बात करेंगे थकान और तनाव से लड़ने की नहीं, बल्कि शांति और सहजता से जीने की। क्या योग, खान पान और आत्मचिंतन वो रास्ता है जो हमें फिर से खुद से जोड़ सकते हैं? इस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद बेहद खास मेहमान, जिन्होंने न केवल जीवन की पेचीदगियों को समझा है बल्कि सैकड़ों लोगों को रास्ता भी दिखाया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाइनी नारंग जी। शाइनी नारंग योग शिक्षक और NLP कोच हैं जो कि मन की उलझनों को सुलझाने में माहिर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैशाली बत्रा जी, एक फूड और योग कोच हैं जिनकी सोच है कि इलाज थाली से शुरू होता है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जयंती दत्ता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक जानी मानी समाज शास्त्री हैं जो बदलाव को समाज की नज़र से देखती हैं और समाज में बदलाव लाने का प्रयास भी करती हैं। और हमारे तीनों खास मेहमानों के साथ हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारी ऑडियंस जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आइए बढ़ाते हैं कदम नई सोच की ओर और शुरुआत करते हैं शाइनी जी आपसे, क्योंकि जब बात योग की होती है तो हम कहते हैं कि योग निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं सब कुछ है, सुकून नहीं है। ये सुकून कैसे आएगा? आप इसे कैसे देखती हैं? इसकी परिभाषा है क्या? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुकून को समझा कैसे जाए? योग के स्क्रिप्चर्स में ना एक डेफिनेशन है कि हम लोग बने किस चीज़ से है। मैं 1 मिनट लूँगी उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें जो फिज़िकल बॉडी आप देख रहे हैं, जिसको आप छू सकते हैं, योग में इसको कहा गया अन्नमय कोश, कि ये आपकी अन्न से बना है। हमारी सिर्फ यही बॉडी नहीं है, इसके अंदर एक और बॉडी है जिसे कहते हैं प्राणमय कोश, जो आपकी ब्रेथ है। उसके अंदर एक और बॉडी है जिसे कहते हैं मनोमय कोश, विच इज़ योर थॉट्स एंड इमोशंस, जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं। उसके अंदर है आपका विज्ञानमय कोश, विच इज़ योर नॉलेज, इंट्यूशन और विजडम। और उसके अंदर है आनंदमय कोश, जो आपकी आत्मा, सोल। अगर सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ सुकून क्या है, सुकून इन सब का अलाइनमेंट है। मतलब जैसे आप बाहर से हैं वैसे ही आप
आपके प्राण वैसे हैं, आपकी सोच वैसी है, आपकी समझ वैसी, आपकी इंट्यूशन वैसी है, अपनी आत्मा से आप अलाइंड है। और जितना भी हमें जो डिफ़िकल्टीज़ आजकल के टाइम में महसूस हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम अपने अलाइनमेंट को खो चुके हैं। तो वो सुकून हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम अपने आत्मा से बहुत दूर जा चुके हैं और हम सिर्फ फिज़िकल सरफेस लेयर पे ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, और हमें मालूम नहीं है कि दिमाग कुछ और चाह रहा है, दिल कुछ और चाह रहा है, पता है करना क्या है, कर पा नहीं रहे बिकॉज़ वो अलाइनमेंट मिसिंग है। तो मैं सुकून को अगर योगिक टर्म्स में देखूं तो यही बोलूँगी कि इट इज़ अलाइनमेंट। बेसिकली इट इज़ अलाइनमेंट, और ये अलाइनमेंट होनी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वैशाली जी, आपके पास आऊँगी। एक कहावत आपने बहुत पहले सुनी होगी कि जैसा हम खाते हैं वैसे हम बन जाते हैं। आजकल की इस बदलती लाइफस्टाइल में ये जो थाली है जो हमारे आगे परोसी जाती है या हम खुद को परोसते हैं, ये हमें कितना बदल रही है, और आज की इस ऐसी लाइफस्टाइल जिससे हम बेहद परेशान हैं, उसके पीछे खाना कितना बड़ा रीज़न है। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम जो आज खा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमने कल खाया है और जो हम खाते हुए आ रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। खाना एक इंफॉर्मेशन है, वो हमारी बॉडी में जाता है और सेल्स के थ्रू और पूरा अपना एक प्रोसेस होता है, अपना पूरा वो इंफॉर्मेशन भेजता है जिससे हमारे हार्ट में जाता है, सारे ऑर्गन्स में जाता है और अपना पूरा काम जो भी है वो सब कुछ करता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आप सेंड कर रहे हो, इससे जो इसका जो रिलेशन आपसे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि एक फिस्ट ऑफ न्यूट्रिशन है, एक मुट्ठी है जो आपको हर खाने में, अपनी पूरी थाली में एक मुट्ठी होनी चाहिए, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। आप कुछ भी खा रहे हो, अगर उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आपका खाना गलत हो ही नहीं सकता। आप उसके साथ क्या रिश्ता बना रहे हैं, आप ये मत देखो कि मैं खाने से मोटा हो जाऊंगा या ये खाना तो मेरी ज़िंदगी है। आप उसको न्यूट्रिशन की तरह खाओ, आप उसको प्यार से खाओ, ये सारी चीज़ें उसमें डाल के खाओ, हो ही नहीं सकता कि आप बीमार रहोगे। फिस्ट ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करो कि आप डेड फूड मत खाओ, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, आप लोकल खाओ, आप सीजनल खाओ, और आप वो खाओ जो आपके आसपास मिल रहा है, और प्यार से खाओ तो वो बिल्कुल आपके अंदर जाके प्यार बनेगा और आपको भरपूर प्यार देगा और हेल्दी रखेगा। प्यार से खाओ, भरपूर खाओ, मिलकर खाओ। मैम, आपके पास आऊँगी। आपको तो ज़िंदगी का बड़ा तजुर्बा है, आपने बहुत लोगों के बहुत केसेस को सुलझाया भी है, और बहुत सी ऐसी कहानियाँ होंगी जो शायद आपके पास ही सीमित हैं, क्योंकि जिस किसी ने भी आपके पास आकर अपनी कहानी सुनाई, अपनी आप बीती सुनाई, शायद बड़े ट्रस्ट के साथ सुनाई। इन कहानियों के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो हर आम जिंदगी की है। मैम ने कहा साथ खाओ, मिलकर खाओ। हम साथ खाना तो चाहते हैं, मिलकर खाना तो चाहते हैं, लेकिन आपस में बनती नहीं। रिश्ता अभी बनता नहीं, टूट जाता है, और टूटने के बाद या टूटने से पहले भी वो एक तनाव जो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाता है। आप समझ नहीं पाते कि आप इन रिश्तों में रहना चाहते हैं कि नहीं। आजकल की ज़िंदगी बदलती जा रही है, ये जो बदलता बदलाव है, टूटते रिश्ते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मेरे ख्याल से जो विडंबना है, शरीर आपके पास है, आप अपनी हार्ट को भी एक्सरे के तहत देख सकते हो, इकोकार्डियोग्राफ में आपको दिख जाता है आपका दिल धड़क रहा है, लेकिन आपके पास मन है, वो मन आपने देखा नहीं देखा। और ये मन की पावर ऐसी है कि 80% से ज़्यादा आपकी बीमारियां जो हैं वो साइकोसोमेटिक ओरिजिन की है। यानी कि अगर आपका मन कुछ चाहता है और आप उसको पहचानते नहीं हो, तो ये विडंबना आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, आपके कैंसर, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि मामूली सी खांसी, जुकाम, खांसी, इसमें भी आपको परेशान कर सकती है। यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम को बगैर कोई दवा लिए, बगैर कोई केमिकल्स लिए, आप बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकती है। अक्सर होता क्या है कि हम इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं, और जब गुस्सा आता है तो हम दूसरे पे बरस पड़ते हैं। यकीन मानिए, जब आप गुस्से में होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा आप अपने लिए मोल लेते हैं, क्योंकि जो हार्मोनल सिक्रीशंस आपकी बॉडी में होती है ना, वो सारी पूरी अटैक आपकी इम्यून सिस्टम पे करती है। आप अगर गुस्से में हैं या आप अवसाद में हैं, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं
डॉक्टर दत्ता आई एम हैविंग डिप्रेशन। यंगस्टर्स लोग आके कहते हैं डिप्रेशन है मेरे को। नहीं, आपको अवसाद हो सकती है। देखिए मूड है, मूड आपकी उतार चढ़ाव हो सकती है उसमें, लेकिन आप पहचाने कैसे कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। आज हम ऐसी सदी से गुजर रहे हैं कि आपकी तमाम मेंटल उलझनों का उपचार हाजिर है। आप उससे निकल के बाहर आ सकते हो, बशर्ते आप चाहो। तो आपको पहचानना है कि ये वाकई मेरी मानसिक ऐसी अवस्थिति है, परिस्थिति है जहाँ पे मुझे सलाह लेने की ज़रूरत है, या मैं परेशान हो रहा हूँ, या एक आम जैसी बात है, हर एक की ज़िंदगी में आती है। आप कैसे पहचाने कि आप वाकई डिप्रेशन से ग्रसित होने जा रहे हो या अवसाद आपको परेशान करने वाला है। अगर आपका मूड कुछ भी करने को नहीं करता है, आपका दिल नहीं चाहता कुछ भी करूं, ना खान पान, ना किसी से मिलना, ना कहीं जाना, ना कुछ करना, सिर्फ और सिर्फ दुखी रहना पसंद करता है, रोना चालू हो जाते हैं आप। छोटी सी बात हुई नहीं, ऊंच नीच हुई नहीं ज़िंदगी में, आपको लगता है बस ज़िंदगी जीने लायक है ही नहीं। अगर ये अवस्था आपके साथ 10-12 दिन से ऊपर लगातार आप इसे जूझ रहे हो, तो प्लीज़ फॉर हेवन सेक कंसल्ट एन एक्सपर्ट। हमारे पास ऐसे औजार हैं, ऐसे टेस्ट्स हैं जिसके तहत हम पता चला सकते हैं कि वाकई आपको अवसाद है या इट्स ए मूड स्विंग, एंड अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं। आपसे अभी मैंने कहा कि एक ऐसी चीज़ है, ये मन ऐसा है जो विदाउट एनी मेडिकेशन आपकी इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आपके पास कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, आप उनको उजागर करने की जो क्रियाएं हैं उस पे ध्यान दीजिए। तो अगर आप ये हैप्पी हार्मोन्स को उजागर कर लेंगी तो मेरे ख्याल से अवसाद की नौबत आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। अवसाद आपकी ज़िंदगी से आप हटा लेंगे तो मेरे ख्याल से स्वस्थ रहना बहुत आसान हो जाएगा। और रिश्तों में, आपने बोला ना रिश्तों में खटास आती जा रही है, रिश्ते जो है वो हर जगह नर्चरेंस मांगती हैं। आपको रिश्तों में ईमानदारी और साझादारी, ये दोनों बरकरार रखना है। अगर आप समझते हैं इस रिश्ते से मुझे क्या मिलना है, आप जब पूछते हैं कि मुझे क्या मिला, आप अपने को भी पूछो मैंने उसको क्या दिया। इट्स ए टू वे प्रोसेस। आज हमारे देश में वृद्धाश्रम की जो नंबर है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसा क्यों? एक ज़माना वो था जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे, बूढ़े लोग होते थे, परिवार में सबसे पहले उनकी इज्जत होती थी। कोई मिलने आता था तो पहले उनसे मिलवाया जाता था। आज बच्चों के पास पैसा है, सब कुछ है, उसके बाद भी उनके पास टाइम नहीं है कि अपने बूढ़े माँ बाप को वो देख रेख करे या उनके साथ थोड़ा वक्त बिताए। कोविड के दौरान भी ऐसे केसेस मेरे पास आए जहाँ 82 इयर्स फादर, 79 इयर्स मदर, पैसा बहुत है, बच्चे दोनों बस रहे हैं बाहर, लेकिन उनकी देख रेख के लिए कोई नहीं है। तो दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो इन टुडेज ईरा। लेकिन अगर हम और आप इसको समझदारी से, साझेदारी से सुलझाने की कोशिश करें तो अभी भी देर नहीं हुई, हम सुलझा सकते हैं। बिल्कुल, समझदारी के साथ हम इसे सुलझा सकते हैं, साझेदारी के साथ सुलझा सकते हैं, लेकिन उसे सुलझाने के लिए कदम हमें ही आगे बढ़ाना होगा। वो जो सोच है हमें डेवलप करनी होगी, लेकिन वो सोच आए तो आए कैसे शाइनी? बहुत बार होता है हम बहुत परेशान होते हैं, उस स्ट्रेस में हमारा जो रिएक्शन है, या हम कहें कि किसी भी एक्शन का जो रिएक्शन है, वो हमारे घर परिवार में जो हमारे सबसे करीबी होते हैं उस पर निकलता है। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए, तो बहुत परेशान है, योग किया कर। क्या होगा योग करने से? क्या वो परेशानी चली जाएगी? क्या होगा? मैं आपसे समझना चाहती हूँ। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि योग करने से होता क्या है। जब आप किसी को बाहर से आसन पे, मतलब मैट पे आसन करते देखते हैं, तो आपको लगता है कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, बॉडी को मूव कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन योग एक्चुअली अंदर हो रहा होता है, मन के अंदर हो रहा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम एक सांस भरते हैं, अभी टेस्ट भी कर सकते हैं आप, एक बार सांस भरिए, उसको 1 सेकंड के लिए रोकिए और फिर धीरे से उसको जाने दीजिए। एक बार और अगर आप सांस भरेंगे, जस्ट इनहेल, 1 सेकंड के लिए उसको होल्ड कीजिए, बिफोर यू एक्सेल उसको जाने दीजिए। तो ये जो गैप है ना, इनहेलेशन और एक्सेलेशन के बीच का जो ठहराव है,
उसको जानना, उसको समझना एक्चुअली इज़ द एसेंस। डिफरेंस बिटवीन जो आपने कहा कि हम गुस्सा करते हैं और अपने घर वालों पे बरस पड़ते हैं, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कि आप रिएक्ट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या मैंने बिना सोचे समझे कुछ बोला या सोच समझ के बोला? बस योग आपको यही सिखाता है कि 1 सेकंड के लिए रुक जाइए और सोचिए कि क्या मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ ये कहने वाली बात है भी? क्या मुझे ऐसा कहना भी चाहिए? और वो 1 सेकंड में आप अपना डिसीजन बदल सकते हैं कि नहीं, शायद मैं ये बात बोलूँगा तो मेरी मम्मी को, पापा को या मेरे हस्बैंड को, वाइफ को या मेरे बच्चों को बुरा लग सकता है और मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए। मे बी आई विल रिग्रेट दिस लेटर। बट वो जो पॉज है, जो मिडल थिंकिंग है, जहाँ बीच की एक सोच है कि क्या ये सही चीज़ भी है, वो आप तभी कर पाएंगे, उस क्षण में तभी कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस किया होगा अपने मैट पे। क्योंकि वो पॉज ही है जो हम योग में सिखाते हैं कि एक क्षण रुक जाइए, वो ठहराव। और लोगों को कई बार बोरिंग लगता है कि अरे क्या अनुलोम विलोम करा रहे हो, बिठा के रखा है इतनी देर से, सिर्फ सांस भरने को बोल रहे हो, सांस छोड़ने को बोल रहे हो। पर हम उनको यही समझाते हैं कि शायद अभी ये बोरिंग लगेगा, लेकिन इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को जब आप मैट के बाहर अपनी दिनचर्या में लेके जाएंगे तो ये बहुत काम आएगी। बिल्कुल, दिनचर्या में योग को यदि हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा और वो जो ठहराव जिसकी हमें तलाश है इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, वो ठहराव हमें मिल पाएगा। आपके पास आऊँगी मैं वैशाली। जैसा हमने आपसे भी बात की कि खाना जो है वो निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा प्रभाव डालता है। आपकी खुद की भी एक स्टोरी है, आपने खुद भी अपनी जर्नी में ये चीज़ डील भी की है, आपने एक बड़ा बदलाव भी पाया। एक समय था जब हम लोग सब साथ बैठकर खाना खाया करते थे, लेकिन आजकल लोगों को ज़्यादा पसंद आता है जंक फूड। जब हम दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, मैं आपकी जर्नी के माध्यम से इसे समझना चाहती हूँ। मेरे फादर एक बहुत बड़े फूडी रहे हैं, उनको देख के मैंने भी रोज़ जंक फूड खाना सीख लिया। तो उसके बाद मुझे लाइफ ने अपॉर्चुनिटी दी, मैं फूड ब्लॉगर बनी कॉलेज में, मैंने रोज़ बाहर का खाना खाना शुरू कर दिया। एक नहीं, 3 मील मैं बाहर ही खा रही थी। और उसके कुछ टाइम बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ तो अलग है शरीर में, बहुत आलस है, मुंह पे इतने पिंपल्स आ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, बॉर्डरलाइन PCOD हो गया है। ये बात तो सही नहीं है। ये जो बटर चिकन मैं खा रही हूँ है तो बहुत स्वाद, बट ये मुझे कॉन्स्टिपेशन दे रहा है, मुझे एसिडिटी दे रहा है, मुझे गैस दे रहा है, और कॉलेज में ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब मैंने नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की पढ़ाई करी, ये देखा कि दिनचर्या क्या होता है, घर पे बना हुआ माँ का खाना जो होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है, उसे क्यों माँ का खाना, माँ का प्यार क्यों कहते हैं, तो मुझे समझ आया कि मुझे अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मत खाओ वो पिज़्ज़ा, आप वो फ्रेंच फ्राइज़ मत खाओ, बट कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो खाना है वो डेड फूड है, वो किसी की किचन में बना हुआ है जहाँ पर लड़ाई हो रही है, जहाँ पे बटर चिकन की ग्रेवी को महीनों तक फ्रीज़ करके रखा हुआ है, वो सड़े गले टमेटो जो आज़ादपुर मंडी से ख़रीदे जा रहे हैं, वो माँ के खाने की मुकाबली नहीं कर सकते हैं। जो वो रात को माँ छोले भिगो रही है और सुबह प्यार से उसको आपके लिए बना रही हैं, उसमें कितना प्यार और जायका है। जब आप उसको समझ जाओगे तो आप हर चीज़ को एक मॉडरेशन में करना शुरू कर दोगे। जो बाहर हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस्ड और डब्बे वाला खाना खा रहे हैं, वो खुद ही इतना डेड है। वो 6 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ कैसे हो सकती है? जब मेरी मम्मी घर पे फ्रेंच फ्राइज बना रही है, वो 4 दिन में फ्रिज में भी उस पर फंगस लग रही है। जो खाना डेड है वो मुझे और डेड बनाएगा, वो मुझे लाइफ तो कभी भी नहीं देगा। और आप जितना ज़्यादा नेचर के साथ इन ट्यून में रहोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि हमारे अंदर एक हीलर बैठा है, हमारे अंदर एक प्राण शक्ति है जो जीना चाहती है। अगर मैं आज अपनी नाक बंद कर दूं तो मेरा हाथ अपने आप हट जाएगा। मेरी बॉडी सिग्नल दे रही है कि मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। बट हम वो डेड सीरियल, वो पैकेट में लैक्टोस वाला जो दूध है, वो पी पी के हम अपने दिमाग को कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है। घर पे आमंड मिल्क बनाने की जगह हम वो डब्बे वाला आमंड मिल्क खरीद रहे हैं, बट वो उसमें आमंड नहीं है। आपको लेबल्स पढ़ना शुरू करना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने इमल्सिफायर्स हैं, उसमें कितने ज़्यादा केमिकल्स हैं। और टेस्ट तो खैर एक केमिकल लैब में अचीव हो ही जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि
फ्रेश खाना, माँ के खाने की कोई कंपैरिजन नहीं है। जो खाना आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फादर के लिए बनाते हो, उसमें एक इमोशन है। और वो ऐसे ही नहीं कहते कि कुछ चांट्स अपने चांट्स चलाएं अपने किचन में, एक भगवान की फ़ोटो रखें, उसको प्यार से बनाएं और उसकी एनर्जी फील करें। उस फार्मर को थैंक यू बोले जिसने आपके लिए वो चीज़ सो करी है, और वो किस प्रोसेस से आ रहा है, मंडी से होता हुआ, किसने उसको काटा, किसने उसको धोया, और उस इमोशन के साथ अगर आप उसको फील करके खाते हैं तो वो खाना आपकी लाइफ ऐड करता है, कम नहीं करता। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बाहर का खाना मत खाओ, ज़ुबान और चटोरापन भी बहुत ज़रूरी है, बट मॉडरेशन में खाना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये खा रहा हूँ तो मुझे उसको बैलेंस कैसे करना है। बिल्कुल, बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, प्रकृति के साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा मूड स्विंग्स होते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। कभी इंसान रोता है, अचानक से हंस पड़ता है। अगर ये 10-12 दिन चला तो उसे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 10-12 दिन अलग अलग चला तो क्या कहेंगे? कभी कभी हो जाता है। आजकल अगर आप युवा वर्ग को देखें तो उसमें फोकस की बहुत कमी है, चिड़चिड़ापन है, एंग्जाइटी है, वो तुरंत रिएक्शन आता है। सबसे बड़ी चीज़, हम कहते हैं कि हमारे अंदर अकेलापन आता जा रहा है, हम अकेले हैं, कोई हमारी बात ही नहीं समझता। ये लाइन हम अक्सर यूज़ करते हैं। 4 लोग एक साथ बैठते हैं लेकिन चारों के हाथ में मोबाइल होता है। समवेयर वी आर सोशली कनेक्टेड, बट इफ वी टॉक अबाउट इंटरपर्सनली वेयर वी आर सिटिंग विद 4 पीपल, वी आर ऑल डिस्कनेक्टेड। इसका जो प्रभाव है, इसे आप कैसे देखते हैं, जो युवा वर्ग पर लगातार असर करता जा रहा है? देखिए, बात आके ठहर जाती है आपके मन के ऊपर, आपकी साइकी के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर। अगर हम इमोशंस को मोटा मोटा कैटेगराइज करने की कोशिश करें, या तो पॉजिटिव इमोशन है, या तो नेगेटिव इमोशन है, या तो झुंझलाहट है। अगर आपकी ज़िंदगी में, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, झुंझलाहट है, तो कहीं आप गड़बड़ा रही हैं। आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप जिस तरह से उसको जूझ रही हैं, या जिस तरह से आप उसको निभा रही हैं, वो गलत तरीका है। देखिए, योगा इज़, एज अ साइकोलॉजिस्ट वी बिलीव इट्स ए बिग हेल्प इन आवर डे टू डे लाइफ। क्यों? सबसे पहली बात, ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है। जब आप ब्रीदिंग की बात करते हो, अभी आपने देखा, उन्होंने बोला ब्रीद करके देखो, ब्रेथ को होल्ड करके देखो, फिर धीरे धीरे छोड़ के देखो। हम इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। बाहर के देशों में ये एक अहम हिस्सा है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ट्रेनिंग में। माइंडफुलनेस में हम क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं कि आप ध्यान अपने अंदर डालो, अपने अंदर थोड़ा सा परखो, आप जो सांस ले रहे हो उसके ऊपर थोड़ा अपना ध्यान को रेस्ट्रिक्ट करो, और आराम से सांस लो, आराम से सांस निकालो। जो भी काम आप कर रहे हो, होता क्या है, वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग। आज का जो युवा वर्ग है वो स्पीड से, हर तरह से अपने जो भी डिमांड्स हैं उसको सप्लाई के उसमें लगा रहता है। मैं अक्सर देखती हूँ 80% ऑफ मेट्रोपोल क्राउड जो हुआ यंगस्टर्स एंड आर इन MNCs, उनकी नींद पूरी नहीं होती, उनका साइकेडियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तो ऑब्वियसली इसका असर आपके खान पान पे पड़ता है, आपकी रिहाइश पे पड़ता है, आपके इमोशंस के ऊपर पड़ता है। जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो आप अपने को ब्रीदिंग एक्सरसाइज देते हो, उसका असर आपके स्ट्रेस के ऊपर पड़ता है। ना चाहते हुए भी, ना पहचानते हुए भी आपका स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है। उसके बाद जब आप कपालभाति करते हो तो कपालभाति में आपका जो मेजर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट गेट्स अ ब्रीदिंग काइंड ऑफ अ रेस्पाइट। क्योंकि आप कपालभाति करते हो तो आपका कंसंट्रेशन आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे हो जाता है। यकीनन अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होती है तो इसका असर आपके पूरी शरीर के ऊपर पड़ता है। थर्ड, जो आसनास हम करते हैं, जैसे वर्स्तिका है, तो शी वुड बी इन ए बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज़। लेकिन उसके साथ साथ आपकी लंग, आपकी हार्ट, आपकी किडनीज, तमाम चीज़ें जो है वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचती है। ये चीज़ करने से आपके जो हार्मोन्स हैं, आपके जो ग्लैंड्स हैं, उनको एक हेल्दी टाइम मिल जाता है स्ट्रेस से हटके जीने के लिए। तो अभी मैंने जिक्र किया था जितने आपके पॉजिटिव या गुड हार्मोन्स हैं, यानी कि आपके सीरोटोनिन, आपके डोपामीन,
आपकी एंडोर्फिन, ये तमाम चीज़ें, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो उसको हाईलाइट करती है। आपको मालूम है थ्रू योगा यू कैन इवन रेगुलेट द वेव्स इन योर ब्रेन। आपके जो अल्फा वेव्स हैं, आपके जो गामा वेव्स हैं, आपके जो थीटा वेव्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो तमाम चीज़ें आप योगा, एक्सरसाइज एंड खान पान के ज़रिए मॉड्यूलेट कर सकते हो। और उससे आप देखेंगे, अगर आपकी, देखिए हमारी ज़िंदगी में भगवान का दिया हुआ सबसे अचंभे वाली चीज़ है ब्रेन। यू नो, ब्रेन वर्क्स फास्टर देन एनी कंप्यूटर। तो उस तक पहुंचने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, कोई भी रिश्ता अगर आप बचाना चाहते हैं तो थोड़ा वक्त अपने अंदर झांकिए, देखिए आप कहाँ गड़बड़ा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ब्रेन इज़ ए वेरी पावरफुल थिंग। इसके 3 आपको वार्निंग साइंस होते हैं। जो मुझे सुन रहे हैं वो इसको गांठ बांध ले। एक तो होती है, फर्स्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपकी नींद में। आपकी नींद में खलल आने लगती है, या तो आप ज़्यादा सोने लगते हो या तो आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होने लगता है। हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया दोनों ही आपको इंडिकेट करती हैं कि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं चल रही है। खान पान में या तो आप ज़्यादा खाने लगते हो यानी कि बुलिमिया, या तो फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा, आपको भूख ही नहीं लगती, या तो फिर आप चले जाते हो सीधे सीधे फास्ट फूड के तरफ। अगर खान पान में ऐसी चीज़ें आ रही है, दिस इज़ योर सेकंड वार्निंग। थर्ड वार्निंग इज़ when your mood gets irritated। आपको सब बोलने लगते, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये झुंझलाहट में रहने लगी, इसको गुस्सा बहुत आने लगा, क्या हो गया तेरे को, इतना गुस्सा क्यों कर रही है भाई, इतना गुस्सा तेरे को क्यों आता है। ये 3 वार्निंग अगर आपकी ज़िंदगी में है तो प्लीज़ हॉल्ट, टेक अ हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन ज़िंदगी का हिस्सा है, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़िंदगी का हिस्सा है, और मेट्रोपोल में तो खास करके आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके साथ तो ये ज़्यादा चैलेंजेस हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ जो स्कूली बच्चे हैं, इसके लिए भी आप अगर यूट्यूब में जाओगे तो मेरी इनपुट्स हैं, कई इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं जहाँ पे मैं देखती हूँ 6 घंटे की नींद प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो स्कूल से भाग भाग के वापस आते हैं, फिर उनके पास होमवर्क, प्रोजेक्ट्स इतने होते हैं कि वो बेचारे धकेले जाते हैं। 5 घंटे की, 6 घंटे की नींद अगर हमारे प्राइमरी सेक्शन के बच्चे को नहीं मिलती है तो युवा पीढ़ी को तो और भी नहीं मिलती है। तो इसी की वजह से 8 साल का बच्चा सुइसाइड पे उतारू हो जाता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी परसों मैंने देखा एक MD का स्टूडेंट, उसने सुइसाइड कर ली। क्यों कर ली? दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट, यू नो, कि कहीं पे ना कहीं पे आप गड़बड़ा रहे हैं। जो मैंने वार्निंग साइंस आपको बताई, आप अपने लिए जीना सीखो, और एक इंसान के लिए अपने को मौत के हवाले प्लीज़ मत करो। आपको जिन्होंने परवरिश करी, आपको जिन्होंने सिजोया, जिस माँ ने खून से आपको सींचा, क्या उसका कोई अहमियत नहीं है? आपको एक लड़की ने ना कर दिया, आपको एक लड़के ने ना कर दिया, तो आप अपने जान के ऊपर खेल गए। और वो माँ और वो पिता और वो भाई और वो बहन जिन्होंने इतने प्यार से आपको पाला, उनकी क्या गुनाह है? आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ नहीं है। तो मैं मानती हूँ रिश्तों को सजाने के लिए आपको जिम्मेवारी एक्सेप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जयंती, यहाँ पे मैं आपसे एक कंटिन्यू क्वेश्चन ये भी पूछूंगी। आपने कहा कि आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ये तीनों कंडीशन हो गई। कुछ लोग जो समझते हैं उनको शायद समाज से डर लगता है। मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी, शहर में शायद कुछ लोग ये ज़रूर कहेंगे कि ठीक है, आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, आई शुड गो एंड टेक अ कंसल्टेंसी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं पागल थोड़ी हूँ। ये शब्द मैं समझना चाहती हूँ कि इसमें आप ज़रूर लोगों को बताएं कि ये कोई पागलपने का इलाज नहीं है। अगर मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, आप में से कौन कौन है जिसने डॉक्टरी सलाह नहीं ली अभी तक? आपने डॉक्टरी सलाह कभी नहीं ली? जिंदगी में आप बीमारी नहीं हुई? बचपन में बीमारी नहीं हुई? कोई भी डॉक्टर की शक्ल तो देखी ना, डॉक्टर की क्लिनिक तक गए ना। कहीं दबी आवाज ये भी आई कि मानसिक नहीं ली। नहीं, मानसिक नहीं, मैंने नहीं मानसिक नहीं बोला। मैंने बोला अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपने सबने कहा हाँ, तो अगर आपके जिस्म है, तंदुरुस्त जिस्म है, वो बीमार हो सकता है। तो अगर आपके पास एक इंटेलिजेंट वाइब्रेंट माइंड है,
क्या वो परेशान नहीं हो सकता? अगर आपकी माइंड में थोड़ी सी परेशानी है, आप सही कह रही हैं, एलीट एजुकेटेड लोग कहते हैं अरे डॉक्टर जयंती दत्ता के पास क्यों गई, ये पागल है क्या, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? अरे अगर आपकी वाइब्रेंट साइकी है तो आपको परेशानी हो सकती है। जितनी जल्दी आप इसके लिए मदद मांगोगे उतनी जल्दी आप इससे उभर के बाहर आ जाओगे। अगर आपके पास तंदुरुस्त इंटेलिजेंट माइंड है तो वो थोड़ी बहुत चोट खा सकती है, ये कोई गुनाह नहीं है। तो हेल्दी माइंड कैन टेक some kind of a rebuff from your life, and for that please don't hesitate, take the help of a professional qualified psychologist or a psychiatrist। इसमें आप जानते हैं बाहर के देशों में आप में से कोई ऐसा है जो पंडित के पास कभी नहीं गया है? कोई फिजिशियन के पास गए हैं, पंडित के पास गए हैं? मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं हाँ मेरे ना एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स आए, तो माँ ने कहा पंडित जी से मिलने जाओ। पंडित जी ने बोला राहु शनि केतु ऑल दिस थिंग्स। बाहर के देशों में आपके ऊपर हंसी उड़ाई जाती है अगर आपका फैमिली साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है। देखिए आज जो हम लोग इतने केसेस देखते हैं, आज इंसान अलग थलग पड़ गया है, ट्रस्ट नहीं है। वो माँ, वो चाची, वो दादी, वो नानी, वो ताई, वो भाभी नहीं है। हर रिश्ता अंकल आंटी में बदल गया है। आज हमारा बच्चा महफूज नहीं है अपनी स्कूल में भी, आज हमारा बच्चा महफूज नहीं है अपने परिवार में भी। ताऊ से भी उसे खतरा है, पिता से भी उसे खतरा है। अभी मैं आपसे शेयर कर रही थी, मैंने ऐसे केस हैंडल किए हैं जहां फीटस माँ बेच रही है बिफोर द बर्थ। दिल्ली की बात कर रही हूँ, ठीक है, और ये मैं ऑन एयर कर रही हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रही हूँ। तो ये हालात अगर हैं तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट कहीं पे ना कहीं पे बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो कल जो हमारा युवा पीढ़ी सामने आएगा वो बौखलाया हुआ होगा, उसे पता नहीं। अब आप देखिए डॉक्टरी ट्रेनिंग के बाद एमडी स्टूडेंट अगर सुइसाइड करता है, जब मैं पढ़ाई कर रही थी मैंने अपने ओपीडी में कभी नहीं देखा 8 साल का बच्चा जो सुइसाइड की बात सोच रहा है। आज हम हैंडल कर रहे हैं, 8 साल का बच्चा जो है सुइसाइड कर लेता है। तो ये चीज़ें जो है ये खतरे की बात है, और ये खतरा सिर्फ ABC के लिए नहीं, आप और हमारे लिए भी है। बिल्कुल। शाइनी, आपसे जानना चाहूँगी, मैम ने कहा कि जॉइंट फैमिली में कभी हम हुआ करते थे, रिश्तों को हम समझा करते थे, आज कहीं ना कहीं हम अकेले हो गए हैं। कहीं ना कहीं शायद हमने ये स्टेप लिया है कि हम अकेले रहना चाहते हैं। वी वांट न्यूक्लियर फैमिलीज, वी डोंट वांट टू हैव जॉइंट फैमिलीज, या वी डोंट बिलीव इन जॉइंट फैमिलीज। अब रिश्तों को आप निभाना नहीं चाहते, खुद को आप वक्त देना नहीं चाहते। जब आपसे पूछा जाता है खाना खाया तो आप कहते हैं टाइम नहीं है। कोई आपको कहता है कि आप खुद पे ध्यान दीजिए तो आपको लगता है कि ध्यान देने का मतलब है ओहो मैं मोटी हो गई तो मैं पतले होने के लिए डाइटिंग करना शुरू कर देती हूँ। लोग बिना कंसल्टेंसी के डाइटिंग करना शुरू करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट होता है कि वो पतले ना होकर मोटे होने लगते हैं और मानसिक तनाव आने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं हमारे दर्शकों को, कोई ऐसे अभ्यास जिससे उनका मन मस्तिष्क शांत रहे, वो ऑफिस में भी खुश रहें, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना सीखें और अपनी ज़िंदगी को स्मूथ तरीके से चला सकें? आयुर्वेद के हिसाब से 3 तरीके की प्रकृति बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किए गए हैं, जिसे हम आपने सुना होगा बोलते हैं वात पित्त और कफ। ठीक है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडीज़ में एयर और स्पेस एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब वायु और हवा और आकाश तत्व ज़्यादा है, तो उसको हमने वात का नाम दे दिया। कुछ शरीर में कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में अग्नि ज़्यादा है, उसको हमने पित्त का नाम दे दिया, और कुछ में पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, उसको हमने कफ का नाम दे दिया। अब कहा जाता है कि जो वात प्रकृति है वो नेचुरली वो लोग पतले हैं। आपने वो लोग देखे हैं जो बहुत खाते कभी मोटे नहीं होते, उनको आप जितना मर्जी खिला लो खुशी खुशी, उनको वेट चढ़ता ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे लोग भी हैं जो हवा खाते हो फिर भी मोटे रहते हैं, है ना, ऐसे सबके दिमाग में कोई ना कोई आ गया होगा। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनका बॉडी का जो बनावट है, उनकी जो प्रकृति है वो अलग है। अगर मैं कोशिश करूँ ज़बरदस्ती कि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन मेरा अगर कफ है और मैं नेचुरली मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, या मतलब मेरा शरीर चौड़ा है,
मैं उसे कितनी भी कोशिश करूँ एक्सरसाइज करके कि मैं बहुत पतली हो जाऊँ, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो नेचर की तरफ से अलग अलग बनाया गया है। और आपका प्रकृति, आपकी प्रकृति, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वूम में ही, आपके माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है। तो आप उसको उतना नहीं बदल सकते हो जितना सोशल मीडिया देखकर हमें लगता है कि हमें बहुत पतले होना है, साइज़ 0 पे पहुंचना है, डाइटिंग करनी है, बहुत ही कम खाना खाना है। ज़रूरत शायद नहीं है। ये हमें फीड किया गया है, मार्केटिंग गिमिक्स है, बहुत सारा प्रेशर है सोशल मीडिया का, बहुत सारा ब्यूटी इंडस्ट्री का प्रेशर है जो स्पेशली लेडीज़ के लिए फोर्स करता है उनको कि पतले रहना है। शायद सच में ज़रूरत नहीं है। तो मैं, कोई मुझसे पूछता है कि योग किया जाए पतले रहने के लिए, मैं बोलती कोई बात नहीं, आप जैसे हो पहले समझो कि आपकी मन की स्थिति कैसी है। अगर डाइटिंग करके आप और चिड़चिड़े हो रहे हो तो क्या फ़ायदा। डाइटिंग करके अगर आप बहुत, आपको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है तो क्या फ़ायदा। आप डिप्राइव कर रहे हो। और आयुर्वेद सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को हेल्थ नहीं मानता, बल्कि फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, उन सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को एक्चुअली कंट्रीब्यूशन में लेता है कि इसको हेल्थ कहा गया है। इवन WHO का डेफिनेशन भी हेल्थ का सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है। वो एक पेइंग स्केल पे एक नंबर नहीं है, वो BMI नहीं है, वो फैट परसेंटेज नहीं है, वो एक्चुअली आपकी इमोशनल, मेंटल हेल्थ को कंसिडर करता है। तो ऑल ऑफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसमें योग नेचुरली काम करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 5 लेयर्स हैं हमारे शरीर में। योग सभी चीज़ों पे काम कर रहा है। वो आपके मन की स्थिति को भी ठीक करेगा, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ाएगा, आपकी आत्मा से आपको जोड़ता है। तो जब लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज बताइए, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप बस योग कीजिए, बाकी योग सब कुछ आपके लिए खुद ब खुद कर देगा। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, ऐसा क्या किया जाए। आप मैट पे कंसिस्टेंटली आकर थोड़ा समय बिताओ। आप कुछ भी करो, कोई भी अभ्यास करो योग का, चाहे आसन करो, चाहे ब्रीदिंग करो, प्राणायाम करो, चाहे कोई क्रिया करो, वो आपको फ़ायदा देगी ही देगी। सो उसको सेग्रीगेट मत करो कि सिर्फ यही करना है और ये नहीं करना। जस्ट बी कंसिस्टेंट, कोशिश करो। और 15 मिनट भी रखोगे, अगर 20 मिनट भी रखोगे अपने पूरे दिन में कि हाँ बस मुझे 20 मिनट योग को देने हैं, उतना भी काफ़ी है। वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट के लिए कदम हमें ही बढ़ाना होगा। एक मैं आपका रिएक्शन ज़रूर लेना चाहूँगी वैशाली, क्या आप कोई ऐसी थाली सजेस्ट कर सकते हैं? क्या ऐसी डाइट हो जो हम अपनी डेली रूटीन में फॉलो कर सकें, जहाँ हम ये कहें हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे मैनेज कर सकें, ताकि कैलोरी भी ना हो, न्यूट्रिशन भी हो, टेस्ट भी हो और हेल्थ भी हो। चाहे हम जैसी मर्जी थाली बना लें, अगर हमारे हाथ में फ़ोन होगा तो वो थाली किसी काम की नहीं है। मैंने अपने घर पे भी ये देखा है कि सब अपने अपने नेटफ्लिक्स चला के बैठे हैं, कोई कोई शो देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। और मैंने अपने घर में छोटे बच्चों को भी देखा है जिनको आप कुछ भी खिला दो, आप वैसे वो करेले को देखेंगे भी नहीं, बट अगर उनको उनका फेवरेट शो चला के दे दोगे तो वो करेले के साथ पराठा भी खा लेंगे। बट ये सब में बुरी बात क्या है कि आयुर्वेदा बोलता है कि च्यू करके खाना खाएं, खाने को देखकर फील करके खाएं। हम भूल चुके हैं कि पुराने ज़माने में हम ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे, उसका कितना महत्व था कि चौकड़ी मार के जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना, मतलब हमारा एक तृप्ति का डकार आता है जो हमें ये बताता है कि हमारा पेट भर चुका है। जब हम खाने के ऊपर हाथ ऐसे घुमाते हैं, उसे फील करते हैं, तो वो खाना हमें बताता है कि ये खाना हमारे लिए है। वो इतना इंटेलिजेंट है वो खाना, वो हमें ये भी बता देता है कि आज हमें ये खाना खाना चाहिए या हमें इतना खाना खाना चाहिए। हम स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? हम नेगेटिव शोज देख रहे हैं, एक्शन मूवीज़ देख रहे हैं, कितना ज़्यादा वो संगीन एक्शन चल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि वो हमारा जो खाना है वो हमें कुछ न्यूट्रिशन देगा? वो जो स्क्रीन है वो एक अलग केमिकल रिलीज़ करवा रही है हमारे शरीर में, और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो ज़िंदगी है वो पेट में जाके वो कितनी कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो कैसे लाइफ देगा हमें। तो पहली बात तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप स्क्रीन को हटा दें, आप खाने को छू कर अपने
उंगलियों से उसको फील करके उसको धीरे धीरे करके चबाएं। शायद लोग भूल चुके हैं कि एक बाइट को 32 टाइम्स च्यू करना होता है। फॉर अ रीज़न हमारे मुंह के अंदर 32 दांत हैं और हमारी इंटेस्टाइन इस तरीके से बनी हुई है कि वो मैस्टिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाइवा कितना इम्पॉर्टेंट है। तो थाली तो मैं अगेन यही बोलूँगी कि 5 फिस्ट ऑफ न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डिजीज़ बेस्ड देखोगे तो हो सकता है कि आपको फैट और कार्ब्स थोड़ा कम करना चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स थोड़ा बढ़ाना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप के हेल्थ गोल्स उस टाइम पे क्या हैं। बट आपकी हर एक डाइट में 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फाइबर बहुत ज़रूरी है जिसको लोग टोटली इग्नोर कर देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप अगर खाना खाने के बाद फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसका भी एक डाइजेशन टाइम अलग होता है। तो आप अपने खाने को बहुत ज़्यादा मिक्स मत करो। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो आप सिर्फ फ्रूट्स खाएं। अगर आप सैलेड खा रहे हैं तो उसको आप मील से पहले लें और अपने प्लेट को सुंदर सा, अपना जितना भी प्यार आता है ना अपने ऊपर, वो सारा अपने प्लेट के ऊपर निकालो। सजा कर एक कटोरी में दही रखो, सजा कर अचार रखो, साथ में 2 अच्छी फूली हुई रोटियां रखो, सब्जी रखो। उसको बहुत सारा प्यार दिखाकर और उसके साथ इन्वॉल्वमेंट के साथ खाना खाओ। कोशिश करें कि आप सब साथ में खाना खाएं और अगर नहीं हो पाता तो एटलीस्ट एक मील सब लोग साथ में खाएं। बिल्कुल, एक मील सब साथ खाएं, साथ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, खुद को खुश रखना। मैं आप लोगों के तीनों के पास एक एक रिएक्शन लेने ज़रूर आऊँगी, लेकिन मुझे लगता है बहुत लोगों के सवाल हैं। बहुत प्यारी ऑडियंस आज हमारे बीच मौजूद हैं और बहुत से सवाल उनके जहन में हैं। तो ओवर टू यू, आप जो पूछना चाहते हैं कृपया पूछिए। मेरा नाम सुमन शर्मा है और मेरा जो सवाल है वो वैशाली जी से है। एक्चुअली बच्चों को आजकल फर्दर स्टडीज़ के लिए यह एक ट्रेंड आ गया है कि बच्चे अब बाहर जाके पढ़ने लगे हैं, घर से दूर जा रहे हैं और उनको हॉस्टल लाइफ जीनी पड़ती है और वहाँ पर खाना भी हॉस्टल का ही होता है। तो वहाँ पर माँ का खाना तो उसको समझ लिए नसीब नहीं हो पा रहा और हॉस्टल में जैसा भी खाना मिलता है आप सब जानते हैं। तो उस दशा में हम उनको कैसे समझा सकते हैं, वो कैसे अपने न्यूट्रिशंस का ध्यान रखें? माँ अगर खाना भेज नहीं सकती तो थोड़ा बहुत सिखा तो सकती है अपने बच्चों को। मुझे लगता है कि हॉस्टल में चाहे जैसे भी खाना मिलता हो, एक सेब काटना या खाने से पहले गाजर और मूली या टमाटर काटना बहुत मुश्किल नहीं है। रात को सोने से पहले वो कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख सकते हैं। आजकल सब्ज़ा भिगोएं या फिर गर्मी है तो बेल का शरबत खुद बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आजकल जूसर्स, पोर्टेबल जूसर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो वो पेठे का जूस या खीरे का या घी का जूस बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते हॉस्टल के खाने से, बट वो उसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ये आप उनको ज़रूर सिखा सकते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अलकेश तिवारी है। दत्ता मैम से पूछना चाहता हूँ, एक क्लैरिटी चाहिए थी थोड़ी सी, कि जैसे हम कह रहे हैं ना, अभी सब हम कह रहे हैं कि आजकल ऐसे हो गया, आजकल हो गया, क्राइम लेवल बढ़ गया। मैं तो सुनता आ रहा हूँ, ये तो सतयुग कलयुग, क्या ये हर युग में क्राइम लेवल था? तो आज हम इसी युग को क्यों ब्लेम कर रहे हैं या खाने को कर रहे हैं इसको? तो ये क्राइम तब भी था, तो ये क्या कारण है? इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा हटके है लेकिन क्योंकि क्राइम से जुड़ा हुआ है। देखिए, क्राइम, हत्या, किलिंग, ये कोई आज नई बात नहीं है, ये शुरू से, आप सही कह रहे हैं, हर युग में था। लेकिन क्राइम के बाद, हत्या के बाद हैवानियत, ये चीज़ नहीं थी। हमारे बच्चे महफूज थे। बच्चों के ऊपर, मैं पली बड़ी दिल्ली की हूँ और मुझे याद है कि बचपन में कभी हमने नहीं देखा किसी से कहा गया ये पंजाबन है, ये बंगालन है, ये सिख बच्ची है। बच्चा बच्चा होता था और ये सब मानते थे कम्युनिटी में, बच्चा जो है ऊपर वाले की देन है। बच्चे के साथ कुछ ऊंच नीच हुई तो वो कम्युनिटी रुकती नहीं थी, वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेती थी। तो वहाँ पे क्राइम की जो डायनामिक्स थी वो अलग थी। ये बताया जाता था जिसके पास कुछ नहीं है वो छीनने के लिए, पाने के लिए क्राइम करता है। एलीट, एजुकेटेड, एम्पावर्ड लोग क्राइम से नहीं जुड़ते थे। आज वो लोग क्राइम से जुड़ रहे हैं। हमने ये चीज़ें देखी हैं कत्ल होते हुए, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जिस माँ ने, शी इज़ प्रेग्नेंट, शी ऑलरेडी हैज़ अ 6 years old चाइल्ड, उसने सिर्फ हस्बैंड को मारा नहीं, उसको टुकड़ों में काटा और फिर ड्रम में डाला। तो ये चीज़ जो है ये तब्दीली है। कत्ल पहले भी होता था, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि कत्ल के बाद
मांस के टुकड़े को कुकर में बनाया। ये हैवानियत जो है ये खतरे वाली घंटी है जो समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए खतरा है। ये सिर्फ एक फैमिली या एक यूनिट के लिए नहीं है खतरा। जो माँ इस तरह से कत्ल कर सकती है, मैं मानती हूँ ये क्रिमिनल प्रोपेंसिटी आगे से ही पनपने लगती है। और जो परिवार में इस तरह की क्रिमिनल प्रोपेंसिटी वाले बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं, वो परिवार वाले इससे हाथ नहीं धो सकते, वो अलग खड़े नहीं हो सकते, उनको पता चल ही जाता है ये हटके है। सो एंड आई बिलीव वंस अ मर्डरर, वंस अ रेपिस्ट, आप उसे सुधार नहीं सकते डॉक्टर साहब। वो मौका मिलते ही फिर वैसा ही काम करेगा। सो यू नीड अ डिटरेंट। समाज को सुधारने के लिए, हमारे बच्चों के साथ ये हैवानियत बंद हो, उसके लिए हमें डिटरेंट पनिशमेंट चाहिए। वो पनिशमेंट सामने पब्लिक को दिखा के देनी चाहिए कि अगर तुमने ऐसे किया तो देखिए, क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, उसको इतना तो बुद्धि उसकी होती है, इतनी अंडरस्टैंडिंग उसकी होती है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे गले में भी फंदा लटकेगा ज़रूर, मेरे को भी खतरा है। सो दैट इज़ द प्रोबेबली ओनली सोल्यूशन वी हैव। आजकल हम देख ही रहे हैं कि 40-45 प्लस जब हो जाते हैं तो हम लोग विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, विटामिन्स कम है और अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। जबकि हम पूछते हैं कि नहीं, हम तो बाहर का खाना नहीं खा रहे, ऑयली खाना नहीं खा रहे हैं और बहुत ही सात्विक लाइफ जीते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, जबकि हमें अडल्ट्रेटेड ही खाना मिल रहा है, हमारी थाली में आ रहा है। ऐसे में योगा का क्या महत्व है, या इसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों से, मल्टीविटामिन से बच जाए और हमारी खुद की एक हेल्दी लाइफ हो? ये सवाल मुझे, आप थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं आपको कि सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, स्पेशली क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा है और हम वैसी ज़िंदगी तो नहीं जी रहे जैसे हमारे पेरेंट्स ने जी है। तो योग का ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो एसेंस है वो ये है कि योग आपकी हीलिंग एनर्जी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। मतलब इस हद तक बढ़ा देता है कि आपके अंदर जो चीज़ें नहीं हैं या जो चीज़ों की कमी है वो उसको भी मैनेज करता है। अगर आप योग का अभ्यास पूर्ण रूप से कर रहे हैं तो सिर्फ आसन नहीं, आसन के बाद अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, उसके बाद ध्यान कर रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी को उस लेवल तक एक्टिवेट कर देगा कि फिर आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या आपने कुछ ऐसा खाया जो इतना प्योर नहीं है, वो उसको डाइल्यूट करता है। इनफैक्ट अगर मैं फ़िज़िकल लेवल पे बोलूँ, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आपने योग का अभ्यास किया, आपने मोबिलिटी करी, आपके सारे जॉइंट्स हमेशा मोबाइल रहेंगे, आपको आर्थराइटिस कभी नहीं होगा। मेरे टीचर्स हैं जो 80 इयर्स के हैं, 90 इयर्स के हैं और वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने योग का अभ्यास किया है। अगर मैं ब्रेथ बॉडी की बात करूं, जितना काम, जितनी रिलैक्स्ड आपका ब्रेथ है, आपकी सांस जितनी ठहरी हुई है, उतना आपका मन ठहरा हुआ है, उतने आपके इमोशंस ठहरे हुए हैं। तो जो डॉक्टर साहिबा ने बोला कि जो फ्लक्चुएशंस हमें आते हैं, जो चिड़चिड़ापन, जो एंगर है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है असेस करने के लिए, वो नेचुरली कम होगा। आपकी बॉडी की एबिलिटी टू डाइजेस्ट एनीथिंग वो बहुत बढ़ जाएगी। आपने कुछ भी खाया हो, आपके माइंड और इमोशंस इतने पावरफुल हैं कि वो उसका असर उस हद तक पहुंचने ही नहीं देंगे, वो बैलेंस में रखेंगे। आपकी इंट्यूशन और विजडम इतनी बढ़ जाएगी। और ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जहाँ आपकी आत्मा की शक्ति जागरूक होती है। अब सोचिए कि सोल में कितनी पावर है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, हमारा कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा डेरिवेटिव है। अगर उसमें इतनी पावर है तो हम में कितनी पावर होगी। और हम रिलाई कर रहे हैं एक्सटर्नल चीज़ों पे कि कोई मुझे बता दे इसको ठीक कैसे करना है, आई पुट एन एयर प्योरीफायर कि मुझे हवा साफ़ मिले, या मैं ये जुगाड़ लगा लूँ, ये सप्लीमेंट खा लूँ। वो आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे जो ऑलरेडी पोल्यूटेड हैं, डाइल्यूटेड हैं, उस पर रिलाई करा रहे हैं। योग का मतलब है कि आप अपने इंटरनल हीलिंग सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके एक्सटर्नल से आपको फ़र्क ही नहीं पड़े। एंड दैट्स वाई आई कीप सेइंग कि योग को एक्सरसाइज समझ के मत कीजिए, उसको ये समझ के कीजिए कि इसके अंदर की जो पावर है वो पावर मुझे अपने अंदर चाहिए। एंड दैट्स वाई इसको योग को यूनियन कहा गया है
एंड दैट इज़ द रियल एसेंस ऑफ योगा। मेरा क्वेश्चन जो है वो शाहिनी और मैडम जयंती दोनों से है। आप दोनों ने एक बात कही, ठहराव। तो आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से जो ये ज़रूरी चीज़ है ठहराव, इसको मिनिस्ट्रीज़ में जैसे छोटे बच्चों पे, क्या आपके छोटे बच्चों को योगा करते हुए मैंने नहीं देखा। छोटे बच्चों के ऊपर जो प्रोएक्टिव, जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव साइकोलॉजी, वो नहीं होती है। तो इसके लिए कोई स्टेप्स आप लोग गवर्नमेंट के भी प्रेशर में लेकर के कुछ उठाना चाहेंगे? अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगी कि मैंने बच्चों को देखा है योगा करते हुए। ऐसे स्कूल्स में मैं गई हूँ जहाँ पे फिज़िकल एक्सरसाइजेस की रूटीन तरीके से बच्चों में करवाया जाता है, राइट। एंड आउटडोर गेम्स जो है, ख़ास करके जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उनमें मैंने पाया अगर उनको नेचर के साथ जोड़ा जाए, जैसे बरसात हो रही है तो बरसात में क्या क्या होता है। मैं ऐसे स्कूल में भी गई हूँ जहाँ प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है खेलते हुए, थ्रू प्ले। आई यूज़ द प्ले टेक्निक ऑल्सो फॉर डीलिंग विथ माई ओन क्लाइंट्स। तो उसमें अगर बच्चों के साथ ईमानदारी से डीलिंग की जाए तो मेरे ख्याल से बच्चे आज भी बच्चे ही हैं, वो समझ जाते हैं, वो संभल जाते हैं। लेकिन आपने जो बात पूछी ठहराव के लिए, उसके लिए मैं बोलूँगी, देखिए सबके पास चॉइसेस मेन्यू होती है। आप मूड में हैं, आपका दिल कर रहा है कुछ खाने के लिए, आपने ऑर्डर किया, बनाया, चलो टेबल आपकी सज गई आपके मुताबिक, एंड यू आर ऑलरेडी हंग्री कि मुझे ये खाना है, यू आर रेडी फॉर एंजॉइंग योर मील। अचानक आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो आपका मूड खराब कर देती है, आप खाना खा पाएंगी? आपका मूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ स्पेंड ईमानदारी से कम 24 घंटे में 15 मिनट 12 मिनट अपने साथ। मैं जजेस को पढ़ा रही थी और मैंने जुडिशियल काउंसिल में पूछा कि व्हाट्स योर हॉबी। ऑल द जजेस, ट्रेनी जजेस, दे सेड पढ़ना, वी रीड बुक्स। They took so much time to find out what exactly you enjoy. अगर मुझे टाइम देती मैम तो मैं आप लोगों से पूछती कोई ऐसी आइटम जो आप खुद अपने लिए करती हैं, खुद अपने को एन्जॉयमेंट देने के लिए, चाहे वो अपने बेसुरी राग में गाना हो जोर से, चाहे वो किसी को पसंद ना आए ऐसा खाना बनाना हो, लेकिन आपको पसंद है वो चीज़, तो प्लीज़ फॉर हेवन से डू दैट। 10 to 15 मिनट्स अपने साथ ईमानदारी से अपने को नर्चर करिए। और प्लीज़ टेक टू मेडिटेशन। मेडिटेशन हैज़ अ रियल स्ट्रॉन्ग पावर। मैं तो आजकल ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाएं। क्यों? उसमें भी साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है। जब आप कहती मैंने उस बंदे की शक्ल देख ली थी इसलिए मेरा दिन खराब गया, आपके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं रहता। जब आप सोचती हैं कि अरे भगवान तूने मेरे को यही देना था, अच्छा चल कोई बात नहीं, तो यू एट्रीब्यूट योर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑन टू समबडी, उसी से आपकी स्ट्रेस जो है वो डिफ्यूज हो जाती है। ये मेरी पड़ोसन खराब है, इसी ने मेरे जिंदगी में सारा खलल डाल रखा है। वो पड़ोसन इतनी एम्पावर्ड कहाँ से हो गई? लेकिन आप सोचती हैं, मानती है, दिल में आप जानती हैं ये सच नहीं है, लेकिन वो कहने से, वो मानने से आपको सुकून मिलता है। दैट इज ओके विद अस। बहुत बढ़िया। वन थिंग जो आपने पूछा कि बच्चे क्यों नहीं अभ्यास करते, ताली ना 2 हाथों से बजती है, ठीक है। अब बच्चे कोरी स्लेट है, बिल्कुल ब्लैंक कैनवस की तरह। आप उनमें जो रंग भरना चाहते हैं भर सकते हैं, आप उन्हें जो सिखाना चाहते हैं आप सिखा सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितना ओनस आपके घर वालों का है उतना सिस्टम का भी है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई अपील टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि प्लीज़ हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में योगा और आयुर्वेदा को मैंडेटरी सब्जेक्ट्स बना दिया जाए, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही पता होना चाहिए कि मुझे अपने शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल बॉडी का कैसे ध्यान रखना है। अगर उनको हमने बचपन से बात सिखा दी, तो जैसे मैम का क्वेश्चन था कि बाहर जाते हैं हॉस्टल में तो कैसे करेंगे, उनको बचपन से पता होगा कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। बट हम वहीं पर उलझे हुए हैं, बेसिक्स में उलझे हुए हैं। और हेल्थ फाउंडेशन है, हेल्थ नहीं
तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज़ माई ओपिनियन। बिल्कुल। अच्छा, मैं अमिता सिंघल, और मेरा शालिनी मैम से सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है कि जैसा उन्होंने बताया कि 15 मिनट के लिए योग सबके लिए नशे ज़रूरी है, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हम क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपके पास सिर्फ 15 से 20 मिनट है, शुरुआत करें सिर्फ अपनी ब्रेथ को देखने से, मतलब सिर्फ सांस के बारे में समझें, कितनी गहरी, कितनी हल्की, कितनी तेज़ चल रही है। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार या कोई भी आसन, अगर वो नहीं है पॉसिबिलिटी, तो मैं ये बोलूँगी कि बेसिक सूक्ष्म व्यायाम कर लें जो जॉइंट रोटेशन है, समथिंग एज सिंपल एज दिस। अगर मैं सिर्फ इतना भी कर रही हूँ, या कोहनियों को भी हिलाकर, हिप्स को थोड़ा मूव करके, शोल्डर्स को थोड़ा मूव करके बेसिक जॉइंट मूवमेंट भी करूँगी, तो जो बॉडी की स्टक एनर्जी है, जो जकड़न है, वो धीरे 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 रिलीज़ होनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर फील करेगी। आप वो 10-15 मिनट जॉइंट रोटेशन, जिसको सूक्ष्म व्यायाम का नाम दिया गया है, उतना करने के बाद 2 मिनट का शवासन या 3 मिनट का शवासन कर ले, और लास्ट में ओम उच्चारण कर ले। तो अगर इतना छोटा सा इसको अगर मैं एक मॉड्यूल बोलूँ, ये भी आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी जादू है। वो भी इतना मिराकुलसली काम करता है कि लगता है अरे इट इज़ सो अमेजिंग। नमस्कार, मेरा नाम संध्या शर्मा और मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर दत्ता से। मैम, जैसे आपने बताया कि हम डॉक्टर्स के पास, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो ऐसे अपनी मानसिक स्थिति के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन हम सेल्फ अवेयर तो हो गए। अगर हमको लगता है कि हमारे किसी नेबर को या फ्रेंड सर्कल में हेल्प है, और वो हम कहने में कई बार हिचकते हैं कि उसको ऐसा ना लगे कि अरे हमें पागल बोल रही है। ये पर्टिकुलरली मेरा इस तरीके का क्वेश्चन है कि आफ्टर कोविड जो बच्चे हैं उनमें ऑटिज्म की बहुत प्रॉब्लम आई है, और ऐसे अगर हम किसी के बच्चे को देख रहे हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है और हम पेरेंट्स से डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप किस तरीके से हमें गाइड करेंगी कि हम उनको किस पॉजिटिव तरीके से बोलें और वो समझ पाएं? देखिए, अक्सर होता क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत तो हिचकिचाहट रहती ही है कि मेरे बच्चे में ऐसा क्यों। तो वहाँ पे अगर आप जाके ऐसे बोलेंगी तो हो सकता है आपकी बात वो सही से ना लें। तो इट्स बेटर टू गाइड देम, यू नो, कि अच्छा आपको बच्चे को परेशानी है, क्यों नहीं इसके पास दिखा लेती। मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी अपने बच्चे को ऐसे दिखाया था। सो इंस्टेड ऑफ यू गिविंग the expert advice, guide them to seek advice from some expert in and around। और मेरे ख्याल से हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में आजकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजी। वाई मैं am I saying clinical psychologist? Because they are trained in the hospital setup। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास वो ट्रेनिंग होती है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर पाती हैं, वो विदाउट मेडिकेशन, विदाउट केमिकल इंटरवेंशन वो थेरेपी देती हैं। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें जो है मन के ऊपर है। आई एम अतुल भंडारी। माय क्वेश्चन इज़ फॉर बत्रा मैम, कि जैसे आजकल नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाने की टेंडेंसी हो गई है बच्चों में भी और अदरवाइज ऑल्सो इन द सोसाइटी, तो इससे भी आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो कहते हैं कि जो आप सेवन कर रहे हैं उसी से आपकी नेचर, मतलब प्रकृति वैसे ही डेवलप हो रही है। सो इज़ इट ट्रू? आर दे रिलेटेड? मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी। मैं एक बहुत बड़ी मीट ईटर थी स्कूल में, और उसकी वजह से मैं बहुत ही वायलेंट और एक अग्रेसिव नेचर की इंडिविजुअल थी। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जब मैंने अपने आप को दूर से देखना शुरू किया, तो मैंने ये एक मेन चीज़ नोटिस करी कि मुझे शायद नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ऐसा है ना कि जब आप किसी एनिमल को काट रहे हो, उसके भी इमोशंस हैं, आप उसको एकदम से मार रहे हो, उसकी ज़िंदगी ले रहे हो, तो उसके जो इमोशंस है वो जाहिर सी बात है, अगर आप उसको खा रहे हो तो आपके अंदर भी वो आएंगे ही, क्योंकि यू नो जो भी आप खाते हो वो आपका हिस्सा बन जाता है। कितना इंटेलिजेंट है हमारी बॉडी की, ये एक क्यूकम्बर है, एक खीरा है, ये अभी कोई वैल्यू होल्ड नहीं करता, बट जब मैं इसको खा लूँगी तो ये मुझे कितना न्यूट्रिशन देगा, ये मेरा हिस्सा बन जाएगा। तो जो हम नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, उनके जितने भी इमोशंस हैं वो हमारी बॉडी में भी आ रहे हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो एनिमल्स हैं, जैसे आप शेर ले लो, तो उसकी इंटेस्टाइन अलग तरीके से बना हुआ है, उसके दांत अलग तरीके से बने हुए हैं, वो उस खाने को पचा सकता है, उसके शरीर में जो हीट है वो उस खाने को पचा सकता है। हमारे इंटेस्टाइन्स अलग तरीके से बने हुए हैं, हमारे दांत अलग तरीके से बने हुए हैं, वो 2-2 दिन तक हमारे
पेट में पड़ा हुआ है वो कितनी फर्मेंटेशन कर रहा है, कितनी हीट है, वो क्या क्या हमारे को बीमारियां दे रहा है, खून के साथ कहाँ कहाँ जा रहा है और कितनी हमारे को क्रॉनिक डिजीज़ेस दे रहा है। तो डेफिनेटली मैं तो ऐसा मानती हूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और मैंने खुद छोड़ा है और मेरी फैमिली में भी सब ने अपने आप धीरे धीरे करके नॉन वेजिटेरियन को छोड़ा है। हम बहुत अच्छा फील करते हैं और मेरा ये मानना है। मैम, मैं डॉक्टर पिंकी अग्निहोत्री और योग से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है हमारा। योग में संगीत की क्या भूमिका है? बहुत प्यारा सवाल है। तो मैं इस वर्ड को संगीत ना कहकर नाद कहूँगी, ठीक है, जो हमारे अंदर है। हम सब बने ही इसी से हैं। योग है ही यही कि अपने अंदर जो आपके मन के अंदर, जो आपकी आत्मा के अंदर जो दिन रात नाद बज रहा है, आप उसको सुन पाएँ, उसको महसूस कर पाएँ, उससे जुड़ पाएँ, उसी प्रोसेस का नाम ही योग है। और इससे सरल डेफिनेशन हो भी नहीं सकता। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, या एक बहुत प्यारा प्राणायाम है भ्रामरी, जो हमिंग बी प्राणायाम है, जिसमें हम की आवाज़ निकाल रहे हैं, हम बेसिकली कोशिश यही कर रहे हैं कि हम उस नाद से खुद को जोड़ सकें जो हमारे अंदर बज रहा है। अभी वो हमें इसलिए नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि इतनी सारी लेयर्स हैं जिसको कवर कर दिया गया है और आत्मा की जो आवाज़ है वो एकदम दब गई है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे सुन रहे हैं, जो हम कब से बोल रहे हैं आजकल ये हो रहा है, आजकल ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस इतने लो लेवल पे जा चुकी है कि आपको सुनाई ही नहीं दे रहा कि मन क्या कह रहा है, मेरी आत्मा बोल क्या रही है, और आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। Therefore the crimes are increasing। अगर मैं इसको योगिक पर्सपेक्टिव में देखूं तो मैं सिंपली ये कहती हूँ कि हम अपनी आत्मा से दूर चले गए, हम अपने आनंदमय कोश से बहुत दूर है, और जो इसके करीब आता चला जाता है योग के अभ्यास से, उसको नेचुरली ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है कि मुझे इससे दूर हटना है, दूर हटना है, दूर हटना है। तो उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस बहुत अलग होते हैं उन लोगों से जो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो अभ्यास है, ये आई थिंक कोई नेक्स्ट लेवल का ही ग्रेस है जो हमें मिला है। एंड ऑल थैंक्स टू ऑल द ऋषिज़ एंड मुनीज़ जो ये हमारे लिए छोड़ के गए, इतना ज़्यादा जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन छोड़ के गए। बस हमें इतना करना है कि नियमित रूप से खुद को योगा मैट पे बिठाकर इसका अभ्यास करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूबसूरत आप सभी के सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज कराने के लिए और इतने खूबसूरत सवाल पूछने के लिए। क्लोजिंग रिमार्क्स, 3 चीज़ों पर बात करूंगी। एक चीज़ है शांति, एक चीज़ है तृप्ति और एक चीज़ है खुशी, क्योंकि आपका वास्ता मन मस्तिष्क से है। खुशी की परिभाषा क्या है? पॉजिटिविटी, शेयर खुशियाँ। अगर आप पॉजिटिविटी शेयर करोगे, खुशियाँ बांटोगे, तो आपकी झोली में भी वो खुशियाँ पलट के आएंगी ही आएंगी। डॉक्टर जयंती, बहुत खूब, क्योंकि आपका वास्ता खाने से है और कहते हैं कि दिल को सुकून मिल जाता है यदि पेट भरा हो, लेकिन तृप्ति जिंदगी में आएगी कैसे? अच्छा सोच के, अच्छा खा के और सबके बारे में अच्छा सोच के, खुशियाँ दे के। अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे, निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जिस शांति की हम तलाश कर रहे हैं वो हमें कैसे मिलेगी? शांति जीवन में कैसे आएगी? मैं ये बोलूँगी, एक डिसीजन, संकल्प। आप एक बार संकल्प ले लें कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे खुश रहना है, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, ये मेरा डिसीजन है कि दुनिया में चाहे कितनी भी टॉक्सिसिटी हो, मुझे वैसा रहना है जैसा मैं चाहती हूँ। इट्स अ संकल्प, इट्स अ डिसीजन। आप वो एक बार ले लेंगे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें बताया कि कैसे हम अपनी इस बदलते हुए लाइफस्टाइल को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का। और जाने से पहले यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी रफ्तार से नहीं संतुलन से चलती है। बदलती जीवन शैली ने कई चुनौतियाँ खड़ी की हैं, लेकिन समाधान भी हमारे भीतर ही है। जागरूकता, अनुशासन और खुद से जुड़ाव। याद रखिए, छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। समय निकालिए खुद के लिए, अपनों के लिए और एक बेहतर जीवन शैली के लिए। आज के हमारे सभी विशेषज्ञ बहुत खास थे। उन्होंने निश्चित रूप से हमें एक ट्रैक दिखा दिया, लेकिन चलना हमें है।
तो अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पुरोधा माना जाता है। वो समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर पत्रकार, राष्ट्रीय नेता होने के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृत, भारतीय संस्कृति, गणित और खगोल विज्ञान के प्रख्यात विद्वान थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो देखिए कहाँ वो दिखाई पड़ते हैं। वो दिखाई पड़ते हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये चीज़ आती है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य शब्द लोगों की ज़ुबान पे आता है, उसके साथ ये कल्पना आती है कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम ये भी आती है कि हम इसे ले भी लेंगे, ऐसा एक एहसास विश्वास पैदा होता है। ये तिलक है। गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और एक प्रख्यात शिक्षक थे। तिलक एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और गणित विषय से उनको खास लगाव था। तिलक के बारे में कहा जाता है कि वे केवल अपने कोर्स में निर्धारित किताबों को पढ़कर संतुष्ट नहीं होते थे। वे अधिकतर कैम्ब्रिज मैथमेटिकल जर्नल में प्रकाशित होने वाले गणित के सवालों को हल करते थे। तिलक जब 10 वर्ष के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया और जब तिलक 16 साल के थे तब उनके पिता भी चल बसे। तिलक जब मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहे थे उसी समय उनका विवाह एक 10 वर्षीय कन्या सत्यभामा से करा दिया गया। मैट्रिकुलेशन के बाद 1877 में गणित से स्नातक और इसके बाद LLB डिग्री भी प्राप्त की। तिलक ने पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में गणित पढ़ाया और कुछ समय बाद पत्रकार बन गए। लोकमान्य तिलक के मन में संपूर्ण भारत एक राष्ट्र है, यह बात व्यवहार में आनी चाहिए, इस संबंध में बड़ी व्याकुलता थी। वो कहा करते थे कि भारत एक राष्ट्र है, इसका प्रमाण तभी मिल सकता है कि जब इस देश के किसी भी हिस्से पर कोई आपत्ति आए तो शेष देश के लोगों को लगे कि वो आपत्ति उन पर आई है। और उनकी इस बात से कितने लोग प्रभावित हुए उसका एक प्रमाण यह है कि पंजाब में सरदार भगत सिंह, महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह, इन लोगों को जब पता लगा कि विदर्भ में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा है तो उस अकाल में विदर्भ के लोगों की सेवा के लिए वो लोग पंजाब से आए हैं और यहाँ उन्होंने भूखों को भोजन कराया है। और उसके बाद में जब अकाल समाप्त हो गया, ये 1900 के आसपास का घटनाक्रम है, तो उस अकाल में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों को साथ लेकर के सरदार किशन सिंह पंजाब वापस गए। उन्होंने फिरोजपुर में पहला अनाथालय खोला है। इसी प्रकार से एक वर्ष पश्चात गुजरात में अकाल पड़ा। कारण क्या है कि ब्रिटिश सरकार के समय में भारत में निरंतर अकाल पड़ते रहते थे। हर 2 मिनट में 3 भारतीय भूख से मरते थे। हर वर्ष 7-7.5 लाख भारतीय निरंतर अंग्रेजी शासनकाल में भूख से मरे हैं। तिलक का जन्म 1856 में हुआ था। ठीक 1 साल बाद, यानी जब वे 1 साल के थे, तब 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। तिलक के दादाजी रामचंद्र पंत इन्हें इस क्रांति में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाया करते थे। इससे बाल्यकाल में ही इनमें एक चिंतक के गुणों को जागृत कर दिया। तिलक ने देश की तत्कालीन परिस्थितियों पर बहुत गहरा चिंतन किया। उनका स्पष्ट मानना था कि अंग्रेजों द्वारा जिस पद्धति के आधार पर भारतीयों को शिक्षा दी जा रही है वो केवल इतनी ही है जिससे कि अंग्रेज हम पर लंबे समय तक शासन कर सकें। उनका ये मानना था कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था ही अच्छे नागरिकों को जन्म दे सकती है।
उन्होंने युवा वर्ग को अच्छी शिक्षा देने के लिए आगरकर और महान समाज सुधारक विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने 2 साप्ताहिक पत्रिका मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन शुरू किया। इसके माध्यम से तिलक ने भारतीयों के संघर्ष और परेशानियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जंग आज़ादी न सिर्फ राजनीति बल्कि पत्रकारिता के माध्यम से भी की है। उसका प्रारंभ तो उनका वास्तव में पत्रकारिता से ही हुआ है और उनको जो 3 कारावास भुगतने पड़े उन तीनों का संबंध पत्रकारिता से ही है। उन्होंने तीव्र और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हुए एक भारतीय से अपने हक के लिए लड़ने का आह्वान किया। तिलक ने कई विषयों पर किताबें लिखी। तिलक एक महान समाज सुधारक भी थे। फिरोज शाह मुझे ऐसे लगते हैं जैसे हिमालय हो। बाल गंगाधर तिलक ऐसे अगाध महासागर मुझे दिखते हैं कि जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल है, और गोखले ऐसे हैं कि वो गंगा के समान है, सबको अपने पास बुलाते हैं। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि सारे प्रोग्राम जो हैं असहयोग आंदोलन के वो हैं जो बाल गंगाधर तिलक ने दिए हैं, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा का हो, चाहे वो विरोध का हो, स्वदेशी का हो, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का हो। ये एक ऐसा मामला है, ऐसा लगता है कि शायद गोखले का अनुयायी होना, तिलक के सारे प्रोग्राम्स को अंगीकार करना भी गोखले के अनुयायी होना, वो दोनों चीज़ें शायद समानार्थी हैं। उन्होंने नशाबंदी के लिए भी सरकार पर दबाव डाला। साथ ही दलित और वंचित कहे जाने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भी कार्यक्रम चलाए। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया और इसे प्रतिबंधित करने की मांग की। वे विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। अपने जीवन काल में वे पुणे म्युनिसिपल काउंसिल, बॉम्बे लेजिस्लेचर के सदस्य और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के निर्वाचित फेलो भी रहे। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने तिलक को आमंत्रित किया और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ जो बंगाल में हुआ है वो स्वयं तिलक की उपस्थिति में ही हुआ है। इसी प्रकार से पूरे देश के भ्रमण का अवसर लोकमान्य तिलक को मिला है। तो सारे देश के अंदर अपना संदेश गूंजा करके पूरे देश में स्वदेशी, स्वराज्य, विदेशी का बहिष्कार और राष्ट्र शिक्षा, इन 4 सूत्रों के संबंध में जागरूकता फैला करके तिलक जी निरंतर काम में लगे रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी के जन्मोत्सव जैसे सामाजिक उत्सवों को प्रतिष्ठित कर उन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य भी किया। इसमें शामिल होने वाले युवकों को देश हित में 11 शपथ दिलाई जाती थी। इसे एकादश शपथ कहते थे। तिलक हैं जब विदेशी औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद हमें चूस रहा है इस भारत को, तमाम पूरे हिस्से को, तो वो उस सामूहिकता की भावना को ला करके खड़ा कर देना चाहते हैं। और उन्होंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की, क्या रिसर्च उन्होंने की और उसको अप्लाई किया कि उन्होंने गणेश पूजा चलाई, उन्होंने शिवाजी उत्सव चलाया, ताकि संपूर्ण समाज मिलकर के एक साथ इकट्ठा आए, सामूहिकता की भावना फिर से वैसी हो जो वैदिक संकल्पना के रूप में कभी दिखाई पड़ती रही थी। आप ये देखिए कि ये ऐसी चीज़ आई है कि प्रत्येक व्यक्ति जुड़ गया, पढ़ा बिना पढ़ा, गांव शहर, मजदूर, गरीब से गरीब, अमीर से, सब इसमें जुड़ा। और इससे जो राष्ट्रवाद एक मुखरित स्वरूप दिखाई पड़ा और उससे बाकी प्रांतों ने भी एक प्रेरणा ली और अंततः यहाँ पर कॉलोनियल ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को भागना पड़ा, छोड़ करके जाना पड़ा, देश आज़ाद हमारा हुआ। तिलक ने गोवध विरोधी समितियों, अखाड़ों और लाठी क्लबों की स्थापना की। इसी क्रम में बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और उत्तर भारत से लाला लाजपत राय भी इनसे जुड़े थे। जब महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी और भुखमरी हुई थी, तब सरकार की उदासीनता से गुस्साए क्रांतिकारी चाफेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को अंग्रेज प्लेग ऑफिसर रैंड को मार डाला। तिलक ने चाफेकर बंधुओं की फांसी का खुलकर विरोध किया था। पहली बार
कोल्हापुर के एक अंग्रेज परस्त अधिकारी ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया और अदालत ने उनको 4 मास के कारावास का दंड दिया। दूसरी बार प्लेग कमिश्नर रैंड के हत्याकांड में लोकमान्य तिलक को घसीटा गया। अंग्रेज सरकार ने माना कि जिस प्रकार की संपादकीय है वो अपने केसरी और मराठा में लिख रहे थे, उनके कारण से युवकों को हिंसा करने का उकसावा मिला है और चाफेकर बंधुओं ने रैंड नामक प्लेग कमिश्नर पूना की हत्या की और साथ में एक अंग्रेज सेनाधिकारी को भी उन्होंने मार डाला। तिलक जी के संपादकियों के संबंध में सेडिशन का चार्ज उन पर लगा और उनको 18 मास का कारावास हुआ। उसके बाद जब वो लौटे तो 4 जुलाई 1899 को केसरी अखबार में उन्होंने पुनश्च हरिओम इस शीर्षक से एक संपादकीय लिखा है। यह संपादकीय भारत में तिलक युग के आविर्भाव का प्रतीक है। उन्हें इस हत्या का प्रेरक मानते हुए तिलक को 1.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। वे 1898 में रिहा हुए और स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया। जो कांग्रेस को एक मास मूवमेंट बनाया, जो उनसे पहले नहीं थी, वो केवल प्रोटेस्ट, पिटिशन और प्रेयर, इन तक कांग्रेस सीमित रहती थी। वहाँ से निकाल करके वो उसको जनता के बीच में ले गए। उन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन को एक जन आंदोलन बना डाला। इसके 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1905 में जब तिलक ने स्वदेशी का आंदोलन प्रारंभ किया तो उन दिनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए जो कॉपियाँ मिलती थी, पता लगा कि वो कॉपियाँ विदेशी कागज़ की हैं। तो तमाम नगरों के अंदर विद्यार्थियों ने वो कॉपियाँ फाड़ दी और कहा कि हम स्वदेशी कागज़ की कॉपियों पर ही उत्तर लिखेंगे। पुलिस बुलाई गई हर जगह। पुलिस उनको बैंत से पीटने वाली थी तो विद्यार्थियों को पता लगा कि ये बैंत भी विदेशी हैं। उन्होंने कहा कि हम पिटेंगे पर स्वदेशी बैंत से। एक और उदाहरण है 1906 का। 12 साल बंगाल के अंदर वैश्याओं के कोठे पर एक बड़े जमींदार धनाढ़ जमींदार पहुंचे और उन्होंने एक विदेशी शराब की बोतल खोल ली। वैश्याओं ने कहा कि अगर शराब पीनी है तो स्वदेशी ही पीना, विदेशी शराब यहाँ पर नहीं पी जा सकती। और वो उस जमींदार को घसीटते हुए अश्विनी कुमार दत्त, जो स्वदेशी आंदोलन के एक महान नेता थे, लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे, उनके यहाँ ले गए और कहा कि देखिए ये विदेशी शराब पीता है। यानी इस प्रकार से समाज के प्रत्येक वर्ग के अंदर लोकमान्य तिलक का स्वदेशी का आह्वान पहुंचा था। तिलक ने 1905 में किए गए बंगाल विभाजन का जमकर विरोध किया। साथ ही कांग्रेस के अधिवेशन में फहराए जाने वाले यूनियन जैक का भी उन्होंने विरोध किया था। वे 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए तथा उन्होंने स्वराज की मांग रखी। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय भी उनके इस मांग के समर्थन में आ खड़े हुए। कांग्रेस को उन्होंने प्रार्थना, अनुनय, विनय इससे निकाल करके और वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ वो साधिकार अपनी बात कह सकते थे ब्रिटिश साम्राज्य से। औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारत चूँकि बहुत ही ऐसा निशाना था, उसके शिकंजे में था, तमाम आर्थिक शोषण, दोहन, हर तरह की चीज़ हो रही थी। रेल ने इस दोहन को बेइंतहा बढ़ा दिया था 19वीं शताब्दी में, और आप देखते हैं कि अकाल, रेल और अकाल एक साथ आते हैं। तो वैसी स्थितियों में तिलक ने क्या किया कि कांग्रेस के अंदर, आंदोलन के अंदर अधिकारिता की भावना जागृत की और स्वराज्य की संकल्पना रखी। ये वो व्यक्ति है कि जिनके कारण से हम जानते हैं कि पहले कांग्रेस में यूनियन जैक फहराया जाता था, ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय ध्वज है, और उसके शुभारंभ पर कांग्रेस के सेशन के और सेशन की समाप्ति पर, जो प्राय 3 दिन चलता था, दिसंबर के महीनों के आखिरी हफ्तों में चलता था, दिसंबर महीने के, तो गॉड सेव द किंग गाया जाता था, नेशनल एंथम ब्रिटेन की गाई जाती थी।
उन्होंने इसका विरोध किया, सक्रिय विरोध किया, और स्वयं ही नहीं बल्कि इस लेवल पे ले आए कि ये हमें भिक्षावृत्ति है कि हम हर साल एक बार मिलते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, ये कर दीजिए, उनसे प्रार्थना अनुनय विनय करते हैं, और वो कभी कोई ध्यान नहीं देते, उसको वो रद्दी के टोकरे में डाल देते हैं। लिहाजा हमें ये इससे निकलना पड़ेगा, भिक्षावृत्ति से हमें निकाल के लाना पड़ेगा राष्ट्र को, और हम अपने लोग, हम जो अपनी मांगों को जो सामने रखेंगे वो अधिकार के साथ रखेंगे। और उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनका ये दल लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हो गया। 1911 में डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट वापस होने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका तिलक की थी। 21 वर्ष का यह जो कालखंड है, यह भारत की राजनीति में तिलक युग कहलाता है। पुनश्च हरिओम के बाद में उन्होंने स्वदेशी, स्वराज्य, विदेशी का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये अपने 4 सूत्र भारत के सामने रखे, और अगले 47-48 वर्ष तक यही भारतीय राजनीति और भारतीय समाज का एजेंडा रहने वाला था। इसी से प्रेरणा लेकर के तमाम लोग राजनीति में आगे बढ़े हैं। 30 अप्रैल 1908 की रात्रि में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बम विस्फोट किया। इस विषय पर केसरी के मई व जून के 4 अंकों में प्रकाशित संपादकीय लेखों को राजद्रोहात्मक ठहराकर अंग्रेज जज ने तिलक को 6 साल की सजा सुनाई और देश से निष्कासित कर दिया। जो तीसरा और अंतिम कारावास लोकमान्य तिलक को मिला वो 1908 का है, जब उन्होंने मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के द्वारा फेंके गए बम का समर्थन किया था। उन्होंने संपादकीय में लिखा था कि ये एक बम भारत की आज़ादी प्राप्त नहीं करा सकता, लेकिन ये उन स्थितियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है जिन स्थितियों ने इस बम को जन्म दिया। इस पर भी उन पर सेडिशन का चार्ज लगा और इस बार 6 वर्ष का कारावास देकर के उनको मांडले बर्मा भेजा गया। तिलक को बर्मा के मांडले जेल में ले जाया गया। जेल में उन्होंने अपना अधिकतर समय पठन पाठन और लेखन में बिताया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य इसी दौरान लिखी। वे 8 जून 1914 को जेल से रिहा हुए। वो जीवन में एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए जा सके, लेकिन उनकी लोकप्रियता किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष से अधिक रही है। इसका एक उदाहरण 1916 का लखनऊ कांग्रेस का है, और ये राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसमें यद्यपि कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे अंबिका चरण मजूमदार, लेकिन उनसे अधिक स्वागत सत्कार हुआ लोकमान्य तिलक का। यानी अधिवेशन से एक दिन पहले जब मजूमदार साहब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उतरे तो 50-60 लोग उनके स्वागत में एकत्र थे और उनको एक वो खुली गाड़ी में बैठा करके अधिवेशन स्थल पर ले गए। अगले दिन तिलक आए तो उस दिन रेलवे स्टेशन खचाखच ही नहीं भरा था, बाहर भी हज़ारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। तो लोगों ने कहा कि जिस गाड़ी में मजूमदार साहब को ले जाया गया है वही गाड़ी तिलक जी के लिए भी लाई जाए, पर कांग्रेस के लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। अंत में एक तांगे में से घोड़ों को खोल करके तिलक जी को उस पर बैठाया गया और उस तांगे में 2 लंबी रस्सियां बांधी गई और सैकड़ों नवयुवक उसको खींचते हुए कांग्रेस के अधिवेशन स्थल तक ले गए। उस संदर्भ में रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा है कि हम लोगों पर तो उस समय तिलक जी का ऐसा और सम्मोहन सवार था कि मुंह से बोल भी नहीं निकलता था। तिलक जिंदाबाद, तिलक की जय हो, ये सब बातें भी बोलते लगता था कि हम स्वयं बोल पा भी रहे हैं कि नहीं। 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वराज था। 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग सक्रिय हुई। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये सन 21 के अधिवेशन में हैं और क्या कोशिश कर रहे, कांग्रेस में है ये 20, 21, 22 में ये बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। उस वक्त कांग्रेस के टॉप के लोगों में से ये दोनों हैं
दोनों चाहते हैं स्वराज्य पार्टी। देखिए वही स्वराज्य जो इन्होंने होम रूल लीग की बात की है। होम रूल किस तरह से चीज़ आई, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एनी बेसेंट के साथ इन्होंने चलाया, जो एक फोन इन महिला थी और कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं और इस देश की अन्यतम उन्होंने सेवा की है, वो प्रातस्मरणीय है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए स्वराज्य दल ने भी, जिन्हें गांधी जी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, वो चुनाव भी लड़े और उन्हें हटना पड़ा बाद में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरह सेवा। स्वराज पार्टी भी, स्वराज्य शब्द वो भी इससे संचालित है, वो भी प्रेरणा पा रहा देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और जो गांधी जी हैं दूसरी तरफ, वो सारा प्रोग्राम ही वो लेके चल रहे हैं। इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में तिलक साल 1918 में इंग्लैंड भी गए। तिलक ने जो प्रोग्राम 1905 में दिए, जो प्रोग्राम उन्होंने आगे दिखाई पड़ते हैं 6 में, स्वदेशी का है, राष्ट्रीय शिक्षा का है, या उन्होंने कोशिश की है कि भाई इनका विरोध किया जाए, और ऐसा विरोध जिसमें सरकार के प्रति निष्क्रियता बरतने की पर सक्रियता हो। कहाँ सारी एक्टिविटी हो, पूरे एक्टिव हो जाए हम कि सरकार को हम कुछ भी समर्थन नहीं देंगे। आप देखते हैं कि बाद में जो तृतीय चरण कांग्रेस का है और जो बाद में गांधी युग कहलाता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के अगर आप ध्यान करें, विश्लेषण करें, तो एक पॉइंट को तो अलग हटा दें, वो तो उतना मुखर नहीं था, बाकी सारे ही प्रोग्राम वो हैं जो तिलक ने दिए हैं। जो बाल गंगाधर तिलक ने निष्क्रिय रूप में विरोध करने की सक्रियता हमारे साथ कही गई है और अधिकार की बात की गई है। 1 अगस्त 1920 को भारत के महान सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उनकी शव यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। देश में कई जगहों पर लाखों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस यात्रा को स्वराज यात्रा कहा गया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बताया। लाला लाजपत राय ने उन्हें भारत में दहाड़ने वाला शेर कहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, उन्होंने देश के लिए असीम आपत्तियां उठाई, क्योंकि भारत का प्रेम ही उनके हृदय की प्रधान भावना थी। मैं भारत का संविधान हूं। मेरी निर्माण प्रक्रिया से पहले कई देशों के संविधान पढ़े गए, समझे गए और फिर उन तमाम प्रावधानों को लेने पर सहमति बनी जो संसदीय लोकतंत्र को गति देने में सहायक सिद्ध हो सकते थे। साथ ही इस व्यवस्था में देश के ग्रामीण इलाकों को भी तवज्जो मिलनी चाहिए, इस ओर ध्यान आकर्षित किया था मेरे सदस्य गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। संविधान सभा का जब पहला ड्राफ्ट आया तो श्रीमन नारायण ने दिसंबर 1947 में गांधी जी का ध्यान इस ओर खींचा और बताया कि इसमें पंचायती राज का जिक्र नहीं है। आखिरकार नवंबर 1948 में पहली बार पंचायती राज को लेकर बहस हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर खेद जताया और BN राव से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। उनका जवाब था कि प्रारूप को बदलना इस समय संभव नहीं है। संविधान को गांव से शुरू होकर केंद्र तक पहुंचना चाहिए। भारतवर्ष में गांव ही बुनियादी इकाई रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसके बाद पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्व के तौर पर स्वीकार किया गया। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधी जी के विचारों का विश्लेषण कर स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया नाम का दस्तावेज लिखा, जो 60 पन्नों और 22 अध्यायों में फैला था। इसमें बुनियादी सिद्धांत, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, आंचलिक सरकार, केंद्र सरकार और न्यायपालिका सरीखे विषय शामिल थे। हालांकि तब परिस्थितियों के चलते इस दस्तावेज को पूरी तरह संविधान सभा अपना नहीं पाई थी, पर गांधी जी के इस वैचारिक धरातल के प्रति श्रीमन नारायण अग्रवाल की प्रतिबद्धता बनी रही। तो अगली बार बात ऐसे ही एक अलहदा विचारों वाले व्यक्तित्व की।
देश प्रेम की अग्नि जल रही है जन जन के सीने में। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से बदला वातावरण जम्मू कश्मीर का, बदला है नॉर्थ ईस्ट। नभ में लहराया तिरंगा, नस नस में बहती शौर्य गंगा। सैन्य बल से है शत्रु भ्रांत, देश का मान INS विक्रांत। रक्षा बजट वृद्धि से देश हुआ शक्तिशाली, आतंक चकनाचूर, भारत के पराक्रम के साक्षी उरी। डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर हुए रवाना। पहले पड़ाव में ब्रिटेन दौरे में प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा फोकस। बिहार SIR मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेश किए 2 विधेयक। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस सभापति ने किए खारिज। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी हमलावर, बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित करने की मंशा पर उठाए सवाल। विपक्ष पर लगाया लोकतंत्र को शोरतंत्र में बदलने का आरोप। कहा बेवजह और बेबुनियाद है विरोध। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जल्द। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। गृह मंत्रालय ने कल जारी की थी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की अधिसूचना। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। भारत की तरफ से अंशुल काम्बोज कर रहे हैं टेस्ट डेब्यू। साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर भी टीम में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दौरे के पहले चरण में पीएम ब्रिटेन पहुंचेंगे। पीएम वहां अपने समकक्ष कीयर स्टार्मर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के साथ भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचेंगे। पीएम वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम ने अपने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में भारत यूके व्यापार रणनीतिक साझेदारी का जिक्र किया। पीएम ने उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जिनमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से उनकी वार्ता में दोनों देशों के पास आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने का अवसर होगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा है। मालदीव यात्रा को लेकर पीएम ने कहा कि व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के संयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मोइत्जू सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम की इस यात्रा के महत्व को लेकर यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी से बात की हमारे संवाददाता आरेंद्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 जुलाई को यूके के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे में क्या है खास, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूके में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी जी। सर, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर वक्त देने के लिए। प्रधानमंत्री की ये 4थी यूके की यात्रा है। इस यात्रा में क्या महत्वपूर्ण और कैसे खास होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है प्रधानमंत्री की इस यात्रा में? जी, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा इस बार बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजार रहे हैं यहाँ पे, मगर उनका एजेंडा बहुत फोकस्ड है, उनका बहुत सटीक एजेंडा है। उनका फोकस ज़्यादातर जैसे कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप पे है, ताकि इंडिया और यूके, हालांकि हमारी मैत्री की इतिहास भी काफ़ी पुरानी है, मगर आज की तारीख में, आज की दुनिया में हमें फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसमें ट्रेड, व्यापार जो हमारे बीच में अच्छा है, इन्वेस्टमेंट दोनों देश में निवेश काफ़ी भारी मात्रा में होता है, टेक्नोलॉजी की जो पार्टनरशिप होती है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल में ये है कि हायर एजुकेशन का जो पार्टनरशिप, जो नया सिलसिला शुरू हुआ है यूके के साथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इन चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर साहब फोकस देंगे उनके दौरा पे, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि आगे वाले अगले कुछ 2-4 साल में पीएम साहब के विज़िट के बाद हमारी रिलेशनशिप एक नए स्तर पर पहुंचेगी। सर, प्रधानमंत्री के इस दौरे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी लगातार सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस मोर्चे पर इस में क्या कुछ होने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं इसको लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री साहब का ऑफिशियल विजिट है। गलत होगा कि अगर मैं पीएम साहब के पहले कुछ कह दूं, तो कोशिश जो है कि मेहनत अभी हो रही है टू कंप्लीट द एग्रीमेंट। जो भी कागजी काम जो होता है काफ़ी डिटेल्ड काम है। कुल मिला के ये 2000 से ज़्यादा पन्ने का एग्रीमेंट है। बहुत डीप और कैसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट है। ये इंडिया के लिए जब कंप्लीट हो जाएगा सबसे ज़्यादा डिटेल्ड और एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो इसलिए जो है सारा जो लीगल काम जो होता है उस पर धीरे से काम करना पड़ेगा और बड़े बड़े पेशेंस और मतलब ख्याल से काम करना पड़ेगा। तो वो हो रहा है। उम्मीद रखते हैं कि वी कैन फिनिश इट। सर, इस एफटीए के बीच में क्योंकि जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूके में काम कर रहे हैं उनके लिए टैक्स कंट्रीब्यूशन में भी उसमें उनको मदद मिलेगी, एक बेनिफिट उनको होगा, बचत होगी। एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में किस तरीके से ये बेनिफिट करने जा रहा है इंडियन प्रोफेशनल्स को? जी, तो एफटीए में टैक्स का पीस नहीं है इसमें। एफटीए के साथ साथ हमने ये एग्री किया है यूके के साथ, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साथ में तय होगा। ये जब एफटीए फाइनल होगा, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, जब दोनों प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था 6 मई को नेगोशिएशंस कंप्लीट हुए हैं, तब उस वक्त में हमने ये भी अनाउंस किया था कि हमने ये भी एग्री किया है यूके के साथ कि एक डबल कंट्रीब्यूशंस कन्वेंशन भी साथ में लागू होगा जब एफटीए एंट्री इनटू फोर्स होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग इंडिया में अभी अपने पेंशन फंड में पैसे डाल रहे हैं और यहाँ पे आके कुछ 2 या 4 साल के लिए काम करेंगे इंडियन एमएनसी के लिए या दूसरे एमएनसी के लिए, उनको दुगना कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरफ से उनके लिए ये फ़ायदा है कि अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन जो देश में दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं, वो बरकरार रहे और यहाँ आके उनको दूसरी बार नहीं देना पड़े, जो कि अगर वापस चले जाते हैं तो उनके लिए दैट इज़ नेट लॉस। वो यहाँ का कंट्रीब्यूशन पूरा वेस्ट हो जाता है। तो फेयरनेस के तौर से और इकोनॉमिक वैल्यू के तौर से ये अच्छा है हमारे लिए। पर ये टू वे है। लोग यहाँ पे कभी कभी भूल जाते हैं कि ये टू वे होगा। जो ब्रिटिश लोग जो इंडिया में जाके वर्क करते हैं, और काफ़ी सारे हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो उनको भी सिर्फ यूके में देना पड़ेगा अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन। सो फेयरनेस का भी बात है और इंसेंटिव टू वर्क टुगेदर वो भी है साथ में। उसके अलावा एफटीए में टैक्स के अलावा सिंप्लीफाइड मूवमेंट ऑफ पीपल जो फॉर बिजनेसेस, इसको कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। इंटर कंपनी ट्रांसफर्स भी थोड़ा आसान हो जाएगा। मानिए कि अगर यहाँ पे कोई ब्रिटिश कंपनी इंडिया में निवेश करता है, उनके मैनेजर्स को आने जाने में 1 साल या 2 साल में काम करने के लिए उनमें सुविधा होगी। यहाँ पे हमारे टेक कंपनीज को भी सुविधा होगी और हम मेजर इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स यूके में। तो बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अगर बिजनेस के लिए अच्छा होगा तो जाहिर है कि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, दोनों इकोनॉमीज के लिए अच्छा होगा। ओके सर, कुछ सेक्टर्स की अगर बात करें तो आपने डिफेंस का, हेल्थ का, एजुकेशन का जिक्र किया। कोई स्पेसिफिक तरीके से आपको लगता है कुछ सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर ही हमने एनर्जी को लेकर काफ़ी काम किया है। इस विजिट में कुछ स्पेसिफिक फोकस्ड सेक्टर रहने वाले हैं जिसमें हम शायद ज़्यादा बेहतर काम करेंगे? एक जैसे कि मैंने अभी कहा, मेन मुद्दा ये है हमारे लिए कि अगर आगे जाके देखें तो रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन शुड बी फोकस एरियाज यूके के साथ। जैसे कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो यूके के साथ हमने साइन किया था पिछले जुलाई, फाइनलाइज किया था पिछले जुलाई, उसमें 7 पिलर्स हैं। वो 7 पिलर्स क्या हैं? ये है टेलीकॉम्स। यूके और हमारी टेलीकॉम्स इंडस्ट्रीज़ काफ़ी तगड़े हैं एंड हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। एयरटेल ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, BT ब्रिटिश टेलीकॉम में। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स
मिनरल्स तो माइनिंग कर सकते हैं, मगर उसका जो रिफाइनिंग है, उसका बेनिफिशिएशन जो कहते हैं उसका, वो सब साथ में करना है। इनके पास टेक्नोलॉजीज़ है, हमारे पास भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, साथ में काम करें तो और बेहतर रहेगा। एडवांस्ड मटेरियल्स जो हैं जिसके लिए इंडस्ट्री का में काम आएगा, ड्यूअल यूज़ भी हैं, स्पेस के लिए भी काम आ सकते हैं, डिफेंस के लिए भी काम आ सकते हैं। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, जहाँ पे आप तो जानते ही हैं कि कोविड के काल में जो सेरम इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने जो 3 बिलियन वैक्सीन जो दिए थे, ये हमारे जो वैक्सीन का दुनिया में, उसका 80% सेरम इंस्टीट्यूट ने बनाया और यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे हुआ था। तो अगर आप देखें तो हेल्थ केयर में भी काफ़ी जगह है फॉर अस टू वर्क टुगेदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर एंड क्वांटम में, दीज आर आवर 7 पिलर्स। तो इनमें पार्टनरशिप के संदर्भ हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया सर, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और खबरों में आगे, भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने कल अपने राजपत्र अधिसूचना SO3354E के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी की है। भारत के चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 द्वारा शासित होता है। तदनुसार भारत के चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने पर भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रमुख पूर्व घोषणा गतिविधियां जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं, उनमें निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को अंतिम रूप देना और सभी पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना शामिल है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में दिए लिखित जवाब में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर अहम जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और ये गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नागर हवेली से होकर गुजरेगा। प्रोजेक्ट में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुंबई, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद प्रमुख हैं। वापी से साबरमती तक का हिस्सा दिसंबर 2027 तक पूरा होगा, जबकि पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था। वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए। तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार व्यवधान के बाद कल तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं लोकसभा में विपक्ष का हंगामा और व्यवधान के बीच ही केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना है।
वहीं राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 का मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। थाली से दिखती है खुशहाली, मंडी बाजारों में आई खेतों से हरियाली, फसलें लहराई, समय पर पानी और सिंचाई से हुआ कायाकल्प मोदी जी की अगुवाई से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मोबाइल देता आवश्यक सूचना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मिली निजात धन की समस्या से। किसान सशक्त खुशहाल हो रहा है, खुशहाली के बीज बो रहा है, अद्वितीय विकास हो रहा है। विकास का अमृतकाल मना रहा है भारत, कृषि को सफल व्यवसाय बना रहा है भारत। मोदी सबके हित का ख्याल रखते हैं, मोदी सबके दिलों में बसते हैं। विकसित भारत का अमृतकाल। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के पहले 2 दौर के दौरान देश की शीर्ष कंपनियों द्वारा युवाओं को 1,53,000 से अधिक प्रस्ताव दिए गए हैं। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जवाब देते हुए एक लिखित उत्तर में कहा कि PM इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के पहले दौर में साझेदार कंपनियों ने देश भर में PMIS पोर्टल पर 1,27,000 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए। इसके सापेक्ष लगभग 1,81,000 उम्मीदवारों से 6,21,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। साझेदार कंपनियों ने 60,000 से अधिक उम्मीदवारों को 82,000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए, जिनमें से 28,000 से अधिक उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप में शामिल होने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए और 8,700 से अधिक उम्मीदवार उनकी इंटर्नशिप में शामिल हुए। उन्होंने लिखित उत्तर में बताया कि 9 जनवरी 2025 को शुरू हुई PM इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के दूसरे दौर में लगभग 327 साझेदार कंपनियों ने देश के 735 जिलों में 1,18,000 से अधिक इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए हैं। इस दौर में 2,14,000 से अधिक आवेदकों में से 4,55,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेश जैन ने आज कहा है कि छांगुर के बाद आगरा के अब्दुल रहमान के पकड़े जाने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि किस प्रकार धर्मांतरण का जाल पूरी मजबूती के साथ संपूर्ण देश में बिछाया जा चुका है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून बना है, उन राज्यों के अंदर भी ये मजबूती से काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान के पास जो लड़की मिली है वह हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है, जहां धर्मांतरण विरोधी कानून तो पहले से है, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से मिशनरी और मौलवी धर्मांतरण कर रहे हैं, संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। धर्मांतरण मामले में अभी तक जिन 10 से 12 राज्यों के बारे में जानकारी मिली है, उनमें से 4-5 राज्यों के अंदर तो धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू है। उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात इन सब में है, लेकिन उसके बावजूद धर्मांतरण हो रहा है और जिन राज्यों में कानून नहीं है, वहां धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है। हमारी अपील है केंद्र सरकार से, तुरंत राष्ट्रव्यापी कानून बनाया जाना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो। धर्मांतरण का कुचक्र केवल हिंदू समाज पर प्रहार नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि इनका सीधा सीधा संबंध PFI के साथ, FDPI जैसे आतंकी संगठनों के साथ है और संपूर्ण विश्व के जिहादी तत्वों से इनको फंडिंग हो रही है।
पहले देश में उद्योग और उद्यम का एक समृद्ध केंद्र माना जाने वाला बंगाल अब उद्योग के लिहाज से पिछड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राज्य के खराब हालात को देखते हुए हजारों कंपनियों ने अपने ऑफिस को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां राज्य से पलायन कर चुकी हैं। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2011 में ही तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई थी। पश्चिम बंगाल से कंपनियों के पलायन की जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2011 से अब तक 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल से बाहर जा चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा पलायन 2017 से 2018 में देखा गया, जब 1,000 से ज्यादा कंपनियों ने राज्य में अपने ऑफिस को बंद कर दिया। इसे लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में कहा कि पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गईं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत 6,688 कंपनियों ने 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2025 के बीच अपने पंजीकृत कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल छोड़ने वाली 6,688 कंपनियों में से 110 कंपनियां स्थानांतरण के समय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं। व्यवसायों का यह सामूहिक पलायन टीएमसी शासन के तहत राज्य के औद्योगिक माहौल की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। जहां बंगाल की कभी उद्यम का केंद्र हुआ करता था, वहीं खराब शासन, नीतिगत अस्थिरता और निवेशकों के विश्वास की कमी ने कंपनियों को यहां से दूर कर दिया है। 2015-16 में 869 कंपनियां चली गईं, 2016-17 में 918 कंपनियां और 2017-18 में 1,027 कंपनियां चली गईं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र में 1,308, दिल्ली से 1,297, उत्तर प्रदेश में 879, छत्तीसगढ़ में 511, गुजरात में 423 और राजस्थान में 333 कंपनियों का स्थानांतरण हुआ है। अमित मालवीय ने कहा कि असम, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी सैकड़ों कंपनियों को आकर्षित किया है। अमित मालवीय ने आगे कहा कि यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में नौकरियों के नुकसान, आर्थिक गिरावट और निवेशकों के घटते विश्वास को दर्शाता है। अब ये पूछने का समय आ गया है कि इस आर्थिक पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई अन्य गणमान्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूरों को समर्पित संगठन है। मजदूरों के हितों को संरक्षित करना इसका ध्येय है। श्रमिक एक देश को बनाता है। श्रमिक की शक्ति से देश में सड़कें बनती है, देश में पुलें बनते हैं, देश में निर्माण होता है। दोस्तों, कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो देश को स्वीकार करना होता है कि किसकी शक्ति उसके पीछे लगी है। दोस्तों, कई शक्तियों का तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जिसके श्रम, जिसके पसीने के एक एक बिंदु से एक एक ईंट लगती है, एक एक निर्माण कार्य के पीछे उसका श्रम लगता है, उस श्रम का सम्मान करना, उसको सही दिशा में मार्गदर्शित करना, उसके लिए कार्य करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये संघर्ष भी सकारात्मक भी हो और आउटपुट देने वाला भी हो, ऐसा कोई संगठन है तो मेरे हिसाब से भारतीय मजदूर संघ है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नई नई टेक्नोलॉजी तो समय समय पर आएगी, लेकिन इसका ऐसा प्रयोग करना है कि श्रमिक क्षेत्र पर आंच ना आए और इसका समाज को लाभ मिले, इसका कोई दुष्प्रभाव ना हो।
जीवन में परिश्रम की क्षमता जैसे कम होती है, वैसे आगे चल के श्रम की प्रतिष्ठा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना है। और श्रम समाज को स्थापित करने वाले धर्म का अंग है, तो ये प्रतिष्ठा कम होके चलेगा नहीं। अब इन बातों का विचार कैसे करना? टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करो, हो नहीं सकता। वो आएगी, तो ज्ञान का शोध चल रहा है, उसमें से नई नई बातें आने लगी। आई हुई बात को कैसे संभालना, उसके जो परिणाम होंगे उसमें श्रमिक क्षेत्र पर आज न आए, पूरे समाज को भी उससे सुख मिले, कोई नई समस्या उत्पन्न न हो। इसलिए और सोच के आधार पर करना, ये भी हमको करना पड़ेगा। नई दिल्ली स्थित इंटेक मल्टीपर्पज हॉल में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास इंटेक ने बुधवार को कण कण में राम नामक वृत्तचित्र फिल्म का विमोचन किया। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये वृत्तचित्र भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं में रामायण की उपस्थिति को चित्रित करता है। इसमें यक्षगान, उपनिकुद्र, कठपुतली, ओडिशा की लंका पोड़ी यात्रा, असम की सत्रिया परंपराएं, मेवाती भबंग तथा रामनामी समाज जैसे अनूठे प्रदर्शन शामिल हैं। फिल्म का संदेश स्पष्ट है कि राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना के मूल में समाहित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये फिल्म भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पिछले लगभग 4 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय से इंटेक भारत की सांस्कृतिक विरासत को, मूर्त विरासत को, अमूर्त विरासत को सहेजने, संरक्षण करने, संकलित करने और सजीव बनाए रखने के लिए साधना रहते हैं। उसी अनुक्रम में विविधताओं में भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले एक प्रमुख तत्व भगवान श्री राम की कथा और उस कथा का चित्रण, विरूपण जिस तरह से इस देश में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न बोली में, विभिन्न भाषा में और देश के बाहर भी अनेक देशों में जिस तरह से किया जाता है, उस सब को एक साथ संजो करके उस विविधताओं को एकता के साथ में जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री में चित्रित किया गया है, वो निश्चित रूप से अद्भुत है। और इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश की आज़ादी के लिए घने जंगलों और बीहड़ों में आंदोलन चलाने वाले लोगों में अग्रणी रहे भगवान बिरसा मुंडा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, जिसे ऊल गुलान कहा जाता है। वनवासियों के बीच अंग्रेजों के विरोध में सशस्त्र क्रांति की अलख जगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ा था। अंग्रेजी षड्यंत्रों को भली भांति समझने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने धार्मिक स्तर पर और राजनैतिक स्तर पर काम शुरू किया था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के सिंहभूम जिले के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बचपन तो सगे संबंधियों के यहाँ बकरियां चराने में बीता। बाद में कुछ दिनों के लिए चाईबासा के जर्मन स्कूल में पढ़ने गए तो वहाँ वनवासी आदिवासी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता था। भगवान बिरसा ने विरोध किया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने इन्हें स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद स्वामी आनंद पांडे से संपर्क होने पर
भगवान बिरसा को अपने देश की संस्कृति, धर्म और महाभारत के पात्रों का परिचय हुआ। ये कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटीं जिनके कारण लोग भगवान बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। भगवान बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष शुरू कर दिया। 1898 में डोंबरी पहाड़ियों पर विशाल सभा हुई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया। 24 दिसंबर 1899 को आंदोलन शुरू हुआ। तीरों से पुलिस थानों पर आक्रमण करके उनमें आग लगा दी गई। सेना से भी सीधी मुठभेड़ हुई, किंतु तीर कमान गोलियों का सामना नहीं कर पाए। भगवान बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए। इसी बीच किसी देशद्रोही ने मुखबरी कर भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें विष दे दिया गया था। लोकगीतों और जातीय साहित्य में भगवान बिरसा मुंडा आज भी जीवित हैं, अजर हैं और अमर भी। जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा ने वीरगति पाई थी, वहां केंद्र सरकार की योजना से उनकी याद में एक संग्रहालय और उद्यान बनाया गया है। साथ ही 25 फीट की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। हमेशा से कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। सच भी है और सही भी, क्योंकि निरोगी शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर एक बार शरीर ने साथ छोड़ दिया तो वो फिर वापस नहीं मिलता। स्वस्थ रहना आदत में शामिल करना ही होगा, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता बना ही नहीं है। हर समाज, हर देश की असल पूंजी ही उसके स्वस्थ लोग हैं। किसी भी देश का विकास सीधा उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इस बात को केंद्र सरकार भी समझती है और यही कारण है कि पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी जमीनी बदलाव हुए हैं। नागरिकों को स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 7 विषयों पर, या ये कह सकते हैं स्वास्थ्य के सप्त ऋषियों पर फोकस किया है। पहली कोशिश ये है कि बीमारी की नौबत ही नहीं आए, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमारी सरकार ने बहुत जोर दिया है। ये योग, फिटनेस, स्वच्छता, ऐसे कई कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। दूसरा, अगर बीमारी हो गई तो शुरुआत में ही पता चल जाए, इसके लिए देश भर में नए टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तीसरा फोकस ये है कि लोगों को घर के पास ही प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को पूरे देश में वेलनेस सेंटर के रूप में एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है। चौथा प्रयास ये है कि गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले। इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
आज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथियों, हमारा 5वां फोकस इस बात पर है कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों पर निर्भरता कम से कम हो। इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। लोगों को प्राथमिकता देने की सोच के साथ सरकार ने सभी नागरिकों, विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत हो या दूरगामी ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, फोकस स्पष्ट रहा है। सरकार का प्रयास है कि सभी के लिए किफायती, सुलभ और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। भारत सिर्फ कोविड-19 संकट से ही नहीं निपटा, बल्कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक देते हुए दुनिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार बनकर उभरा और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। मिशन इंद्रधनुष जैसे बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों के जरिए निवारक देखभाल में तेजी आई है। एम्स संस्थानों और एमबीबीएस सीटों के रिकॉर्ड विस्तार के साथ चिकित्सा शिक्षा में व्यापक बदलाव किया गया है, जिससे देश के हर कोने से डॉक्टर्स की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाया गया है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनरिक दवाएं आसानी से उपलब्ध हो गई हैं, जिससे परिवारों को चिकित्सा खर्चों में लाखों की बचत हो रही है। ये केवल बुनियादी ढांचे की कहानी नहीं है, ये प्रभाव की कहानी है। मात्र मृत्यु कम हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वास पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। जैसे जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, इसकी स्वास्थ्य यात्रा अब केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित न होकर एक राष्ट्र के पोषण के लिए है। स्वास्थ्य अब एक अधिकार बन गया है, विशेषाधिकार नहीं। मोदी सरकार के तहत सम्मान, देखभाल और आशा को केंद्र में रखकर प्रत्येक भारतीय का जीवन मायने रखता है। 23 सितंबर 2018 को सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को महंगे स्वास्थ्य सेवा खर्च से बचाने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया। भारत की आबादी के 40% निचले हिस्से को लक्षित करते हुए इस योजना में लगभग 12.37 करोड़ परिवार शामिल हैं, जिससे लगभग 55 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। 29 अक्टूबर 2024 को इसके ऐतिहासिक विस्तार में सरकार ने आयुष्मान वय वंदना की शुरुआत की, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ABPMJAY लाभ प्रदान कर रही है। ये कदम बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके बुढ़ापे में सम्मानजनक, चिंता मुक्त उपचार सुनिश्चित करता है। इतना ही नहीं, ये योजना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का भी ध्यान रखती है, जो राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने स्वास्थ्य और कल्याण को भी सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार ने पूरे देश में एक मजबूत और एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। ABDM सुरक्षित, अंतर संचालन योग्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों, रोगियों, स्वास्थ्य प्रदाताओं और नीति निर्माताओं के बीच के अंतर को कम करता है। मिशन के केंद्र में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है, जो नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक निर्बाध कागज रहित पहुंच के लिए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने और प्रबंधित करने के लिए सक्षम करता है। भारत की डिजिटल विविधता को पहचानते हुए मिशन सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी या डिजिटल पहुंच वाले क्षेत्रों में ABHA निर्माण के लिए सहायता प्राप्त और ऑफलाइन मोड भी प्रदान करता है। उपयोग को और सरल बनाने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ABHA ऐप
और आरोग्य सेतु जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन को एकीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन एक ऐतिहासिक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें चुनिंदा केंद्रीय क्षेत्र घटक हैं, जिसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 64,180 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण है, जो वर्तमान और भविष्य में महामारियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो। केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के हिस्से के रूप में 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो वर्तमान में विकास के विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपने 2 उप मिशनों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करते हुए सबकी पहुंच, किफायती, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक करना है। सभी NHM सेवाएं उप जिला और जिला स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निशुल्क उपलब्ध हैं। NHM का लक्ष्य न्याय संगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह, उत्तरदायी हों। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का एक प्रमुख स्तंभ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना है, जिन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में जाना जाता था। देश में 1.77 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जहां पर करोड़ों लोगों की हाइपरटेंशन, मधुमेह और कैंसर की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। किसी भी देश की समृद्धि का रास्ता स्वास्थ्य से ही संभव है। स्वस्थ शरीर और मन के बिना सच्ची समृद्धि हासिल करना मुश्किल है। भौतिक सुखों का आधार स्वास्थ्य और समृद्धि को माना गया है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो सुख की अनुभूति, क्या उसकी कल्पना भी अर्थहीन है। समृद्धि नहीं तो भौतिक सुख की केवल कल्पना ही की जा सकती है। सरकार भी इस सच्चाई से वाकिफ है। पिछले 11 सालों में हेल्थ सेक्टर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की एक व्यापक सीरीज कार्य कर रही है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान समेत कई योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ा रही हैं। सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बात करें तो भारत ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तपेदिक को खत्म करने में मजबूत प्रगति की है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 और 2023 के बीच टीबी के मामलों में 17.7% की कमी और टीबी से होने वाली मौतों में 21.4% की कमी आई है। उपचार कवरेज 53% से बढ़कर 85% हो गया है, जो स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुंच में बड़ी प्रगति को दर्शाता है। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से रोगियों की पहचान की जा रही है। 2024 में भारत में रिकॉर्ड 26.17 लाख टीबी मामले दर्ज किए गए। निक्षय पोषण योजना, निक्षय मित्र जैसी पहल के माध्यम से टीबी निवारक उपचार किया जा रहा है। इसी तरह राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। मिशन ने 2047 तक स्किल सेल रोग को खत्म करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 3 जून 2025 तक सिकल सेल रोग के लिए कुल
5.72 करोड़ लोगों की जांच की गई, जो 3 साल के लक्ष्य का 75% से अधिक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के जरिए देश भर में 749 जिलों में 1,674 केंद्रों पर 11,757 टीमो डायलिसिस मशीनें लगाकर लागू किया गया है। मई 2025 तक कुल 27,86,000 मरीजों ने डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाया। इसके कारण अब तक 8,000 करोड़ रुपए के मरीजों की जेब से होने वाले महंगे खर्च की बचत हुई है। राष्ट्रीय निशुल्क औषधि सेवा पहल और राष्ट्रीय निशुल्क निदान सेवा पहल मरीजों की जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए आवश्यक दवाओं और निदान सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों के अनुरूप प्रारंभिक पहचान, बुनियादी ढांचे के विकास और किफायती उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों ने कैंसर का शुरुआती स्टेज पता लगाने पर जोर दिया। देश में 31.70 करोड़ से अधिक लोगों को ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग, 16.68 करोड़ से अधिक ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, 9.97 करोड़ से अधिक सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। एनएचएम के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के तहत 46 डे केयर कैंसर सेंटर को मजबूती मिली। सरकार ने पिछले दशक में 19 राज्य कैंसर संस्थानों और 20 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्रों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। सभी 23 नए एम्स में कैंसर उपचार सुविधाएं स्थापित की गई। इसके साथ ही कैंसर देखभाल इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई। 217 अमृत फार्मेसियों के माध्यम से 289 कैंसर की दवाएं 50% तक की छूट के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जनता को सस्ती कैंसर रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दवाइयों को किफायती बनाना, सभी के लिए किफायती दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करना पिछले 1 दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा सुधारों का एक केंद्रीय स्तंभ रहा है। भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण दवाइयों को काफी कम कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, जिसे नवंबर 2016 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने लॉन्च किया था, वर्तमान में देश में 16,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र खोले गए। इस पहल का उद्देश्य जनऔषधि केंद्रों की एक समर्पित नेटवर्क के माध्यम से काफी कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। ये आउटलेट ऐसी दवाइयां प्रदान करते हैं जो प्रभावकारिता और सुरक्षा में अपने ब्रांडेड समकक्षों के बराबर हैं, लेकिन उनकी कीमत बाजार दरों से 50% से 90% कम है। सरकार अमृत फार्मेसीज के जरिए विशेष रूप से उच्च स्तरीय उपचारों के लिए आवश्यक ब्रांडेड जेनेरिक और जेनेरिक दवाओं के साथ साथ सर्जिकल आइटम, उपभोग सामग्रियों और मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए केंद्रीकृत आपूर्ति बिंदुओं के रूप में कार्य करती है। वी रन आयुष्मान भारत, the world's largest health insurance scheme. It covers 580 million people and provides free treatment. This program was recently extended to cover all Indians above the age of 70 years. We have a network of thousands of health and wellness centers. They screen and detect diseases such as cancer, diabetes, and hypertension. Thousands of public pharmacies provides high quality medicines at far less than the market price. डिजिटल स्वास्थ्य विभाजन को पाटने के लिए ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई। ई संजीवनी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। ई संजीवनी आपके स्मार्टफोन से डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित
और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। आप नजदीकी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पर जाकर ई-संजीवनी के जरिए दूर स्थान से भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल मिशन इंद्रधनुष है, जिसे 25 दिसंबर 2014 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक विशेष कैचअप टीकाकरण अभियान के रूप में लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष विशेष रूप से उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों से चूक गए हैं। टीकाकरण वितरण में दक्षता और जवाबदेही को और बढ़ाने के लिए सरकार ने UIP के तहत एक डिजिटल पहल यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म पारदर्शिता सुनिश्चित करने, सेवा वितरण में सुधार करने और वंचित आबादी तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। Technology is an important catalyst to improve health outcomes. We have a digital platform to track vaccination of pregnant women and children. Millions of people have a unique digital health identity. It is helping us integrate benefits, insurance, records, and information. With telemedicine, nobody is too far from a doctor. Our free telemedicine service has enabled over 340 million consultations. Friends, due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. इन प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु दर अनुमान अंतर एजेंसी समूह की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2020 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 103 से घटकर 2023 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 80 रह गया है, जो केवल 3 वर्षों में 23 अंकों की महत्वपूर्ण कमी है। कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2015 से 2023 के बीच 48 से घटकर 28 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर आ गई। इसमें 42% की गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 28 से घटकर 17 हो गया है। सरकार ने प्रभावी रणनीतियों और नीतियों के माध्यम से बाल मृत्यु दर को कम करने में भारत को एक आदर्श के रूप में पहचाना है। देश की कमांड संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए जो कोशिशें शुरू की, अब उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। भारत चिकित्सा के क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। मोदी राज में एम्स के निर्माण, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सीटें बढ़ाने, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र खोलने जैसे तमाम कदम उठाए गए। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की चिकित्सा, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाए हैं, गहरी चुनौतियों का समाधान किया है। इस प्रयास की आधारशिला कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार से हुई, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य असम में पहला एम्स भी शामिल है। मई 2025 तक भारत में 23 एम्स और 2045 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल और 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। MBBS सीटों में 130% की वृद्धि हुई है, जो 1,18,190 तक पहुंच गई। इसी तरह मेडिकल की PG सीटों में 138% की वृद्धि हुई है और ये 74,306 तक हो गई। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित डॉक्टरों की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। पैरा मेडिकल कार्यबल को और मजबूत करने के लिए सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 157 सह स्थित नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी। अप्रैल 2025 तक 106 ऐसे नर्सिंग संस्थानों के लिए फंड जारी किया गया। इसके साथ ही BSc नर्सिंग सीटें
53% बढ़कर 1,27,000 हो गई और MMC नर्सिंग सीटें 39% बढ़कर 14,986 हो गई। चिकित्सा क्षेत्र को पारदर्शी बनाने और योग्यता को बढ़ावा देने के ऐतिहासिक कदम के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कई अन्य ऐतिहासिक कानून बनाए गए, जिनमें राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम 2023 शामिल है। 2016 में नीट की शुरुआत ने एक समान और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की, जिससे चिकित्सा संस्थानों में योग्यता स्थापित हुई। NCAHP के तहत 10 संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायों के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए। नर्सिंग डोमेन में अनुसंधान और एकेडमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अक्टूबर 2024 में नर्सिंग में PhD के लिए राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया, जिसने साक्ष्य आधारित नर्सिंग अभ्यास और नवाचार में एक नया अध्याय शुरू किया। कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया दुनिया में सबसे सक्रिय, व्यापक और लोगों को प्राथमिकता देने वाली रणनीतियों में एक के रूप में उभरी। देश ने जीवन की रक्षा, वायरस को नियंत्रित करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा में लचीलापन बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी लामबंदी शुरू की। स्वदेशी रूप से विकसित टीकों के जरिए संचालित और कोविन जैसे मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है। भारत ने सफलतापूर्वक 220.67 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराकें दी, जो पैमाने और गति के मामले में विश्व स्तर पर बेजोड़ उपलब्धि है। पिछले 11 वर्षों में भारत का स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण रहा है। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निर्देशित सरकार ने पहुंच का विस्तार करने, गुणवत्ता में सुधार करने और सामर्थ्य सुनिश्चित करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, PM ABHIM और ई-संजीवनी जैसी ऐतिहासिक पहलों ने चिकित्सा सेवा को लोगों के करीब ला दिया। बुनियादी ढांचे, डिजिटल स्वास्थ्य, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल और चिकित्सा शिक्षा में निवेश ने भविष्य की स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। ये प्रगति केवल संख्याओं को लेकर नहीं, ये जीवन में सुधार, सम्मान की स्थापना और आशा के नवीनीकरण के बारे में है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल में कदम रख रहा है, समावेशी, लचीले और लोगों पर केंद्रित स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संदेश स्पष्ट है, हर जीवन मायने रखता है और एक स्वस्थ भारत ही एक मजबूत भारत है। Certain innovations define the course of humanity's progress. Artificial intelligence stands at that threshold, a force reshaping the way we learn, govern, heal, and grow. Across the globe, nations are racing not just to adopt AI, but to harness its power responsibly, inclusively, and ethically.
India, with its immense talent, deep-rooted innovation, and steadfast vision, is carving a path where technology meets humanity at its best. In tandem, the ambitious India AI mission was launched, with the financial outlay of 10,372 crore rupees for 5 years. The mission's goal: to craft a resilient and inclusive AI ecosystem, placing India at the forefront of the global AI landscape. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. In a rapidly evolving digital era, India is harnessing the transformative power of artificial intelligence to bridge educational divides and unlock new possibilities for learners across the nation. From smart platforms to intelligent curricula, AI is not just enhancing how students learn, but reimagining what education can achieve. This revolution is unfolding across the country as initiatives and innovations bring the promise of equitable, future-ready learning to life. Across India's education sector, AI is fostering access and equity. The National Education Policy 2020 recognized the power of AI to redefine educational outcomes. It envisioned a digital landscape where every learner, regardless of their background, can access quality education and future-ready skills. Acting on this vision, a Center of Excellence in AI for Education has been established with an outlay of over 500 crore rupees in the 2025-26 Union Budget. This center is committed to advancing AI-powered educational tools, personalized adaptive learning, and AI-driven curriculum development. Platforms like Diksha have integrated AI-driven keyword search capabilities to help users find relevant learning content effortlessly. Meanwhile, eJadui Pitara, AI chatbots have been introduced to make learning more interactive and engaging for young minds. The Sathi platform provides personalized learning paths for students preparing for competitive exams, leveraging AI tools to customize study materials. To complement these efforts, the All India Council for Technical Education developed a model curriculum in AI and data science, ensuring future engineers and technologists are industry ready. Through the National Mission on Education through Information and Communication Technology, or NMEICT, India has been systematically embedding ICT solutions into higher education processes, fully aligning with the aspirations of NEP 2020. In India's journey toward a more resilient and responsive public health system, artificial intelligence is emerging as a powerful ally and bringing a transformative impact to India's public health system. AIIMS Delhi, PGIMER Chandigarh, and AIIMS Rishikesh have been designated centers of excellence for AI in health, with the goal of developing scalable, impactful AI healthcare solutions. The integration of Clinical Decision Support System, CDSS, into the National Telemedicine Platform eSanjeevani has already enhanced over 196 million consultations, offering standardized patient data capture
and assisting doctors with AI-driven differential diagnosis recommendations across health and wellness centers. The Media Disease Surveillance Solution, an AI-driven tool deployed since April 2022, monitors digital news sources across India for early signs of infectious disease outbreaks. This tool has published over 4,500 alerts, significantly enhancing India's event-based disease surveillance capability. To combat tuberculosis, AI-based solutions like Cuff Against TB have increased TB detection rates by 12 to 16% in pilot regions. Similarly, predictive models for adverse TB outcomes have contributed to a 27% decline in adverse outcomes among TB patients. India's judiciary is stepping into a new era, where tradition meets technology in a digital renaissance powered by artificial intelligence. As the system evolves, efforts are underway to balance innovation with responsibility, ensuring that the promise of AI is realized without compromising fairness or accountability. Under the E-Codes project Phase 3, artificial intelligence has been harnessed for translation of legal documents, automated filing, intelligent scheduling, and enhancing case information systems through natural language processing and optical character recognition. Smart chatbots now assist litigants with real-time case information, and AI-driven administrative tools are improving efficiency across court registries. To ensure the privacy and security of judicial data, a subcommittee of High Court judges and technical experts have been established, overseeing digital infrastructure and suggesting measures for data protection. Despite these advancements, challenges remain, including potential algorithmic biases, data security risks, and the need for manual verification of AI outputs. Recognizing these hurdles, an allocation of 53.57 crore rupees has been made for continuous adoption of future technologies in the judiciary. AI is going to be like a boon that's come true from a judiciary standpoint. Why? Because India, we are having a humongous volume of backlog of cases. And that's so because the quantum of cases are continuing to pile up. The number of judges that we have in the country per 1,000 or per lakh people is much lesser than what it should be. And more significantly, we find that there are often vacancies which don't get filled up. So consequently, these areas of cases has to logically be a logical corollary. But then with the coming of AI, we can get these AI to go ahead and sort out, analyze these pendency of areas of cases, classify them into different buckets, and if certain number of cases can be clubbed together, which can be, shall I say, decided by one adjudication of some legal principle, then that could be a great starting point. In the heart of India's agricultural landscape